किसी को भी जब बहुत सम्मान मिलता है, कोई साहित्यकार जब पुरस्कृत होता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो लेखक से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मीडिया कर्मियों से अलग होना चाहते हैं। सवाल बहुत सारे होते हैं कि आप लेखक कैसे बनते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लिखने के लिए विवश करती है, आपके लेखन की प्रेरणा क्या है, आप जब लिखते हैं तो आपके सामने कौन सी चुनौतियां आती हैं, कौन सी समस्याएं आती हैं, और किन संघर्षों से गुजर करके आप इस मुकाम पर पहुंचे। और इसीलिए इस तरह के राइटर्स मीट का आयोजन साहित्य अकादमी करती आई है। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो लोग आपको सुनते हैं, उनमें से सब में नहीं तो किसी ना किसी में लेखन के प्रति एक उत्कंठा और एक जिज्ञासा का भाव भी पैदा होता है। और आपको सुनकर अगर दो लेखक भी और पैदा हो जाते हैं और उनकी कलम लेखन के लिए प्रेरित होती है तो बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए राइटर्स मीट ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन, आज का ये समय आपके लिए है। हम नहीं बोलेंगे, आज आप बोले। और मैं आमंत्रित करूं आप सबको। इससे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत सीमित समय है और 24 रचनाकारों को हमें सुनना है। तो हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में अपनी बात यहाँ पर रखें। आपका लिखित वक्तव्य हमारे पास है और वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। और अपनी बात को आप संक्षेप में भी रखें। पुनः पुनः मेरा निवेदन है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी बांग्ला में पुरस्कृत स्वप्न चक्रवर्ती को। उनका लिखित वक्तव्य हमारे पास नहीं है, लेकिन वो ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है कि वो एक्सटेम्पोर बोलेंगे। स्वागत है स्वप्न चक्रवर्ती जी आपसे। नमस्कार। नमस्कार। और एक मिनट प्लीज। First of all, I am not a good speaker. I try to write and my communication is in pen and paper. I am not orator. Firstly, I am very much thankful to this Sahitya Academy because they organized this big, voluminous and vast event here. And I am proud to be here with you. First thing, this was serialized, Jolly Report Pani, in a Bengali newspaper in their literary supplement for 2 years from 17 to 18. 2017 से 18 तक ये serialized हुआ था. But actually, it has been written in my mind from my childhood, just from my childhood. When I was a boy of 6 or 7, I am a newcomer in a school, and my school friends who showed, you see, this is guava. एक प्यारा लेके पॉकेट से निकाल से बोलता है ये मेरा देश का है, ये मेरा देश का है, खा लो। Cool जिसमें है, some type of, some sort of देशी berry, वो ले आता था. Sometimes they told their देश का कहानी, उधर क्या है, उनका खेती है, उनका जो थोड़ा थोड़ा बहुत लैंड वाटर बॉडी है, वहाँ से मछ पकड़ाता है, ऐसा कुछ. So what they are telling, this, what is this?
देश क्या है हमारा कोई पता नहीं था, मालूम नहीं था देश किसको बोलता है. आई एम बोर्न इन कोलकाता आफ्टर 5 years of independence. I don't know what is free India and what is colonial India. I have no idea. After that, I was astonished when my relative came here to my house. My old grandfather asked, "Who has came? I say." Somebody told he is Kanai. Kanai? Kanai from Agartala? Or Kanai from Shodachaka? Or Kanai from Sirampur? Actually, they are not living in those villages. They are living now in some colony, some refugee colony. There they got their settlement. Maybe it is in Dhumulia, maybe it was in Avarpara, maybe it was in Bagajoti Nodi, maybe in some places, but they were carrying all their old villages with their memory. They told their old stories. My grandfather, my and other old people, I was the listener. I have born in Calcutta. I know this. Calcutta is my land. The gully, crowd, loud sounds. This is my land. So actually, my old relatives, they 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 recapitulated their village stories, but I could not understand. Gradually, I I had that concept. ये मेरा समझ में आया that yes, somebody has their own root in somewhere, but I have no root. I am rootless. I am a product of a rootless family. Gradually, I understood partition. After that, this partition, why this partition? How it happened? Who was the victim of partition? So it was my thinking. Basically, I am a short story writer. I started my this writer's career with short stories, and even now I get more pleasure to write a successful short story than a novel. Short story is very magical thing. You can create a magic in 1 pages or 2 pages or 3 pages. But this is very true for short stories. And again this, I हमको बोलने होगा जो साहित्य अवार्ड मिला, जो उस शॉर्ट स्टोरीज में होता तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. But anyway, I got this. Matter is this. मैंने the partition is man-made at the cost of our independence. And as an obvious outcome, a lot of people from Bengal and Punjab had to leave their ancestral home for physical survival, and they migrated to a non-land. This novel is all about the migrants and their daily toils to carve out a few destinies. Primarily, this is a running commentary. This is running commentary of post-partition settlement. This is running commentary. One central character is there, and how they spent their life and became. My span is from 1905 to 2000. And this is a running commentary of a family of 2 or 3 generations. It is weaving of memories. My main masala is oral history,
This oral history I got from my old relatives and some other people, aged people who had faced the partition, and I have weaved the memories in this novel. Acha. Another thing is this, my childhood memories are also woven in this novel. In this novel, I also try to capture the ingredients for whatever I found, be it old survey report, agreement, collected old letters, etc., etc. I got many first-hand information. And in this novel, I have included not only Bengali victims, I wrote about Bihari victims also at the time of partition. But I did not write here about Punjabis because I have no experience with that Punjabi people. But I know some Bihari peoples after partition that disrooted Biharis, they settled, they have to settle in their nearer Pakistan. For a Biharis who had demanded for partition, they believe, yes, there are two religions, and for two religions they should have two separate nations. And that these Biharis, they settled in East Pakistan, but after formation of Bangladesh, these East Pakistani people became landless people because the East Pakistanis, most of them are Biharis, they did not support that Bangladesh movement. They are against of that Bangladesh movement. After 1971, just this is very difficult to imagine their condition. They had no nation. Some of them migrated to India again, but unlawfully. They are not Indian even. So these Bihari Muslim people, they are included in my novel, and in a nutshell, this novel is a sort of history, I can say, but in a fictional form. Yes, there is a strong fiction. As a fiction you can read it, but this is a history also, this history of partition. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सपना चक्रवर्ती जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बोरो में पुरस्कृत नंदेश्वर दामारी जी को। माननीय आज का लेखक सम्मेलन की अध्यक्षता महोदय, मेरे सामने उपस्थित लेखकगण, आप लोगों को मेरे तरफ से और मेरी बोडो भाषियों की तरफ से आंतरिक नमस्कार। कल बोला था मैं मेरा भाषा भी लैंग्वेज से प्रॉब्लम, ना इंग्लिश सकता हूँ ना हिंदी में सकता हूँ, तो लेकर लाया हूँ में 60 साल की उम्र में माँ से बिछड़ा था। माँ घर छोड़कर दूसरे के साथ चली गई थी। पहले पत्नी के गुजर जाने के बाद
मेरी माँ को 13 साल की उम्र में 70 साल के पिता ने रिश्ता विवाह कर रहे थे। माँ के चले जाने के बाद पिता ने फिर से तीसरा विवाह किया। उसी छोटी माँ के साथ जीने का ही सुना पड़ा था। छोटी माँ की नशा सेवन करने वाली, घर में ही उनका दारू बनाने की आदत मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसका विरोध करने पर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। हमेशा झगड़ा फसाद के बीच रास्ता में शिक्षा है। उधर सड़क में निकलते ही भीख मांगते, एक दिन मजदूरी करती मेरी असली माँ से बार बार टकरा था। साथ में दो छोटे छोटे भाई बहन भी थी। एक को छाती में बांध लेती थी, दूसरे को हाथ से पकड़कर आगे बढ़ती। पिता संपन्न परिवार के थे। काम करने वाले लोग कोई मजदूर रखते थे, उनमें से कोई महिला भी थी। उनको परिश्रम के रूप में 1 किलो के चावल, 1 किलो के हिसाब की चावल दिया जाता था। माँ भी आती थी मजदूरी करने के लिए। माँ को भी छोटी माँ से चावल लेना पड़ता है। माँ का वो डिस्टर्ब देख कर पता है, सोचता था, रोज सोचता था, माँ का एक ही था। उम्र का यह परिस्थिति का, समाज का यह किस्मत का, उस नौकरने पर भी मार्गदर्शन करता है। आप सब के उम्र में पढ़ने के लिए बात छोड़ता है। गाँव के स्कूल में नहीं, कारण एक ही था, स्कूल जाते ही माँ से मुलाकात। हमारे को जिद करती थी, पर विद्यालय से एकदम छोटा है, इसलिए 5 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षक विद्यालय में अकेले जाकर पढ़ना आरंभ किया। वो गाँव बहुत शिक्षित था। विद्यालय के लाइब्रेरी के अलावा गाँव के पास ही लाइब्रेरी थी। यह 1916 था। वो गाँव का परिवेश था। अक्सर गाँव में सांस्कृतिक प्रशिक्षण होता हुआ था। गीत गाना, लिखना, खेल आदि का आयोजन होता था। इसलिए विद्यार्थियों के प्रतिभा के विकास मदद होता है। उस परिवेश में मैं घुल गया। घर की परिचय की सुविधा, लोग बैठा लागू करने के लिए चेष्टा करता था। इसी समय में पांचवी कक्षा में मिस पा रहा है। इसी दौरान मेरा बाबू का आवेग शब्द कलम से मिले। मुझे लिखने के लिए उत्साहित करते रहते मेरे शिक्षा गुरु कमल सकता है। विद्यालय का मुखपत्र फैलाने की संपादक रूप में जुड़ गया। 100 साल बाद जब मैं कक्षा 5 थी, माँ जिसके साथ चली गई थी, वही पति मोट हो जाती थी। अवस्था और भी बदतर हो गया था। पिता का अनुमति लेकर 1 साल बाद माँ को फिर से अपने घर से लाया है। साथ में सभी भाई बहन भी आए। कुछ साल बाद पिताजी की बदली और माँ की बदली, क्योंकि माँ भी कर गई।
उन सब के चले जाने के बाद हम लोग आज रहे हैं। उनमें से भी कुछ दिन पहले एक भाई और एक बहन भी चल गई। तीसरे कक्षा में मैं भी संपूर्ण परिवार का जिम्मेदार मेरे ऊपर आ गया। लेखन के इस दौरान में विभिन्न अनुष्ठान से आज परिष्कार 12 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। कुछ कहानी नेपाली, हिंदी, असमिया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, राजस्थानी, मलयालम, पंजाबी आदि भाषी में अनुवादित हो गया। आशा है इन भाषाओं के पाठक मेरी कहानियों को आकर्षित करेंगे। जो सफली दाखिल इसलिए मैं ये पुरस्कार मिला के बारे में पढ़ा था। पुरस्कृत पुस्तक जीवन सफली दाखिल हिंदी में से जीवन के सफल में लगे हुए था 2021 सन में प्रकाशित है। इस पुस्तक में 13 कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी कुछ अलग परिदृश्य है। उसी में से एक कहानी है जीवन सफली दाखिल, जीवन के सफर में लगे हुए था। एक औरत की चाराली औरत को चाराली के बगल में रोज रहता है। उसका उम्र 50 वाली हो गया। एक दुकान में बैठी रहती थी। दुकान मतलब छोटे से टेबल में 5-7 का बर्तन, प्रत्येक बर्तन में 20 कोशिश सफेद रहता था। चारों के सफेद जमा करने पर भी एक छवि नहीं देता होगा। तांबुल भी देती थी, लेकिन 5 से सफेद द्वारा ज्यादा नहीं रहता था। कुल मिलाकर उसका मूल्य होता होगा लगभग 100 रुपये। वही था उस पौधे की दुकान। रोज बेची थी, लेकिन ग्राहक उसी दिन नहीं रहता। कुछ बात को सोचता रहा था। दिन भर में उसका उत्पादन क्या होता है। एक बार तो पूछ लिया था। पहले ही वो कुछ नहीं बोली। उसकी गुस्सा होगा। धीरे धीरे मधुरता से पेश आने लगी। मधुरता अक्षर से दिया मन कुमोद हो गया होगा गया होगा। उसके बाद जो कुछ सुना, मेरी माँ की जैसी कहानी उसके जीवन में भी होती है। जो उपयोग हुई एकदम सच था। कुछ कहानियां ऐसी घटना के आधार पर लिखा है। किशोर अथवा युवावस्था से भूल गलती के कारण कैसे दुर्गति भूल सकता है। इसी बात पर मैंने अपना नजर किया। लेकिन गलती है सरल नहीं है। किसी को पराई, किसी को सम्मान, किसी को सर पूछता। कुछ कहानियों में अलग से चरित्र का कुछ आवाज देने की विमर्शा का कारण जिसका फल मधुर से मधुर पता। स्थापन पर कृषि दुर्जय बेसरकारी विद्यालय स्थापन कर कृषि दुर्दशा झेलना पड़ा था। उसका वर्णन करने का भी प्रयास किया। मानवतावाद को भी कहानियों में चित्रित किया गया है। पहले परिदृश्य समस्याओं का आवाज दी जाने के लिए किया गया। पता नहीं इन कहानियों में मैं कितना सफल हूँ। कथा कहानी में जितना कहानी बोलने में जितना जोर दिया है, कहानी कुछ एवं भाषण शैली का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन कहानी ही मैं सफल हूँ। अच्छी बुरी पाठक समाज की तय करेंगे। नई मिस्त्री हिंदी भाषी हिंदी पर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार मिले हुए लेखक बजरंग प्रदर्शन में
इस पुस्तक का हिंदी रूपांतर किया है। प्रकाशित होने पर आप जरूर पढ़ने का सुविधा मिल सकता है। अंत में सभी साहित्य का निश्चय तथा साहित्य कार्य के संबंधित सभी को सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए मैं सभी चीजों को मेरे तरफ से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नंदेश्वर दवारी जी। मैं आमंत्रित करूंगी डोगरी में पुरस्कृत विजय वर्मा जी को। आदरणीय मंत्राध्यक्ष, सभी भाषाओं के पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार मित्रों, विद्वान साथियों, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में बताने से पहले मैं नमन करना चाहता हूँ अपनी माँ, अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभाषा डोगरी। एक माँ जमती, एक माँ धरती, एक माँ बोली, शीश नवाजा है। सभी को नमस्कार। इन सबको नमन। नमन अपने गुरुजन, अध्यापकों और वरिष्ठ साहित्यकारों को इस प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के चयन संबंधी प्रक्रिया से जुड़े डोगरी सलाहकार बोर्ड के सभी आदरयोग पूर्व एवं वर्तमान सदस्य, इनके संयोजक, साहित्य अकादमी की समस्त टीम एवं अधिकारियों का आभारी हूँ। कृतज्ञ हूँ डोगरी के वरिष्ठ लेखकों और पाठकों, खासकर जम्मू और दिल्ली में आकाशवाणी से सर्वभाषा के मित्रों, अपने समस्त परिवारजन, विशेषकर अपनी जीवन संगिनी वंदना वर्मा का, जो मेरी पहली श्रोता और आलोचक। मेरी लेखन यात्रा का आरंभ वैसे तो घर से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे पिता श्री दीनानाथ वर्मा अध्यापक थे, भजन लिखते भी थे और गाते भी थे। मेरे नाना श्री अनंतराम बिल्लो डोगरी और पोठोहारी में लिखते थे और मैं स्कूल के दिनों में 1977-78 से अपने गांव सेरी पंडिता जम्मू रामलीला के मंच से शुरू होकर चिनाब दरिया के किनारे अखनूर, जम्मू शहर रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल, जम्मू एसपीएम राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स जम्मू, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी, रेडियो कश्मीर जम्मू जो अब आकाशवाणी जम्मू है, दूरदर्शन जम्मू, दूरदर्शन श्रीनगर, आकाशवाणी दिल्ली, समाचार सेवा प्रभाग, डोगरी संस्था, टुग्गर मंच एवं अन्य संस्थाओं से होते हुए साहित्य अकादमी दिल्ली और देश विदेश से विचरण करती हुई इस मंच तक मेरी कविता आ पहुंची। मैं अपनी भाषा डोगरी के इन सब का ऋणी हूं जिन्होंने उंगली पकड़कर मेरा मार्गदर्शन किया। आरंभ से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि मैंने लिखा नहीं, विधि ने मुझसे लिखवाया है और ये सब साधन भरे। अभी लिखने की भूख तृप्त नहीं हुई है, अच्छा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि जो लिखना चाहता हूँ वह अवश्य आएगा। आधुनिक डोगरी साहित्य के 2 सदियों के बीच में फैले हुए कालखंड के मेरे साहित्यिक सफर में जिन बड़वृक्ष महानुभावों ने ठंडी छांव प्रदान की, उनमें मेरे गुरु प्रोफेसर कुलदीप सिंह निंद्राइया, डॉक्टर ओम गोस्वामी, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, केहर सिंह मधुकर, वेदपाल दीप, यश शर्मा, श्रीमती पद्मा सचदेव एवं दर्शन दर्शी और श्री मोहन सिंह जी के साथ साथ कई वरिष्ठ साहित्यकार रहे। मुझे आकाशवाणी परिवार के भाषाई एकांश, समाचार सेवा प्रभाग के मित्रों और डोगरी के देश विदेश के समस्त भाषा प्रेमियों का सहयोग मिला, इसलिए इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं भारतीय भाषाओं और देश विदेश की भाषाओं के अच्छा लिखने वाले सभी साहित्यकारों को नमन करता हूँ जिनकी लेखनी मुझे मुतासिर करती है। मेरी इस पुरस्कृत पुस्तक के बारे में मुझे हर्ष एवं गर्व हो रहा है कि 721 शेर वाली डोगरी में ये सबसे लंबी गजल
और संभवतः सभी भारतीय भाषाओं में सबसे लंबी गजल की पुस्तक है दौं सदियां एक सील। इस नाम से प्रकाशित इस किताब के माध्यम से अपनी मातृभाषा डोगरी को और भारतीय साहित्य को ये अनुपम भेंट देने की कोशिश करता था। ये डोगरी के 7 दशक के डोगरी गजल के इतिहास के अनुरूप संख्या और गुणवत्ता में एक विलक्षण प्रयास है। इसके अक्षर और शेर खूब जिए, जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं मैं भी जिंदा रह सकूं। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ डोगरी समाज का, जो नए प्रयोगों को अंगीकार करता है, सराहता है और सम्मानित भी करता है। साहित्य का अदना सा विद्यार्थी होने के नाते मैं समझता हूँ कि असल में ये सम्मान डोगरी और सर्व डोगरा समाज का सम्मान है। मेरी ये गजल 2 सदियां और 2 सदियों में फैली लगभग हर विषय को सूची का विधारा है, जो अपने आप में डोगरी भाषा की गजल के कालखंड की तर्जमानी करती है और प्रगतिशीलता कल्श लिए 21वीं सदी में गजल का स्वागत भी करती है और निरंतर चल रही है। इसमें लुप्त होते ठेठ डोगरी भाषा के शब्द और लोक जीवन और संस्कृति से जुड़े बिंब सहेजने का यत्न किया गया है। मैं तो केवल एक अदने साहित्य कर्मी की तरह हूँ, जो आधुनिक डोगरी साहित्य के बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों से लेकर नई पीढ़ी तक डोगरी समाज और साहित्य के माध्यम से समन्वय तारतम्य बिठाने के साथ साथ समूहों से लेकर काफिले की ओर अग्रसर है। डोगरी में संख्या एवं गुणवत्ता के लिहाज से अच्छा लेखन चल रहा है, उसमें भी अपना योगदान बड़ी जिम्मेदारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सम्मान के उपरांत अवदायित्व और भी बढ़ जाता है, जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आशा करता हूँ कि और अच्छा डोगरी काव्य लिख सकूं, इसे जी सकूं और पहले से ज्यादा इसकी सेवा और साधना में लीन हो सकूं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय वर्मा जी। मैं थोड़ा सा धन संकट में हूँ। इस समय हमारे पास बहुत सीमित है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और वक्तव्य बहुत लंबे लंबे हैं मेरे पास। तो लिखित वक्तव्य तो आपका हमारे पास पहुंच चुका है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कृपया संक्षिप्त वक्तव्य दें। अब मैं आमंत्रित करूंगी अंग्रेजी में पुरस्कृत डॉक्टर नीलम सिंह जी को। 7 या 8 मिनट में आप सब अपनी बात रख सके। नमस्कार अध्यक्ष महोदय जी और उपस्थित लेखकगण। कल की वार्ता में तो मैंने कुछ ख्याल पेश किए ही थे। आज कोशिश करूंगी कि 7 और 8 मिनट के अंदर जो कुछ लिखा है कह सकूं, और अगर कुछ छोड़ना पड़े तो वो भी मैं बाइज्जत इस अध्यक्ष महोदय के आज्ञा का पालन कर पाऊं। It is a strange and stirring feeling that the 12th of March 2024 is now forever marked in my personal calendar of defining and transformative events, for which I thank the jury members of 2023 and the Senate Academy for considering my work worthy of this great honor. This is the time to remember all those who authored this author and fed stories and the love of stories into my mind. My ever-inspiring father and most enabling mother, both now long gone. My larger family of very talkative storytellers, also long gone. Those of my teachers and friends who fanned the flame and tended it with care. My husband who believed and supported. My children who are ever ready to help. And those who helped flag off my journey, David R., who solicited my very first book for Penguin after reading a story by me published in a magazine more than 30 years ago, Kanishka Gupta, my indefatigable agent, and all my editors, book after book, who have arduously traveled the same terrain with me, scanning each line. To all those who have authored this author, I offer the credits of this award. Half of it belongs to them. The other half asks to be accounted for in a formal address, which I shall try to do. Why do we write?
Why did I choose to do so, walking away from many other options? Put quite plainly, it was the discovery as a child of 6 of an elemental joy, an only child with a crowded inner life, made up of imaginary playmates with complicated adventures, their conversations playing in my head, and living a life of vivid sensory experience in which everything, toys, trees, paper cartons, bricks, had an animated existence that maximized the scale of my private universe. No mission, no cause or commitment existed then. Just the sheer excitement of pursuing ideas as they played out through make-believe people, situations, and voices. So my very first novel, written entirely for myself at the age of 12, was the autobiography of a dog. And all the characters were dogs, whose individual personalities, conversations, and escapades were great fun to embody in words and drawings, my muse being my own vivacious pet. Beginning there, even as a child, I knew what I wanted to do with the rest of my life. And as the years went by, the missions, the causes, and the commitments came as the real world peered into my pages. But the original impulse was the dance of energy in the brain that descended in endless playful formations upon the page. I spoke of what is called real time and the real world. But for the writer, there are always many variations of real time running alongside one's own story in one's head. There is a further dimension. There is something sacred in the mysterious ways in which an idea comes to nest in your receptive brain and amazes you, fresh and shining in a complete incarnation when you wake up, as though somebody worked while you slept. To be a writer is to partake of the wonder of this mystery, but also its obverse, of waiting helpless before a closed door and straining at it with all one's might and giving up in despair, and then the miracle of that door opening, revealing an entire vista ahead, the clear road your book has now to travel. To be a writer is also to experience what St. Teresa of Avila called aridity, sterility, and prolonged waiting. Sri Aurobindo called writing a sadhana, language a mantra, and the writer an upasana. Anyone who has traveled the lone path for any length of time has experienced the feeling of this. And one has only to notice all the help that comes along the path as one gets more and more deeply immersed in the work. Help pours in from unknown people, serendipitous sources, stray episodes, all of which actively empower her. I had this experience right through my writing of Requiem and Ragjanti, the novel which is received this award. Requiem and Ragjanti is the fictional biographer of a singer of the gramophone age, Janki Bai Ilahavadi. Over the years, I have increasingly located my stories and novels in my city, Allahabad, the world I know best. Despite its recent change of name to Prayagraj, it is Allahabad which remains my enduring creative field, so that each of my books has turned into a Thalkala of sorts. Requiem and Ragjanti deals with the life of an iconic but forgotten figure in my city's history, Janki Bai. Her career was extraordinary, rising from child singer trapped in a brothel along with her mother to stellar heights of musical eminence that made her one of the most sought-after artists, pursued by international gramophone record companies like Columbia, Odeon, Pathphone, and GTL. At the coronation Darbar of George V in Delhi in 1911, the occasion when the imperial capital of India was shifted from Calcutta to Delhi, Janki was invited to sing before the King Emperor. Alongside her musical career, which was extraordinary, was her extremely troubled personal life, full of anguish and disappointment, which she coped with, as every artist does, using her art as a spiritual compensation. I grew up with a lot of Hindustani classical music and its rich lore,
My father being very deeply immersed in it. So I have used a lot of that lovely lore about music and musicians and the cultural convergence that was to be seen in the world of music, and also the mythology of Hindustani classical music, to create a world in which music was a sole pursuit and excellence in it a single-minded end. William Blake himself, something of a mystic, once claimed that heaven contained all the books ever written in the past and ever to be written in the future. I feel privileged to have been granted the grace to tap into some of that inexhaustible treasure. And I am grateful to Saraswati, mistress of word and melody, for making this book and this occasion happen. Thank you very much. थैंक यू नीलम जी। मैं इनवाइट करूंगी गुजराती में पुरस्कृत श्री विनोद जोशी जी को। और आपसे नियत समय मर्यादा में मैं अपनी बात पूरी करूं। वाक्य से पंक्ति तक, वाक्य से पंक्ति तक पहुंचने में तो बहुत देर नहीं लगी थी मुझे, यह मुझे याद है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब तुकबंदी करनी आती थी। सबसे पहले लिखी पंक्ति में प्रास और लय भी था। 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते एक बच्चे की अभिव्यक्ति इस प्रकार थी: पोपट तारी राती रे जांच में भारी, बेला हाथी नी सूंड छे काली। पंक्ति तक तो पहुंच पाए, लेकिन अपेक्षित कविता तक बस अब तक यही उलझन में फंसा, जो उतर ही न सकी आज भी ये कागज पर वही पंक्ति मुझे दिखाती रही है अब तक। 10वीं 11वीं कक्षा में था तब बिना सीखे शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दुल विपरीत आदि छंदों में आसानी से लिखता है। बिना सीखे सच्चा छंद पाठ कर सकता था। छंदों की मोहिनी ने मुझे वश किया था। कविता के बजाय छंद पर ही मेरा ध्यान था। शिखरिणी छंद में लिखा एक सोनेट प्रतिष्ठित पत्रिका कुमार में छपा तब मेरी आयु 16 साल की थी। मैंने कुछ अच्छा कर दिखाया ऐसा उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन स्कूल के टीचर्स ने जब कहा कि कुमार में कविता छपी, यह तो बहुत बड़ी बात है, तब मैं रोमांचित हुआ। बस तब से सभान रूप से कविता लिखने लगा। पितृपक्ष से वेद पाठी ब्राह्मण संस्कार और मातृपक्ष से ग्रामीण बोली के संस्कार से शैशव काल समृद्ध रहा। भजन मंडलियों में जाता था, उधर मंदिर बजाता था। मंदिर में सायंकाल आरती के साथ तालबद्ध नगाड़ा बजाता था। लय और ताल के आवर्तन लहू में प्रतिदिन घूमते रहे। भाषा इस पर सवार होती चली। तब तक मन में एक ऐसा ख्याल था कि कविता में कोई संदेश होना चाहिए। स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में एक प्रश्न निर्विवाद पूछा जाता था कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। मैं सोचता रहता था कि मेरी कविता में मैं क्या कहना चाहता। मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता था और मेरी उलझन बढ़ जाती। फिर कविता हाथ से निकलता। कॉलेज में सुरेश जोशी का लिखा आलोचना ग्रंथ काव्य चर्चा पढ़ने में आया। तब तक आलोचना क्या होती है यह मुझे पता नहीं था।
सृजन और आलोचना दोनों पढ़ने लगा। अब कुछ समझ में आया। मुझे लगा कि इन दोनों में मेरी जानकारी बिना पढ़े ही काफी हद तक पर्याप्त है। किशोर काल तक एक छोटे से गांव में रहना हुआ। ननिहाल में खेतीबाड़ी, बहुत आना जाना होता था वहां। गाय भैंस को चराने के लिए ले जाता था। खेतीबाड़ी के लगभग सभी काम मैंने किए। खेत में बोए गेहूं को रात्रि के विविध प्रहर से पानी देता था। मैंने अपने हाथों से गायों को धोकर उसके दूध की सैर फल से सीधी मुंह में ली है। स्वप्न भंग के बाद छत पे लटकते सांप को खटिया पर सोते सोते निर्भय रहने का आनंद लिया है। सुबह सुबह बड़ी माँ गति मंथन करती तब की लयबद्ध घोर आवाज को सोते सोते मैंने सुनी है। चूल्हे में लकड़ियां डालकर बांस की नली से फूंक कर अग्नि प्रज्वलित की है। पितृपक्ष से शुक्ल यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखा के त्रिप्रवरी ब्राह्मण संस्कारों से परिष्कृत हुआ तो मातृपक्ष से लोक भाषा और लोक संस्कार की पूंजी मुझे मिली। दो भाषा रूपों की यह विपुल और समृद्ध संपदा से मेरी कविता समर्पित गई। गीत लिखने लगा, गवाते भी रहे। कुछ समय बाद ऐसा लगा कि एक ही तरह के गीत होते जा रहे हैं। मैंने सुकान बदला। महाभारत के पात्र शिखंडी को लेकर 3 सर्ग का एक वृत्तबद्ध दीर्घ काव्य मैंने लिखा। उमाशंकर जोशी और सुरेश जोशी ने सराहा, परामर्श भी किया। मध्यकालीन परंपरा की लुप्त हो गई पद्य वार्ता को मैंने तुम्बिल तुम्बिका की रचना करके नए रूप में डाला। इससे मुझे बहुत संतोष था, लेकिन इसे अनुआधुनिकता के एक विशिष्ट आविष्कार के रूप में कुछ सालों के बाद सराहा गया। इस दौरान बहुत कुछ रचनाएं नहीं लिख पाता था मैं। बीच बीच में बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियों से मैं जुड़ा रहा। भीतर कविता का लावा सदैव उबलता रहा। बहुत वर्षों के आत्ममंथन के बाद प्रबंध काव्य सैरंध्री का आविष्कार हुआ। साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत सैरंध्री मेरा 2018 में प्रकाशित 60 सर्ग और 49 खंडों में गुजराती में लिखा गया टोपाई और दोहे में निबद्ध प्रबंध काव्य है, जिनमें महाभारत के विराट पर्व की कथा का संदर्भ लेकर मैंने द्रौपदी के मनोसंचलन के माध्यम से सदा अज्ञात ही रहते मानव जीवन की अपरिहार्य भयावहता, जिसका मैंने मौलिक आलेखन किया है। महाभारत काल से बिल्कुल अलग कवि दृष्टि से यहाँ सैरंध्री को केवल एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने प्राकृतिक आविर्भाव और विपत्तिपूर्ण स्थितियों के द्वंद्व में फंसी हुई है। कर्ण के प्रति उनका आजीवन प्रच्छन्न अनुराग, 5 पांडव पति के स्वीकार का अनपेक्षित समझौता, पुरुष के प्रति उसका स्त्री सहज प्राकृतिक आकर्षण, कीचक पर उसका स्वयं किया गया आक्रमण, विराट राजा से दंडित किए जाने पर उसकी ऊर्जावान प्रतिक्रिया और निरंतर प्रकट के पीछे छिपी अप्रकट पहचान की उसकी खोज इस कविता की धरोहर है। अग्निपुत्री की चिता पर चढ़ने की घटना से कविता समाप्त होती है, लेकिन पाठक के चित्त में यहीं से वास्तव में शुरू होती है। कई आलोचकों और सहृदयी पाठकों ने इस सुनिबद्ध से प्रबंध काव्य के वर्ण सौंदर्य की और नव्य काव्यात्मक प्रयुक्तियों से इसमें बुने चिरस्थायी दर्शन की सराहना की है। मध्यकालीन काव्य स्वरूप का इसमें पुनरुत्थान देखा है। लगातार 2.5 घंटे तक चलने वाला इसका पाठ अब तक 34 जगह पर मैंने किया है। इसको सहृदय श्रोताओं ने बहुत ही सराहा है। मैंने खुद इसका हिंदी भाषा में समच्छंदी अनुवाद भी किया है, जो अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए सुलभ स्रोत है। रेणुका श्रीराम स्टोरी का किया ओडिया अनुवाद कुछ समय पहले प्रकट हुआ है। अन्य कुछ भारतीय भाषाओं में इसके अनुवाद का कार्य अभी हो रहा है। आखिरी बात बताऊं, काव्य सर्जन के विषय में
मैं निर्भ्रांत नहीं हो सकता। यह भाषा की कला है, इसलिए अंगूर है ऐसा स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ। साहित्य की कला भाषा की कला होने के कारण सदा अधूरा अनुभव देने वाली कला है। मुझे मनुष्य निर्मित यह माध्यम पहले से ही अपूर्ण लगा है, लेकिन साहित्यकार को लिखना तो भाषा में ही होता है। मैं जानता हूँ कि भाषा के साथ जुड़ा समय और भाषा के साथ जुड़ा वास्तव मुझे आह्वान देता है और मैं इसका क्रीड़ा पूर्वक आनंद लेता हूँ। मैं किसी कालखंड या रीति में मेरी सर्जकता को नहीं मानता। मेरी सर्जक भाषा का नियंता मैं खुद हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि वह नितांत रूप से मेरी नहीं है। इसमें एकाधिक लोगों ने मुझे दिए हुए संस्कार सम्मिलित है। निश्चित तौर पर मैं आधुनिक, अनुआधुनिक या पारंपरिक जैसे किसी खाने में मुझे स्थानांतरित नहीं करता। हर रोज उपयोग में ली जाती भाषा नाम की एक चीज को मैं अपनी कविता में नई बनाकर सामने रखता हूँ। कभी इससे उल्टा भी होता है, भाषा खुद मुझे नचाती है। भाषा में कला का रूप पूर्ण दल प्रकट होने के विषय में मैं शासन हूँ, फिर भी यह प्रपंच करता रहता हूँ। इसमें कभी ब्रह्मानंद सहोदर आनंद पाने की मुझे अभिलाषा है। मैं साहित्य सर्जन करने की इच्छा से नहीं लिखता। छंदोलय और साहित्य कला की कुछ कुंजियां आजमाने की इच्छा से भी नहीं लिखता। अवार्ड और पारितोषिकों की इच्छा से तो बिल्कुल नहीं लिखता। वाहवाही से खुश हो जाना व्यर्थ है, यह बहुत पहले समझ में आ गया है। न लिख पाने से कोई अफसोस नहीं है, अगर लिखूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद मेरे इर्द गिर्द रही गुजराती भाषा मुझे आह्वान करती है, फिर मैं और मेरी भाषा। मैं लिखता हूँ भाषा का इस सत्य को पाने के लिए। मेरा उद्यम केवल मेरे लिए है। मैं लिखता हूँ तो इस भाषा को लिए लिखता हूँ। सर्जन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा आनंद है। देश विदेश में कीर्ति मिली, दंड भी मिला। कभी कविता खुद मेरे गले में अटक गई। मैंने किसी दावे के साथ कभी नहीं लिखा। जब स्वतः लिखा गया तभी तभी ही लिखा। कविता करने से पहले बहुत ही अच्छे चित्र बनाता था, छूट गया चित्र बनाना। संगीत में बहुत रुचि थी, सीख ना पाया, लेकिन कविता ने साथ निभाया। टकटकी लगाए बैठा रहूं तो भी न आए, कभी धक्के मार के हटाऊं तो भी न जाए। कविता के साथ मेरा है ऐसा संबंध। फिलहाल तो वाक्य से पंक्ति तक पहुंच पाया हूँ, खड़ा हूँ। पता नहीं पंक्ति से आगे क्या मुकाम होगा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद विनोद जी। मैं आमंत्रित करूंगी कन्नड़ में प्रसिद्ध लक्ष्मी सोनपाड़ी जी को। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. I am told often that when you read a book, you are coming in contact of the mind of the author, life. So I pose a question to myself: what prompted me to write these essays, for which I got the award? These essays based on Mahabharata, an age-old epic of great. So when you read Mahabharata, you are coming in contact with of the mind of Vyasa.
Vyasa's mind. What is unique in Mahabharata? Where lies the uniqueness? Mahabharatस्य ಅಸಾಧಾರಣ್ಯಂ ಕಿಂ ಇತಿ. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಏನಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ? As all you know, so Vyasa has not written only Mahabharata. He has, his name is Veda Vyasa. He has divided the Akhanda Veda into 4 for the to help the study of the Veda. So, in the 4 Vedas, Rig Veda is the first Veda. The first Rig is the Rig Veda. The first verse, the first mantra has 2 unique words. The oldest Veda has 2 unique words in its first word, first mantra. The 2 words are, the one is Purvika and the other Nutana. Please think it over. The oldest Veda in its first verse spells the word Nutana. Nutana is a very prachina word. Nutana is a very old word. Almost oldest word. Nutana. Nutana means modern. Nutana means contemporary. Nutana word is why Vyasa designed Veda like this. See, when we study Veda, the student comes in contact with these 2 words, Purvika and Nutana. The context is adoration of Agni. Agnihi Purvebhihi Rishibhihi Idyaha Nutanaihi Puta. This is Veda. Agnihi Purvebhihi Rishibhihi Idyaha Nutanaihi Puta. The meaning is this. Agni is adored by our peers who lived in the past. And Agni is to be adored or adorable by peers who live in our times. So, because of these 2 words, Purvika and Nutana, which appear in that word, Vyasa selected the words as the first one of the Veda to be heard at first. When we start to study the Veda, it shows Vyasa's mind. It shows his heart. It shows his intention. Vyasa is for continuity. The very word Vyasa means Vistara. We are carrying a pot of fire on our head and move on. That fire was first lit by our forefathers and handed down to us. This is the first move of history, the first avatar of history. History, unknowingly, is a story also. So, Mahabharata is called Itihasa. Itihasa means history. Jayo nama Itihaso. ಮಹಾಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪೂರ್ವಿಕ ಎನ್ನುವ ಪದ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
So it is the first step, first appearance of history. And at the same time, this is the first appearance of art, kala, art. What is art? Art is imitation. Art is anukaranam. Art is anukaranam. Anukaranam is also the criteria of history. So we heard that history repeats, history repeats, and that repetition contains the source of art. So they combine the art of history and history of art. Both are in that step, in the first step, history of art and art of history. So the very first verse suggests that history and art combined. In Mahabharata, in his great epic, Vyasa combines art and history. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಭಿನಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಿಸ್ಟರಿ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, 3 in 1. This is Vyasa. History, art and philosophy, 3 in 1. You see the mind of Vyasa. History, I have said. Art is also anukaranam. And what is philosophy? See, in movements, there are 2 types of movement. One is horizontal and the other is vertical. Horizontal movement we call history. Vertical movement, it gets philosophical element. Vertical means deep down into us. This is vertical. Strangely, the element of philosophy drops when you repeat. This is a very strange thing. The Upanishads, it said that Chakshuhu, Shrotrasya Shrotram, Manaso Manaha, Sau Pranasya Prana. There are only one word, Chakshusha Chakshuhu, eye of the eye, Chakshusha Chakshuhu, Shrotrasya Shrotram, ear of the ear, Manaso Manaha, mind of the mind, and Sau Pranasya Pranaha, life of the life. When you repeat again, Manaso Manaha, the second, when you repeat Manaha, Manaso Manaha, that repeated Manaha word, it suggests the original thing. When you repeat it, when you chant it again and again, it suggests the original word. This is philosophy. It's a very strange thing. So there are these 3 things: philosophy, art, and history. All 3 are combined in Vyasa's mind. So he is unique, and his own work, Mahabharata, he dictated to it. In his own work, he explores the philosophy, the art, and history.
You see, an enchanting view. When I read Mahabharata, so I when I read Mahabharata again and again, I thought history, the heart and history is its soul. So there is no way, right, talking about Mahabharata. बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी सोनपाड़ी जी। हिस्ट्री, आर्ट एंड फिलोसफी के समन्वय की बहुत अच्छी बात साहित्य में आप कर रहे थे, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि 7-8 मिनट से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है और आप सब जानते हैं कि कितने लोगों को अपने आगे और बोलना है। अब मैं आमंत्रित करूंगी कश्मीरी में पुरस्कृत मंशूर बेनिहाली जी को। Most respected chairperson, honored guests, friends, and everyone present here. Welcome to all. I feel immense pleasure to extend my heartfelt thanks and gratitude to the National Academy of Letters, Sahit Academy, the daily members involved in the process of selection. Right? Respected audience, I belong to a village in Banihal of Jammu province in Jammu and Kashmir. At the very age of 18 years, I started my career as a teacher and retired as a principal after serving the education department for almost 40 years. The place I live in is also called Gateway of Kashmir, as there are two long tunnels of more than 11 kilometers length, each to enter the valley of Kashmir, the land of Sufis and saints, popularly known as Rishi Valley or Tiruvallur. Kashmiri language is my mother tongue, and the literary tradition of this language is stretched almost over 1,000 years. The 14th century woman Yogi poet Lalbir and her younger contemporary Sheikh Alam, Sheikh Nuruddin, have been the legend of Kashmiri poetry, who have laid down a well-defined literary tradition in vernacular and their poetry can be placed at par with any English language of the world. Though Urdu is an official language of Jammu and Kashmir, but Kashmiri is the largest recognized spoken language. I took up writing while I was a student, and the habit continued for the rest of my life till date. I write both in Kashmiri and Urdu language, and have published more than 20 books so far. I wrote down the first history of book of my area, the Gateway of Kashmir, and the first literary history of Kashmiri language in Jammu region. I also translated Gitanjali, the Nobel Prize award-winning book of Rabindranath Tagore, his children literature, and famous Urdu poet Mahbub Mahideen's poetry, Risalatats in Kashmiri verse form. I am founder of Kashmiri Azmi Markaz Banihal and also the chief editor of Kashmiri Journal Gulal. Though I contribute to history and criticism, but poetry has been my main passion. I feel it is the richest rendering of thoughts that evokes love, harmony, and connection between souls. My sensibility is deeply rooted in my soul, in my soul. I feel honored that my poetic collection of Yatwa Hari fully light in amidst enforcements have been selected by Sahit Academy for this year's award. The title of this book has been taken from a couplet of a famous Kashmiri saint, Hazrat Sheikh Alam, who says that the world is like a windy valley, and the candle of peace and mutual love cannot sustain
unless knowledge and morality go together and hand in hand. Meaning thereby that technology without morality can lead to harmful consequences. Moreover, the place I live in also experiences fast winds during the winter season, and this too is more or less related to this thing. The book in question is voluminous poetic collection of more than 600 pages and comprises of 7 different parts. Besides the prevalent genres of Kashmiri poetry, I have for the first time added 2 new genres, that is Maya and Sinharfi. Both have their origin in Punjabi literature. Maya has a romantic appeal, while Sinharfi has a mystic touch. I feel privileged to be the part of this momentous ceremony, which is highest welcoming and without derivation, and is particularly participated by the eminent writers of the language of this country. Besides, before I conclude, I would like to read out one of my couplets depicting hospitality and communal harmony of Kashmiri people, that it said, we have got after Kashmir, after forward for God. From it, we Kashmiri have rich cultural traditions. Though we have different courtyards of our houses, but have the same roof of Sukai over our heads. Kashmiri Muslims and Hindus are 2 eyes of human body having the same size. Thank you very much. बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद पंचुवंशाली जी को कि बिल्कुल सीमित समय में अपनी बात समाप्त करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच हिंदी में पुरस्कृत संजीव जी आ गए हैं और मैं अपनी बात कहने की उन्हें आमंत्रित करती हूँ। वहां से भी बोल सकते हैं, माइक में देखिए। संजीव जी हमसे बोल सकते हैं, आप माइक पे देते हैं। सभागार में उपस्थित सभी लेखक बंधुओं का उनको मेरा सलाम। अध्यक्ष जी और तमाम लेखकगण, सम्मानित लेखक और कलाकार सबको प्रणाम। साहित्य क्या है हमारे लिए, इसको समझने के लिए आपके सामने निवेदन करने के लिए मुझे अवसर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात संक्षेप में रख रहा हूँ, कृपया ध्यान देंगे। मैं अपने परिचय मेरा सबसे किसी अब कल की बात हो गई, आज की बात क्या है। मैंने फूलों से निकलती हुई ध्वनियां सुनी है और वे ध्वनियां देखी हैं जो जल रही थी। वर्षों पहले सेंट अगस्टाइन को याद करते हुए इस विद्युत सभा में अपनी बात रखने के लिए चाहता हूँ। कहने तो बहुत कुछ है, जबान में अच्छा नहीं, क्या कहा जाए क्या नहीं। मैंने एक कहानी लिखी थी, फैसला फैसला जज। मेरी कहानी फैसला में जज में हमेशा तो 2 अहम फैसले देने हैं। कभी कभी जज भी वक्त के ऐसे दो राहे पर खुद को खड़ा पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है,
इसका फैसला नहीं कर पाते। ये दो रहा ऐसा ही है जज मेहरुन्निसा से। रात गहरा रही है, टिक टिक करता वक्त का हर कांटा सिर पर हथौड़े सा बज रहा है। टेबल पर फैसले की दोनों प्रतियां फैलाए जज मेहरुन्निसा और उसके सामने उसे घूरती हुई उसकी 17 साल की बेटी टीनू टीनू आगे बढ़कर माँ को संभालते हुए बेटी पूछती है, एनीथिंग रॉन्ग मॉम, कैन आई हेल्प यू एनीवे? मेरे उनसे कहती है, नींद नहीं आ रही है बेटी। लोरी? टीनू ने पूछा। हाँ बेटी, लोरी। वही लोरी, टैगोर वाली, टैगोर, जिसका तर्जुमा तुमने उर्दू में किया था सिर्फ रिचार्ड के लिए। बस रिचार्ज बंद कर दो प्लीज, मुझे हो सकता है नींद आ जाए। बरसों पहले लिखी थी ये कहानी। मेरे अनुसार एक जज है, मुसन्नी उसके पड़ोस में सब्जी बेचने वाली एक महिला, अहमद उसका पति, जो बाजार में सब्जी बेचता है। वहाँ छोटी मोटी तकरार हुई है। एक मामूली सी बात पर हंसी हंसी में दोनों में मनमुटाव हो गया है और अहमद मुसन्नी को तलाक दे बैठता है। तलाक क्यों? तो हमेशा हंसती रहती है। ये हमेशा हंसती क्यों रहती है? मुसन्नी को जैसे मौत का अरमान मिल गया है। तलाक बोल देने के बाद अहमद को अपनी गलती का एहसास होता है, टाइम से लगता है। अब दोनों तलाक से पीछे हटने लगते हैं, पीछे पीछे पीछे। मियाँ बीवी दोनों ही तलाक से व्यक्तियों को चाहते हैं। मामला जज मेहरुन्निसा की कोर्ट में आता है, ये तलाक है या नहीं। तलाक हो जाने का मतलब है अहमद मुसन्नी और उसके बच्चों के जीवन की बर्बादी। तलाक के विरुद्ध फैसला देकर वह मुसन्नी अहमद को तो बचा ले सकती है, लेकिन एक भयावह आशंका है कि मेहरुन्निसा का खुद का परिवार महफूज नहीं रह पाएगा या नहीं, उजड़ न जाए। कहीं उसके शौहर उसे खुद तलाक न दे दे। किसे बचाए मेहरुन्निसा, अपने परिवार को या मुसन्नी के परिवार को? इधर मेहरुन्निसा की 17 वर्षीय बेटी शीरी माँ की परेशानी को भाप रही है। बेटी ने माँ के बदन को कंधे पर सहारा दिया, पत्ती देने लगी। माँ बेटी की भूमिकाएं परस्पर बदल गई है। अब वे सिर्फ औरतें हैं। एक औरत गा रही थी, एक औरत गा रही थी, एक औरत सुन रही थी, और दुनिया की तमाम औरतें गीत की लय में जलकुंभियों की हिलकोरी ले रही थी। सीढ़ी डिसाइड कर रही है, अल्लाह तुम बड़े हो, बहुत ही बड़े हो तुम। इस टैगोर की कविता है, जिसको कि वो उर्दू में तर्जुमा कर। अल्लाह तुम बड़े हो, बहुत ही बड़े हो तुम।
तुमने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, सूरज बनाया है, चांद बनाया है, सितारे बनाए हैं, और बनाई है ऊपर तक फैली रात। और हम तुम्हारे ही बनाए हुए छोटे से मिट्टी के इंसान हैं। तो क्या हुआ, हमने भी एक दिया बनाया है। तुम्हारी इतनी बड़ी काली रात से हम छोटे से अपने उस दिए से लड़ते हैं। बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, आंधियां आती हैं, हमारा दिया बार बार बुझता है, हम बार बार जलाते हैं, हार नहीं मानते, हार नहीं मानते, और तब तक जलाते रहते हैं जब तक सूरज की पहली सुनहरी किरण उसकी लौ को चूम न ले। ये कहानी थी। इससे सहारे माँ माने रेवेन्सा जो है अपने फैसले पर पहुंचने के लिए संकल्प लेती है। बस मुझे साहित्य के माध्यम से संत अगस्टाइन का ये जो ये है और टैगोर दोनों के संयुक्त रूप में साहित्य को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुंचना है, कभी कभी वो बहुत मुश्किल के सामने उस आते ही हम फैसले कैसे ले सकते हैं, इसका एक निरूपक हमने देखा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी कोंकणी में पुरस्कृत डॉक्टर प्रकाश एस पाणिकर जी को। Respected Vice President of Science Academy, creative writers from different parts of India, ladies and gentlemen, very good afternoon to each one. At the outset, I would like to thank the Science Academy for shortlisting and honoring my short story collections titled Watson for the Literary Award 2022. I consider this as a national honor to my opening short stories and encouragement towards more efficacious and impactful writing of journey of caravan that I have explored for years to come. I was born and brought up in a pristine small village that is Davetar in the western Ghats of the bank of Madai, which is the longest river of Goa. The river Madai and its bank give me, it's a very richest and a mindful experience that prospered my life and has a result of that I am standing among you here today. This Western Ghat region is abundant in flora and fauna to mingle and experience, and it has been identified as one of the top 10 biodiversity hotspots of the world. The government had declared this peaceful, lush green patch of 208 square kilometers as a Madai Wildlife Sanctuary in the year 1999. Our youth group, led by me, have been trekking in this region for the last 3 decades to explore the Ghat biodiversity. The course of the river and the resulting abrasion that produce the various pebbles and the wonderful colors, shape, and the morphology appealed me for hours. This drew me into the magic of Mother River. The memories that take me into the world of the people around me, that their way of life, their experiences, their affections, devotion of people to Mother, the rituals, customs, rites, traditions, ceremonies, sacrifice, and the practices which have galvanized our ancestors and also me. The roar of the tiger made me as strong. The bison and the bear has given me the strength to explore the region limitlessly. The lovely colorful feathers
and whispering calls of the birds made my mind as an eco-sensitive and empathic listener too. My dear fellow writer, the way Mother River has flowing continuously for years, nurturing its resources around. Similarly, the ink from my pen also flows down. The oral form of the story over many generations, narrated to me by my communities, expressing the love, miseries, happiness, sorrow, struggle, agony, expressions, aspirations, expectations on its bank, which is expressed in one of my book, that is Madai Kaldatlan Kaldar, an eco-anthropological study of the Madai. This sentiment should be made known to the world. The struggle of the marginalized people, the way peasant class engaged in a small holding and were dependent on the resource of the Western Ghats, several characters and their struggles that were not known to the world out there. I have to write to express the struggle of the people who have tried hard even to get one-time food and to express their socio-economical conditions. The faceless people were locate their God in the shapeless stone found in the riverbank, wide and tall trees deep rooted under the world for years, giving them hope of the stability of life, relentlessly water bodies which flows in their veins, give them persistence. The mountains which they worship give them very vision for their life ahead. The timeless, crystal clear sky which they gaze over the generation that gives them eternal peace and absolute freedom and the experience of the heavens. What I have told just now are also reflected in my collection of poems, that is Amchani. Dear all, I believe that writers should be like a lighthouse who glitter and attract the pathfinder on the region and the surrounding areas to mesmerize and direct them towards the enriching experience of life. My title short story, that is Verses, the nominated book by the Academy, and also the story Kazuro on one week uncut feature film has been produced and also won the 67th National Film Award 2019. So similar story speaks about centuries old discriminations in our controversial conservative societies. After receiving the Best Regional Film Award for Kazuro, one of the senior most journalists asked me a one-line question. That is there is a caste discrimination in the state of Goa? I said, yes. Any doubt? I further added, not only in Goa, but the caste discrimination, human beings have been discriminated every now and then worldwide. Intensity and the means of discrimination may be different. If there is any discrimination happening in our own society, we need to ask for these questions to ourselves and reflect. If so, we need to break the wall that are built around that is religion, caste, creed, and also region. In my story, Kadro, the man from the region family is unable to get a piece of land for his better half cremation. Wetzel is a revolt of young boy from the region family against the century-old customs in the community. The short story like Anitya Pod Gyun Gele and Chandrakul tells the inner story of the nomadic tribes who are struggling hard for their livelihoods and the injustice given to them by the elite class. The story Jani means the name given to the holy cow, which is worshipped in the tribal Dangar community of Goa for reproductions and for their prosperity as well. On one side, it marks my characters, rewards against the predominant systems, and also other side, they show their silence, sometimes a long silence, so that reader himself can reward against the system. In Mahabali, I have made an attempt to protect our trees, which are cut down every year in the name of traditions. And Abharanya, I have pointed out the issue of local who are struggling to stay back in the wildlife sanctuary to keep themselves attached to the nature and their survival. Apart from this, the real challenge before us is environment issues. There are a number of issues coming up day by day that are destroying the ecosystem. Our Mother Earth is a real danger. I believe that the writer has to be a drop of hope to make initiative to sensitize the people through his writings. Due to the large scale of industrialization and the process of globalization, we urbanize day by day. Forests
and mercy land have been encroached upon settlement. Exploration of the nature resources through the mining made our life difficult. We, the human beings, think that the earth is ours. We are the sole owner of the Mother Earth. But what about the other creatures? How they will survive? Dear writers, as stated, I always try my best to be a voice of the marginalized people and the nature too. Versal and award-winning book has been translated into Kannada language by Dr. Gita Shenoy, titled Versal ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, published by Coimbo Vasha Vashi Padit Kavitara, from Bangalore. I am happy to tell you that Monel Maya, Ranabur, Cross Across, Kavlo, and Arya, daughter of the Bharat, are the Marathi film, Marathi and the Konkani film were produced based on my writings, and I screened at the International Film Festival, and also some of them have awarded as the best film picture. The Site Academy Award certainly helped me write better than before. I will just take the opportunity to thank Site Academy for recognitions, and will also thank those people and my friends and the family who have been there with me throughout. धन्यवाद. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। मैं आमंत्रित करूंगी मैथिली में पुरस्कृत बासुकीलाल झा जी। हम मैथिली में बाजे की कोशिश करबे। हमार भाषा रहते मैथिली, बुझे कोशिश करियो कि मैथिली अबूझ थे कि बुझे वाला थे। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, सभागार में उपस्थित बंधुगण, लेखकगण, पुरस्कृत सज्जन, विद्वान, विदुषी महोदय, उपस्थित भाषा साहित्य सर्जक बंधुगण, विदुषीगण एवं विद्वत साहित्य सर्जक, पुरस्कार वितरण कार्यक्रम विशेष आयोजन में हमरा अपन विचार रखे अत्यंत प्रसन्नता और गौरवक अनुभव भ रहल है। एहि गौरवक क्षण में मिथिलाक प्राचीनताक अभिज्ञान सेहो ज्ञातव्य अछि। मिथिलाक चर्चा अनेक पुराण में भेल है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो मिथिला खंडक पृथक रूप में वर्णन है। ऐसे क्षेत्रक प्राकृतिक सौंदर्य संग विशिष्ट गुण वैविध्य सेहो वर्णित है। भारतीय शास्त्र पुराण में चर्चित होइत रहल है, अर्थात क्षेत्रक प्राचीनता असंदिग्ध है। पुनः तो प्राय सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उद्भव 10वीं शताब्दी के लगपास में मानल जाइत है। मैथिली से हो 9वीं शताब्दी से लय 10वीं शताब्दी धरि अवैध साहित्यिक भाषा के रूप में व्यवहृत होने लागल। पूर्वोत्तर भारतक बौद्धगण ओ चर्या गीत में एहि क्षेत्रक मैथिली सहित अनेक भाषा अपन उत्पत्तिक आधार तकैत अछि। मैथिली के मध्यकाल नाटक रचना के लेल महत्वपूर्ण कहल जाइत अछि, जाहि में कीर्तनिया, अंचिया, नेपाल क्षेत्रीय ओ बंग कलिंग क्षेत्रीय तथा द्वैभाषिक त्रैभाषिक नाटक सभक विद्यमानता अछि। साहित्य रचना प्रवृत्ति परिवर्तन क्रम में 1860 अवैध
आधुनिकता समावेश मैथिली में होमे लागल आ एहि क्रम में चंदा झा अगुआ बनला। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ भेला धरि मैथिली में पद्य एवं गद्य विविध विधात्मक रचनाक प्रचुरता प्रारंभ भेल। गद्य में दोनों प्रकारक अर्थात कथात्मक एवं कथेतर जो मूल विषय है। गद्यक रचना होमे लागल जाहिमे वस्तु एवं शैलीक आधुनिक रूप उपलब्ध है। प्राचीन काल में एहि क्षेत्र में ईश्वरक प्रचुरता, गद्यता का भाव, अप्रसन्नचित्त स्वभाव समाज के कला एवं सांस्कृतिक विकास अग्रसर करैत रहल। एहि क्रम में साहित्यिक एवं सृजनात्मक प्रतिभाक विकास भेल। छोड़ दीजिए जल्दी करवा के। जहाँ तक मैथिली भाषा प्राचीनता प्रश्न है तो सबसे प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध है। कहबै जे प्राचीन प्राचीन किया चर्चा करै छी तकर एकटा उदाहरण दै छी। प्राचीनता के एक साक्ष्य मात्र चर्चा करै छी जे वाल्मीकि रामायण में हनुमान सीता संवाद अछि। कोई संवाद में हनुमान विचार करे कि कौन भाषा में सीता से वार्ता कल जाए, सीता से कौन भाषा में वार्ता कल जाए। संस्कृत में यदि बाजब तो भ सकैए हमरा ई बुझलिए जे ई रावणक दूत कने छी, तें हम संस्कृत नहीं बाजि के दोसर भाषा बाजब। तै ठाम वो निर्णय करे हनुमान, after due consideration, he decides to speak in Manushi Bhasha. Not only after due consideration, I have worked. तो सोच विचार के वो मानसी भाषा में सीता से गप करे थे। What is this मानसी भाषा? What? Native language of the day of Mithila, of Sita. And that is Manasi Bhasha in Maithili. It's a easy to relate. वाल्मीकि रामायण के काल से मिथिला में अलग भाषा चले। इससे प्राचीन भाषा है निश्चित रूप से साहित्य है और साहित्य के लिखनहार है। मिथिला वैचारिकता के दृष्टि से और शास्त्रीयता के दृष्टि से गंभीर एरिया मानल जाए। कोई सब आगू बढ़े पद में भावना प्राबल्य रहे। लेकिन आप जाओ अपना पर पद में भावना प्राबल्य रहे कि गद्य में वैचारिकता के चिंतनक समावेश है। तो शास्त्र में कहा गया कि गद्यम कार्यों का नहीं गद्यम कविनाम निष्क्रम बदन अर्थात गद्य रचना कवि लोग कसौटी थी। देह में भावनात्मक अधिक चिंतनक अभिव्यक्ति हुई थी गद्य। भारतीय मनीषा के दृष्टि से व्याख्या शास्त्र विनिर्माण एवं प्रचलन रहल है। वही व्याख्या शास्त्र से आधुनिक आलोचना उत्पत्ति भेल रही। भारतीय साहित्य के चर्चा करे में पाश्चात्य साहित्य वाला कहे यहाँ तो आलोचना हुई ही नहीं है ही नहीं। लेकिन यह आलोचना शब्द समालोचना शब्द साहित्यिक समालोचना शब्द पहने नहीं थे। संपूर्ण साहित्य के लिए व्यापक थे शब्द काव्य काव्य संपूर्ण शास्त्र साहित्य द्योतक थे। क्षमता संपूर्ण शास्त्र है काफी शास्त्र कहा जाए में शास्त्र और वही दृष्टि कोनो कविता के गुण अवगुण पर चर्चा करबाक लेल जे शास्त्र बनल है तकरा कहल छै व्याख्या। हम देखबै व्याख्या टीका अनेक जते एक एक रचना पर अनेक टीका भेल छै अनेक व्याख्या भेल छै। ई सबटा ई व्याख्या छियै अर्थात समालोचना छियै। तैं सब एहिठाम से समालोचनो लिखे के परंपरा भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन है।
यदि पाश्चात्य विद्वान कही छथि नहीं छे कहाँ काटि दियो जे नहीं एहिठाम नाम खाली व्याख्या शास्त्र छे तत्वका अंतर छे और व्याख्या साहित्य समालोचना छी निबंधक परिभाषा हम सब क्योंकि ये मेरी रचना जो पुरस्कृत निबंध संग्रह है इसलिए उस पर कुछ कहना चाहते हैं। निबंधक परिभाषा कहा गया महत्वपूर्ण एवं नियोजित विश्लेषण संक्षेप में निबंध परिभाषा है जो महत्वपूर्ण बात एवं बात के नियोजित विश्लेषण कथन संभव है पढ़ल महत्वपूर्ण कोई के सोचल महत्वपूर्ण आ सोचल वस्तु लेखन के दोसर महत्वपूर्ण तीनों समन्वय एवं समाहार वैचारिक निबंध में रहे निबंध संग्रह में तीनों योग भेटे तीनों है निबंधक तीनों गुण है जो कहते निबंध संग्रह नहीं चीज से नहीं निबंध के तीनों गुण नहीं तो सूत्र प्रवर्तित करे सिद्धांत किंतु तीनों उत्स विद्यमान सूत्र और हमारे वैचारिकता और लेखन तो सब सभक रहे तीनों उत्स विद्यमान पाठक अवबोध में वृद्धि करे नाम रखल से संकेतन पुस्तक के नाम से बोध संकेतन इंडिकेशन टू अंडरस्टैंड एनी वर्क ऑफ लिटरेचर पाठक अवबोध में वृद्धि करवा में सहयोगी बने एक पथ पर चलब अत्यंत कठिन है दुर्गम है ये रास्ता बहुत पिछड़ है यही कठिनता कारण छात्र में से हो अल्पता से तुम्हारा रचना लिखे में अन्य साहित्य रचनाकार बेसी हुई है समालोचना कम है सब भारतीय भाषा का सब में समालोचना कम है अपेक्षा से और बेहतर हेबाक चाहिए यही कठिनता कारण छात्र में से हो अल्पता है कविता अथवा कथात्मक गद्य अत्यधिक लोकप्रियता कथेतर गद्य अल्पख्यात सहज थी यही कारण रचनाकारक संख्या अल्पता से वो देखा जाए संग्रह में अभिव्यक्ति ज्ञान चिंतन एवं अभिव्यक्ति समन्वय पाठक द्वारा पाठक अवबोध में वृद्धि करवा प्रयास देशों की निबंध पाठक पुस्तक एहन हेबाक चाहिए जैसे सब्जेक्ट प्राकृतिक संभव हो ईमानदारी घोषणा संभव हो एवं समाज के पाठक वर्ग के विश्वास उत्पन्न हो साहित्य हमारे बोध संकेतन में एक प्रयत्न अथवा कोनो सिद्धांत अथवा मानस करवा कोनो प्रयत्न अथवा न तकर घोषणा केवल सत्यता संकेतन है कोनो सृजनात्मक रचनाकार लेखन में अपन देते थे ये सब पाठक सामान्यतः नहीं बुझे रचना के नगद में किंतु जखन ककरो ध्यान सन्निहित उत्तमता पर जाय छै सचेतता विस्तृत अब दूसरा है तरह यह लिखिए why do we write anything कई पर गप हुई थे ये क्योंकि निबंध चीज हो वैचारिक निबंध डिसाइड करो लिखो आवश्यकता है भविष्य के ताके एक मिनट पहले कहलू कि आलोचना लेखक कम है आलोचना साहित्य कम है तय में हम हूँ एक अक्षर एक पोथी दो शब्द अगर दर्शक योगदान करके मात्र प्रयास करें भविष्यों पर एक लाइन कहे कथेतर गद्य भविष्य एक दू प्रकार देख सके
दो तरह से देख सकते हैं इसको। एक, क्या चाहते हैं, और दूसरी बात, क्या होने वाला। दो प्रकार देख सकते हैं, संभाव्य एवं काम्य। हम क्या कामना करते हैं, कैसी रचना होनी चाहिए, और क्या होने वाला है, संभाव्य क्या है, इस तरह से देख सकते हैं। संभाव्य भविष्य यह चलित रहा, यही समालोचना समालोचना मार्ग प्रशस्त यही होगा। लेकिन काम्य क्या है, काम्य भविष्य की विधात्मक समालोचना सशक्त रूप ग्रहण करे, मुराता है संकल्पित एवं संबद्ध रचनाकार के आवे पर। प्राय सब भाषा में यह स्थिति है। अधिक रचना तो गुण वैशिष्ट अवधारणात्मक अवबोध अपेक्षित कथन ओकरा समाजक समूह प्रस्तुत करो। कथेतर गद्य लेखन एक दोनों भाषा में रचनाकार में प्रतिभा एवं मेधा, प्रतिभा और मेधा के दोनों भेद अलग थे, दोनों से सब सत्य में ही हम लोग पढ़ते हैं अविधा समाजक प्रस्तुत कर पड़ते प्रतिभा में महाराज उपस्थित विद्वान और विदेशी लेखन के हम प्रणाम करते। धन्यवाद। धन्यवाद बासुकीनाथ जी। मैं आमंत्रित करूंगी मलयालम में पुरस्कृत श्री इंदी रामकृष्णन जी को। Professor Kumar Sharmaji, Vice President, Sahitya Academy, esteemed Sahitya Academy Award winning author, representing Indian languages and literature from all over India, eminent members of various councils and advisory boards of Sahitya Academy, invited guests, and ladies and gentlemen. I consider it a great honor to receive the Sahitya Academy Award for my work of literary criticism written in Malayalam, titled Malayalam Novel in the Deshakalangal. I've been a bilingual writer, writing in Malayalam, my first language, and in English, besides being a translator. Despite living outside Kerala for many decades, I pursued my writing in Malayalam with a sense of commitment and inner compulsion. This is because while writing in Malayalam, I have a sense of engaging with a dynamic community of readers and of being a part of the ongoing dialogue in a vibrant literary culture. In a language like Malayalam, where the readers are well read and familiar with the best works of world literature, a critic's job can be challenging. He has to immerse himself in the complex ecosystem of literary works rooted in the local culture, and also keep track of the larger universal concerns that inspire the author and animate the text. I prefer to write of those texts which deeply move me, and in interpreting them, I try to bring out how they make sense of the flux and flow of the contemporary life. I began writing in Malayalam in the early 70s, when Malayalam had entered its modernist phase. Modernist movement brought about a paradigm shift through its avant-garde styles of experimentation and innovative exploration of the subliminal layers of the human mind. Our assumption of what is literature came to these questions. I began writing against this background of
intellectual and emotional turbulence, when the relations between form and content, as well as the reader and the text, were being redefined. I wrote primarily to clarify issues for myself. My first book in Malayalam, Aksharavum Adhunikatayam, was noticed mainly for the way in which I interpreted the complex nature of the modernist text in Malayalam. In Kerala, in Malayalam, it is through literature that we debate issues in philosophy and sometimes in politics and sociology. Literature raises radical questions about existence, freedom, responsibility, self, society, and social justice. Critical discourse engages with the philosophical questions the literary text invokes. In English, critical writing never crosses the boundaries of the academy, but in Malayalam, it makes its presence felt in the public sphere. It participates in the setting of the social agenda of the times. I have greatly benefited by being a non-resident Malayali or a Pravasi writer. I often use works written in other Indian languages in discussing Malayalam text. In one of the English studies of modernism and Indian poetry, I did a comparative study of modernism in Malayalam, Marathi, and Hindi. Perhaps one of the very few books which crosses the boundaries of language in the study of poetry. This becomes possible because of the cosmopolitan elements inherent in Malayalam literary tradition. There was a time in the 80s when at least 10 very eminent Malayali writers were right here in Delhi. I can actually name a lot of people like O.V. Vijayan, Sedu, Anand, M. Mugundan, Paul Sakaria, Kakanadan, even Kamala Das. So lots of Malayali writers have lived outside Kerala, and this cosmopolitan idea of writing border crossing has also benefited me because I've been accepted as a mainstream critic despite being engaged in critical writing from outside Kerala. In my award-winning book, Malayalam novel in the Deshakalangal, I've closely examined the manner in which the form of the Malayalam novel has evolved through long passage from the late 19th to early 21st century. I argue that the novel in Malayalam and by extension, the Indian novel is not native content grafted onto foreign forms, as has been argued by some Western critics. The novelists of Malayalam have time and again fashioned their own unique novelistic form to investigate and also constitute the nature of Kerala's changing social reality. In my study, I invoke many novelists from other Indian languages, from Bangit Chandra Chatterjee, Tagore, and Pramchand, to U.R. Anantamurthy, Balachandra Nimade, and Maheshwara Devi. I find it heartening that this attempt to study Malayalam novel in relation to the larger context of Indian novel has been favorably received by the discerning readers of Malayalam. As the print culture gives way to the digital culture, literature, quote unquote, literature as we know it today is in for massive transformation. The task of the critic will become more demanding in the coming decades, as he will have to assimilate new domains of knowledge and experience. But his role, the critic's role, will remain crucial in negotiating the complex transactions
between the word and the world. Once again, I thank Sahitya Academy for bestowing this honor on me and making it possible for me to share some of my thoughts with this very august audience. Thank you. धन्यवाद श्री रामकृष्णन जी। इससे पहले कि मैं मणिपुरी में पुरस्कृत स्वरूप थाईवन रमन जी को आमंत्रित करूं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि कृपया आप लोग बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। हमने सिर्फ आधा समय तय किया है, 12 और लेखक है हमारे पास जिन्हें हमें सुनना है, तो प्लीज संक्षेप में अपनी बात रखें। Respected Vice President of Health Academy, all the awardees present here, and respected audience. My heartfelt welcome to one and all gathered here today. On this gracious occasion, I am privileged to deliver my speech in front of you all. It is my complete honor to be standing here and speaking to this lovely audience. I am incredibly grateful for this award and humbled by the recognition. My thanks, many thanks to Sahitya Academy and jury members for this. The family in which I was born had a cultural atmosphere. Grandfather, parents, and paternal aunts are all associated with music. They all are book lovers and also had a small library in our house. Inspired by my aunt, I started performing on stage at the age of 4. I recited poems and practiced recitation regularly. For recitation, I had to memorize many new poems by different poets. This is how I got myself assimilation with poetry. In the 6th, 7th, and 8th grade, I used to write poems just fun of it. At that time, I never thought that I would one day become a poet. My parents' inspiration and support have been the most pivotal factors in my writing in Manipuri. Tripura is a state with a mixed culture. Manipuris are a linguistic minority community in Tripura. Its population is only 6%. Therefore, the scope of this language practice in Tripura is limited only within the family. In Tripura, I had no opportunity to study Manipuri language and literature in schools or colleges. There was no way to buy Manipuri books in bookstores either. Today, 35-40 years ago, the communication system was also underdeveloped. So, collecting Manipuri books from Manipur was not within everyone's reach. I started writing in Manipuri in such an adverse environment because I believe that if I want to be absorbed in taking forward my society, culture, and language, then I have to write in my mother tongue. I got interest and proper knowledge about the history of Manipur, Manipuri language, society, and culture from my father. Besides, in the field of literature, the ideologies and philosophies of the poets who have enriched my mind and the consciousness are Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, and Jivanananda Das. My award-winning poetry book is Yachamba Nang Hallo, Evening You Go Back. In this title poem, evening symbolizing the approaching death. In human life, there are two types of death, physical death and
mentally bad. Neither of these deaths are desirable. However, if mental death occurs before physical death, then what greater misfortune can there be? So, in these 2 days of life in which we are hanging like a pendulum between birth and death, we must live for the sake of future generations. So, we must be absorbed in completing our work in life and making this world beautiful for the next generations. The central concern of this book is humanity. In this globalized world in ours, every aspect of human life and culture is becoming more and more complex and problematic. In this ever-changing continuum of the society and literary world, different ideologies and isms have always catered to the needs of time and humanity. If societies cultivated human values throughout the progress of human history, the need for such ideologies would not have arisen. Embracing humanity is the essence of being human. Therefore, each of my poems in this collection speaks of the larger purpose of life. In some of the poems, I have not only spoken of a pollution-free society, culture, and environment, but also of a pollution-free mind, thinking, and fearless life. Zero boundary concept is a unique feature of my poetry. There are these dividing lines of the world that create unease and discord between peoples. It creates imposed and artificial hostility and rivalry. This is completely anti-human. To transcend and ignore these demarcations and to open up the scope of art and literature, the new thinking of the zero boundary concept was expressed. This concept has opened up the scope of art and literature because this belief is not in favor of elimination but in favor of inclusion. The zero boundary concept is relevant in this time. Through this, we can achieve world peace and the undivided art and literature. In this field of poetry, this is zero boundary poetry. It is the demand of times. The zero boundary concept talks about globalizing art and literature. I believe that the zero boundary concept is the way to freedom from all kinds of discrimination in this world. Therefore, in this poetry collection, I have tried to capture the zero boundary concept. Thank you to all. बहुत धन्यवाद रमनी जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मराठी में पुरस्कृत कृष्णार्थ तुकाराम खोज जी को। कृष्णार्थ जी, आपका वक्तव्य बहुत लंबा है, वो 20 मिनट के आसपास लेगा, कृपया आप उनसे आधा कर दीजिए। मेरे साथ जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, वे देश भर से आए हुए विभिन्न भाषाओं के मेरे समकालीन लेखक, कवि और इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित आप सभी मान्यवर मित्रों, मैं महाराष्ट्र के समृद्ध माने जाने वाले कोल्हापुर जिले का वासी हूँ, पर इसी इलाके में आज भी कई निर्धन ग्राम बचे हुए हैं। ऐसे ही मुश्किल से 100 घरों के निक्कमवाड़ी नामक खेड़े के एक किसान और खेत मजदूर का मैं बेटा। जिस गांव के लड़के की जन्म तारीख मास्टर जी तय करते हैं, इसलिए मेरी कक्षा के सभी लड़कों की जन्म तारीख 1 जून थी, जो आज भी दिखाई देती है। किसी अक्षर का घर ही परंपरा में कोई स्थान न था, इसलिए साहित्य नाम भी कभी कानों पर नहीं पड़ा था। आगे मैं अध्यापक के रूप में कले विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज में नौकरी करने लगा
उस संस्था की लाइब्रेरी मेरी नजर आई और दरिद्रता में जीवन गुजारने वाला मैं इस धन की समृद्धि से अभिभूत हो उठा। वही मेरे लेखन का सामर्थ्य है, ये मैं जान गया। अपने पूर्व के साहित्यकारों का साहित्य पढ़ते समय मुझे इस बात का विबोध होता रहा कि लेकिन लेखक होने से ही हम किसी से श्रेष्ठ नहीं हो जाते। हम जो लिखते हैं वह लिखा जिनका है, उन्हीं में से मैं एक हूँ, मुझे इस पठन से सिखाया। मैं जिस कृषि संस्कृति में बढ़ा उस कृषि संस्कृति का बड़ा एक तत्व है, स्थिर जीवन अपनाओ पर प्रकृति की लय से छेड़छाड़ मत करो। पर वैश्वीकरण की रेलपल में इस सभ्यता का वर्तमान पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। किसान हमें या सरकार को जैसा दिखाई देता है उतना अकेला होता नहीं। उसके परिवार में मेढ़ों के पेट, कुत्ते से बंधे मवेशी, उसके कुत्ते मुर्गे, सारा सारी इन सब का एक बहुत बड़ा कुनबा शामिल होता है, जो उसका जीवन समृद्ध बनाता है। किसी समय की यह समृद्धि अब नष्ट हो चुकी है। उसके घर में चटपाटने वाले उसके इस कुनबे के जीव हमारे विचारों से दूर होते हैं। हमें केवल किसान दिखाई देता है, उसके जीने पर उसके इस कुनबे की गहरी छाव होती है। हम इसे देखने से चूक जाते हैं। जैसे जैसे उसके जीवन से एक एक छाव चली जाती है, उसका जीवन दुख काल बनता जाता है। हमें इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे कई जीव उसके साथ जी रहे होते हैं, वो उन्हें जिलाना चाहता है। ये जीव जो उसका जीवन होता है, अगर वह उन्हें जिला नहीं पाता है तो उसके भीतर का अपराध बोध उसे जीने नहीं देता है। न किए गए अपराध का दंड वो अपना जीवन समाप्त कर पाता है। आज ये अपराध भाव और किसी में बचा नहीं है, केवल किसान में बचा है। यही उसकी मौत का कारण बनता जा रहा है। हर दिन हो रही किसानों की आत्महत्या रुक जाने की खबरें रही। कब हमें सुनने को मिलेगी, कब वह दिन उगेगा, यह सब मुझे चिंतित करता है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन मनुष्य की रोटी कपड़ा मकान इन बुनियादी जरूरतों को की बात कर रहा है। अतिवृष्टि और अवर्षण से वैज्ञानिक ही नहीं, साधारण मनुष्य भी हार चुका है। और ये जितना सब कुछ सामने है, फिर भी आज हमारी अस्मिता को खाद पानी पहुंचने वाले कैसे कैसे सवालों का बड़ा किया जा रहा है। क्यों यह सब लोकप्रिय बनता जा रहा है, इसे भी समझाना होगा। अगर बतौर नागरिक हमें इस गैर से छुटकारा पाना है तो हमें विश्वास, श्रद्धा आदि मूल्यों का महत्व समझना होगा। हमारे संत साहित्य ने भी यही कहा था। संतों की नाड़ जन साधारण से जुड़ी थी, क्या ये नाड़ हमारे लेखन से अलग हो चुकी है? आज बतौर लेखक के खुद से पूछने का समय आ गया है। संतों की आवाज लोगों तक पहुंचती थी, आम इंसान उनकी भाषा समझता था। मुझमें ऐसी क्या कमी है जो मेरी आवाज, मेरी भाषा लोगों तक पहुंचती नहीं है? एक लेखक होने के नाते मुझे इस पर आत्मचिंतन करना होगा। विश्व की किसी भी भाषा में गंभीरता से साहित्य सृजन करने वाला लेखक जिस विचारधारा को शेष कर रखते हैं, वो विचारधारा जीवन के हित में खड़े होने की बात करती है। मैं इसे जगह की, इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मानता हूँ। मेरा विचार है कि केवल इंसान ही नहीं बल्कि हर किसी जीव के पक्ष में खड़ी विचारधारा विश्व के लेखक और चिंतकों की साथ की विचारधारा होनी चाहिए, बल्कि यही उसके चिंतन का प्राण तत्व होना चाहिए। हमारा वर्तमान समकाल अनेक अंतर विरोध से भरा हुआ है, इससे मैं किसी तरह से जूझता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर इस दौर का मुझे बोध है, उसकी ओर मैं आंख खोलकर देख पा रहा हूँ और उसके भीतर के मूल तत्वों को समझने की दृष्टि मेरे पास है, तो मेरा कहना सारगर्भित होगा, यदि संकट सच है। पर यह सारगर्भित कथन कैसे और कहां पर खड़े होकर करना होगा, यह हर समय में बहुत महत्व का रहा है। कई बार चीजें एक सी होती है, पर हर काल में वे अलग अलग ढंग से कही और सुनी जाती रही है। कहने की यह परंपरा हमारे लोक साहित्य में बहुत समृद्ध रूप से आई हुई है, जो मुझे अपने निकट जान पड़ते हैं।
किसी कारण भले ही रिंगान उपन्यास हो या मेरे संपूर्ण लेखन के बारे में बात करनी हो, हिंदी के वरिष्ठ कवि व आलोचक विजय कुमार के एक भाषण में प्रकट विचार मुझे अपने बहुत करीब लगता है। वो मार्ग मुझे अपना मार्ग जान पड़ता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर ही प्रवासन तथा विस्थापन का बड़ा रूपक है। मनुष्य अपने गतकाल, परंपरा, सभ्यता, भाषा, परिवार, स्वार्थ और उसकी जड़ों से विस्थापित हो रहा है। ये विस्थापन केवल इन सब का नहीं है, बल्कि यह विस्थापन मनुष्य की स्मृतियों का भी है। यह समय हमें प्रचंड ताकत से स्मृति भ्रंश की खाई में धकेल रहा है। कदम कदम पर आत्मसमर्पण के द्वार पर खड़ा कर देने वाला ही काल है। यह आत्मसमर्पण महाभारत के समय की तरह उससे भी अधिक सघन है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कई कारण है। अपने संतान के सामने ही वह घुटने टेकने पर विवश है। इस कारण वह खुद पर का नियंत्रण खो बैठा है। गंभीरता से लिखने वाला कोई भी लेखक इन सब की और मुख्यतः स्मृति के विस्थापन की पुनर्प्रस्तुति करता रहता है। वह विस्थापित होती और खोती जा रही आसपास की चीजों के साथ विश्वास और मूल्यों को अपने कलेज में लेकर भटकता रहता है। अपने आसपास के परिवेश में भरे असत्य विकृतियों और हिंसकता के बीच वह अपने मूल्य, विश्वास, आस्थाओं का अपनी स्मृति में जिंदा रखने की शक्ति को क्षीण नहीं होने देता है। मुझे मेरे लिखे से उपन्यास के माध्यम से विस्थापित, विखंडित हालातों में अपनी स्मृति बचाकर हमारे इतिहास भूगोल की तरफ, श्रद्धाओं की तरफ, मूल्यों की तरफ, मनुष्यत्व की तरफ और प्रकृति की तरफ जाने का मार्ग ढूंढना है। उससे निर्माण इस समय का संघर्ष क्या मैं पकड़ पा रहा हूँ, इसको देखना है। एक सार्थक कलाकृति हमारे भीतर के भग्नावशेषों के सत्य की पुनर्रचना करने या अपने अंदर के सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती रहती है। वह हमारे ही बीच अपने उपजी द्वंद से इस जीव सृष्टि में कहीं पर छुप कर बैठे किसी अधीन से पुराने ही लेकिन वर्तमान समय में किसी नए विचार को अनायास ही जन्म देती है। इस सब के लिए बतौर लेखक मुझे अपने आसपास का विखंडित प्रदेश ढूंढना होगा। इसलिए मुझे अपने लेखन में नाटक, कहानी, कविता और उपन्यास इन विधाओं का एक ही समय में समाविष्ट करना होगा। मेरा लेखन पूर्व निर्मित मिथकों से नए मिथकों का जन्म देने में सक्षम हो। पूर्व प्रचलित परंपराओं पर प्रहार करते हुए मुझे नए विचारों का सामने लाना हो। मैंने रिंगान के लेखन के दौरान इन संभावनाओं पर ध्यान दिया। इस अर्थ विस्थापितों का जीवन अपने लेखन में पा गया। यह दुनिया भर की विस्थापितों की कहानी है। मेरा लेखन पाठकों को एक ही समय में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक का अनुभव देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरे आज तक के लेखन की मूल प्रवृत्ति ट्रिप्टिक है, गावटान से रिंगान तक। ट्रिप्टिक में भले ही किसी उपन्यास के कथानक, पात्र या अनुभव का दूसरे उपन्यास के कथानक, पात्र या अनुभव से सीधा संबंध न हो, पर उन्हें आपस में जोड़ने वाला सूत्र निहित होता है। और यही विस्थापन का, विखंडित मूल्यों का और इस समूची भग्नावस्था से सत्य की पुनर्रचना करने का सूत्र है। मेरे लेखन की यह प्रेरणा है। मेरा मानना है कि लेखक किसी भी चीज के नष्ट होने की चिंता न करे, उस चीज के नष्ट होते जाने की प्रक्रिया की चिंता का वर्तमान रेखांकित करे। लेखक के रूप में मुझे इस क्षमता का विकास करना होगा। उपन्यास केवल यथार्थ नहीं बल्कि अस्तित्व की जांच पड़ताल करने वाली श्रेष्ठ साहित्य विधा है। आज के दौर में भले ही आधुनिक माध्यम कितने ही प्रभावी हो जाए, ऐसे अस्तित्व की पड़ताल करने वाला एक विशेष पाठक वर्ग हमारे बीच मौजूद है। वह ऐसे लेखन का निरंतर रास्ता देखता है। मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी के लिखने वालों की यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरे वे पाठक और लेखन का मेरा मार्ग शुक्र बनाने वाला मेरे परिवारजन, इनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए पुनः एक बार साहित्य अकादमी से प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उत्साह हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद प्रसाद जी, काफी समय ले लिया आपने। जब लिखा हुआ होता है, अपना लिखा हुआ, चाहे वो अपनी रचना हो या कुछ भी, तो बिल्कुल अपनी संतान की तरह से लगता है। और लगता है जो लिखा है हमने वो सुना जाए, पढ़ा जाए,
लेकिन समय की भी सीमा होती है और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे पास बहुत ही सीमित समय है। अब मैं आगे आने वाले लेखकों से अनुरोध करूंगी, कृपया संक्षेप में ही अपनी बात रखें, बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता है। अब मैं आमंत्रित करूंगी नेपाली में पुरस्कृत युद्धवीर राणा जी को। और उपस्थित सरदार जी फोन पे चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। सभा में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित सभी विशिष्ट साहित्यगण, अकादमी के सभी सदस्य तथा अन्य और निमंत्रित सम्मानीय सज्जनों, आप सभी को मेरा आंतरिक अभिवादन। आज मैं बहुत ही आनंदित हूँ, स्वयं को भाग्यवान और गौरवशाली अनुभव कर रहा हूँ। आज मुझे विश्वास हो रहा है कि हाँ, मुझे आपने अपने जाति, धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ योगदान देने में सफलता मिली है। वास्तव में मैं एक कलाकार हूँ। चित्रकला, काष्ठकला, भास्कर्य कला से रहकर मैंने जिंदगी गुजारी है। गीत, संगीत, नाट्य अभिनय, हास्य अभिनेता के रूप में भी मैं परिचित हूँ। बाल्यकाल से ही इन सब विषयों में सम्मत रहते हुए भी मैं स्पोर्ट्स और गेम्स में उतना ही जुड़ा रहता हूँ। भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी का अभ्यास और ज्ञान रखता हूँ। 100 मीटर और 200 मीटर धावक था। साथ ही मैं एक फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस का भी खिलाड़ी रहा हूँ। अंत में साहित्यकार के रूप में मेरा परिचय हुआ। असम के समय के बदलाव के साथ मैं भी बदलता चला गया। सन 1979 में असम में विदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। हमारे बहुत से लोग प्रताड़ित हुए, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी। तब मैंने एक लंबी कविता चिहान न पाए का तस्मा हरू रचना की। इसी कविता की रचना के बाद मेरा साहित्यकार के रूप में परिचय हुआ। अपनी जाति एवं संस्कृति की रक्षा और समृद्धि के लिए मैंने सन 2006 में नेपाली संस्कृति हाम्रो अस्तित्व की रचना की। इस पुस्तक अति मूल्यवान सिद्ध हुई। एक दिन एक भाई ने मुझसे कहा, भैया जी आप तो बूढ़े हो गए हैं, हमें नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति के विषय में जानकारी कराइए। उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस विषय पर लिखना शुरू किया। वास्तव में साधारण लोग और इस समय के बच्चे आधुनिकता के बदलाव में बदलते रहे हैं। हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कार, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए इसे बचाने के लिए, या यूं कहें कि हमारा अस्तित्व रक्षा के लिए इस पुस्तक की रचना हुई है। इस पुस्तक में लोक साहित्य की परिभाषा, इसकी आवश्यकता, विशेषता और
इसके महत्व का विश्लेषण किया गया है। इसमें लोक का अर्थ लोक साहित्य और लिखित साहित्य क्या है विशेष रूप से दर्शाया गया है। लोक साहित्य का वर्गीकरण, लोक कविता, लोकगीत, सामान्य गीत आदि का भी विश्लेषण किया गया है। लोक गाथा, लोक कहानी, लोक नाटक, लोक नृत्य आदि की परिभाषाएं, व्याख्या, उदाहरण आदि से पाठ्य पुस्तक की तरह सजाया गया है। इसे किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी पाठ्य पुस्तक के रूप में तौर पर रख सकते हैं। इसमें उखान अर्थात मुहावरे, गांव खाने का था अर्थात प्रहेलिकाएं और वाग्धारा आदि के विषय में भी विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यही इस पुस्तक की भी विशेषता है। इस पुस्तक को सही मानकर साहित्य अकादमी ने 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मुझे निर्वाचित किया गया है। मैं अति आनंदित हूँ। इसके लिए साहित्य अकादमी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। चयन समिति के सभी निरीक्षकों को पुनः आंतरिक धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको भी। मैं आमंत्रित करूंगी ओडिया के लेखक आशुतोष पंडा जी को। I am the Vice President of Science Academy, fellow writers, ladies and gentlemen. It was great honor for me receiving the Science Academy Award 2023 for my Odia poetry collection of Prastuta Mrityu. I'm very much thankful to the Academy and the jury members for considering me eligible for this award. I have already felt that poetry is an artistic transformation of reality. And in that way, the poems of Prastuta Mrityu, which means unprepared death, attempts to explore the reality that surrounds us. They portray various aspects of struggle of human beings and their aspirations in a complex world. In the first poem of the book itself, a deep concern is expressed for the planet Earth. It is facing man-made crisis and whose resources are exploited mindlessly. The poet therefore asks for forgiveness from all because he is also guilty, being inhabited on the earth. A number of poems in this book put forth the poet's inner struggle and turmoil in face of hostile situations and his intense desire to overcome them. And he puts faith on the power of poetry. While social issues like plight of migrant workers, suicide of farmers, abuse of women, etc., find place in the book, pictures of death appear in many poems. Be it death of a Mahatma or ordinary man, death of malnourished children, murder of a girl for opposing liquor mafia, suicide of a student, the last breath of proud poets, and in many other instances, death arrives in different guises. It is not just vanquished flesh and blood. It is also death of dreams and possibilities. Death here turns into a medium, an indicator for exploring, understanding, and interrogating the cruel reality. But under the hanging shadow of death, one can see the struggling people determined to survive against all odds as depicted in many other poems. At one place it is said,
These people must not be underestimated. Their survival is like that of millions of trees standing in a desert. They uphold the glorious life and protect the future of the earth. In the face of their unlimited spirit, death retreats. In the last stanza of the title poem, After to Come With You, the protagonist says, "Now that you tell me to die, how shall I? Death is yet to be prepared to catch hold of me. Even if I hang with a rope around my neck, neither the noose nor the branch can bear my weight." As regards my literary experiences, I developed a fascination for poetry at an early age. Though I was reading a lot of poems, I was unable to write one. Poetry appeared to me as something magical and extraordinary. I used to contemplate how a poem was written, how were its ingredients, and how that was its process. Even now, such questions haunt me. Even now, I feel surprised how I can write poetry, how I could write poetry and got the identity of a poet. I wrote my first poem when I was in class 9, and in due course, one of my poems was published in a school magazine. Later on, when I was a student of intermediate science, a few of my poems are published in the college journal, earning some appreciation. In the subsequent years, while taking up an engineering course, doing PhD work, and joining a profession of scientific research, I have not alienated myself from poetry, nor poetry has ever abandoned me. Even when academic professional pressure hindered my writing, I could continue reading poetry of different languages. The poetry of my mother tongue Odia has a long history, starting with its most ancient form in Charyapada, the Buddhist poetry of 17th to 10th century, to the Odia Mahabharata of Sarala Das and the verses of Bhakti tradition. Odia poetry reached its first phase of modernity in the second half of 19th century. In the preceding and post-independence era, the poets of patriotic, progressive, romantic, and modernist streams contributed to the progress of Odia poetry. Since my school days, I had the opportunity to read the works of many eminent poets and of this era, and was quite greatly inspired by the beauty and grandeur of their poetic vision. My first book of poems, Likta Yatana, The Combined Suffering, published in 1972, was a joint venture with a poet friend. The next book is Sita Krodha, The Cherished Wrath, containing my poems only, was brought out in 1987. I cannot say that the time elapsed between the making of these two books was fruitless. Rather, it was a period of evolution when I strived to arrive at my poetic diction. Sita Krodha won Odisha Sahitya Academy Award for 1990. Thereafter, my poetry collections have come out at regular intervals until Approach to Society, published in 2020. Once somebody asked me, what is the purpose of my poetry? I could not provide a ready-made answer then. Maybe poetry has a purpose, but can it be written with the intention of getting recognition or for propagation of any ideology? I have always understood poetry as a journey into humanity, into history, as a never-ending search and an expansion beyond one's own self. Therefore, I have endeavored to relate myself to people through my poetry, try to comprehend through it the world around me, and in that process, try to understand myself. I realize my efforts have not gone in vain. Thank you. थैंक यू आशुतोष जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी पंजाबी में पुरस्कृत स्वर्णजीत समिति को। सामने बैठे सारे सत्कार अवार्ड राइटर तो मेरे
दोस्त, मेरे रहनुमा, मैं 5-7 मिनट तक अपनी गल करांगा। या, it's okay? कविता आईना है बदलते समय। उस दौरान हुंदी हर क्रिया, हर वर्तारा कविता दे hunगारे, सवाल, चिंता का हिस्सा हुंदा। अंदरूनी ते बाहरी हर तब्दीली कविता की संवेदना की जद चाहती है। बदलते समाज दीयां तब्दीलियां प्रति hunगारा ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ सवाल करना मेरी कविता का खासा है ते कर्तव्य। मैं कुछ मेरिया कविता दीयां लाइन्स ने नाल लगाम जे तेरे हाथ है, लगाम जे तेरे हाथ है, फिर किवें सिखाओगे नैतिकता, निर्लेपता। क्यामत लई वरतना जनरेटिव AI की सिरजक समर्था नूं जंग च दुश्मन दे हर घर दे हर पत्ते ते लाउणी घात जे तेरे हाथ है। जे तेरे मन च ਝੋਲ है, किहड़ी नैतिकता सिखाएगा। जे तेरे मन च ਝੋਲ है तो किहड़ी नैतिकता सिखाएगा। हरबोरा ते कंपास तां तेरी नीयत दे गुलाम ने। आदि काल तो तुरदी तब्दीली दी लड़ी विच हुण आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, रोबो न्यूडल नोड्स ते एल्गोरिदम्स ने नवां आयाम जोड़ दिता है, जो मनुखी मन लई नवीं संभावनावां ते चुनौतियां का मसला बन गया है। रोजमर्रा की जिंदगी, रोजगार, चेतना, निर्लेपता, नैतिकता ਅਤੇ संचार के नवे सवाल पैदा हो गए। भारतीय साहित्य अकादमी वालों पुस्तक मेरी काव्य पुस्तक मन की चिप इन्हां स्थितियों के सन्मुख hunगारे ते सवालों का काव्य संसार सिरजदियां तब्दीली के सन्मुख खड़दी है। पंजाबी, पंजाब ते संसार पद्धर ते कविता तब्दीली के हर पल प्रति संवेदनशील होंदी है। पहाड़ों उत्तर सिंध दियां वहदियां लहरां दुआले मगदियां धूणियां, पहाड़ों उत्तर सिंध दियां वहदियां लहरां दुआले मगियां धूणियां, शलोकां, सूक्तां, रचावां दियां फैलियां महकां, शलोकां, सूक्तां, रचावां दियां फैलियां महकां, वेदां ग्रंथां दे फलसफे सजाया, शब्द दी ताबिया बैठा, शब्द गुरु दा चिंतनी संसार। मेरियां रगां च वसदा पंजाब, वेदां तो हुण तक बोली जाती पंजाबी अपने हर रंग रूप से। चिंतनी कविता के कारण शायद साडी जिंदगी की कंपलैक्सिटी विच साडी जिंदगी, समाज, आले दुआले दे मसले, रिश्ते, जीवन का गुंझलदार होंदे जाना, अनिश्चितता का वधना, मनुखी जिंदगी का हाशिए वल धक्के जाना, पाड़े का लगातार वधी जाना, मानसिक पीड़ा का गहरा होई जाना, आर्थिकता, बेरोजगारी ते होर अनंत जहे मसले ने जो होर पेचीदा हो रहे। इस पेचीदगी को समझना, पेश करना, मैनू लगता कि कविता का रूपाकार भी बदलेगा। मनुखी मन जिज्ञासा का सागर है। मनुखी मन जिज्ञासा का सागर है। आपकालीन सवाल, मैं की हाँ, मैं क्यों हाँ। आपकालीन सवाल, मैं की हाँ, मैं क्यों हाँ, नाल 2-4 हुंदा है पूरे इतिहास, पूरे इतिहासिक प्रतीक विच। कवि के तौर पर मैं भी सवालों च घिरा रहना, कवि के तौर पर मैं भी सवालों च घिरिया उलझिया रहिंदा हाँ। ये सवाल परंपरा, इतिहास, मिथिहास दे टिमकदे तारियां दी सदियां लंबी कतार वांग ने मेरे तक पहुंच गई। इसकी एक्सप्लोरेशन ही कविता बनती। इसे दौरान काव्य मेटाफर किते क्रांति है, किते देही है, किते मौत है, ते किते ज्ञान की तलाश। कविता बहुत बार अजिही चुप च उभरती है कि रचना मेरी जात, मन ते कायनात दे
ਦੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਮਕਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂ ਕਾਸਮਿਕ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੌਤ, ਪਿਆਰ, ਪੁਰਖੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੰਗਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸਭ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦਿਸ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਨ ਵੀ ਉਸ ਅਦਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨ ਚ ਬੇਵਲਤਾ ਛਟਪਟਾਹਟ, ਕੰਪਨ ਚ ਬੇਵਲਤਾ ਛਟਪਟਾਹਟ ਧੁਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਚੰਭੇ ਚ ਆਨੰਦ ਚ ਵਰਤਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਰਸ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਆਯਾਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲ ਵਹਿਣਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਦੀ ਗਹਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਕੰਬਣੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸਰਾਬੋ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ। ਤੇਰੀ ਕੰਬਣੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸਰਾਬੋ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ। ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦੀ ਐਵਰੈਸਟ, ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤੀ ਜਲਾਓ। ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ, ਆਨੰਦੀ ਤੋਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਂਦ ਨਾ ਲੋਰ। जिस तो बिना न कथ न सच न होंद न लोभ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समंजी सभी जी। अब मैं राजस्थानी में पुरस्कृत गजय सिंह राजपुरोहित जी को आमंत्रित करूंगी और आपसे आग्रह है कि आपका बहुत लंबा है, इसको बहुत छोटा कीजिए। 7 या 8 मिनट से। थैंक यू। सब तो पहला तो मंच पर विराजमान आदरणीय सुमोद जी शर्मा, उपाध्यक्ष साहित्य अकादमी और हाजरीन जलसारा अध्यक्ष, सभी विराजमान साहित्य अकादमी सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित आप सब विद्वान। मैं हमारी बात संक्षिप्त में रखूंगा, जो मंच में आदेश हुए है कि घोर घणो अंधार ज्योतियों को धरती, समुद्र भरे उछाल लहर में कुण तिरसी, बैठी टांग पसार हाँपती जिंदगानी, मौत बने मिजमान सरबरा को। मौत तो स्वागत एक रचनाकार की तरह करे, और वो अगर प्रेमनी रचनाओं लिखे तो उन्हीं बात में मैं हमारी बात लिखकर लाया हूँ, बस संक्षिप्त रूप में पढ़ने चाहूंगा आपके सामने में। भारतीय भाषा साहित्य रे जोड़ा जोड़ उभो राजस्थानी साहित्य आज आखी दुनिया में आपरी न्यारी और उजवी ओळखाण राखे। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति माथे आखी दुनिया ने अंजस है। मारो सौभाग्य है कि इन वर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली रो साहित्य अकादमी सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार 2023 मारी राजस्थानी काव्य कृति फलक कृति ने मिली। मैं साहित्य अकादमी रो अंतसु घणेमान आभार ज्ञापित करूंगा। મને મારી માઈડ ભાષા રાજસ્થાની માંથી ઘણો ગુમે છે। मैं मारी पूरी बात मारी माइड भाषा राजस्थानी में कह सकूं, पर साहित्य अकादमी रा कान कायदा मुजब मैं मारी बात हिंदी भाषा में रख रही हूं।
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय परम सम्माननीय श्री माधव जी कौशिक, उपाध्यक्ष कुमुद जी शर्मा, सचिव के श्रीनिवास राव, राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल का संयोजक परम श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण, उपस्थित विद्वतगण, मातृ शक्ति अर्थ नहीं साथी। सबसे पहले साहित्य अकादमी द्वारा चयनित सभी भाषाओं के विद्वान रचनाकारों को हार्दिक बधाई, जिनको अपनी मातृभाषा में साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। निसंदेह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी काव्य कृति पड़ती प्रीत के लिए इस वर्ष का साहित्य अकादमी का सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार घोषित हुआ। यह पुस्तक राजस्थानी भाषा साहित्य के ख्यातनाम कवि आलोचक डॉक्टर अर्जुन देव चारण को समर्पित की गई थी। इसलिए पुरस्कार की घोषणा होने पर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर अर्जुन देव चारण को ही यह पुरस्कार समर्पित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। मुझे कविता लिखने का शौक तो बचपन से ही था, मगर कविता कर्म का मर्म मैंने डॉक्टर अर्जुन देव चारण के सानिध्य में आने के पश्चात ही सीखा। एक रचनाकार जब कुछ नया सृजन करता है, उस सृजन पर पाठक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तब वो यह जान पाता है कि उसने क्या लिखा। मगर मैंने अर्जुन देव चारण के सानिध्य में क्या सृजन करना है, इसके साथ साथ यह भी सीखा कि क्या नहीं लिखना चाहिए। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि कविता कवि नहीं करता, बल्कि कोई और शक्ति है जो उस कवि से करवाती है। अतः मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे अर्जुन देव चारण का सानिध्य मिला। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। राजस्थानी काव्य कृति पड़ती प्रीत के निर्णायक मंडल में निर्णायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थानी भाषा के वयोवृद्ध रचनाकार श्री शिवराज जी छंगाणी बीकानेर, प्रतिष्ठित कवयित्री किरण बादल और प्रतिष्ठित राजस्थानी विद्वान अर्जुन सिंह उज्ज्वल जालोर का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पार की नजर से साहित्य अकादमी के नियमानुसार अपना निष्पक्ष एवं सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मेरी काव्य कृति पड़ती प्रीत का चयन किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। राजस्थानी काव्य कृति पड़ती प्रीत से पूर्व सन 2006 में मेरा पहला राजस्थानी कविता संग्रह जसरा आकर प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात राजहंस, आत्मदर्शन, राजपुत आदि काल से आज तक राजस्थानी साहित्य सौरभ, उमरदान लालस आदि कृतियों का प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही सुजा शतक, अंजस, साहित्य सुजस, अंजसरा आखर, वीर दुर्गादास राठौड़, परिसर, राजस्थानी लोक देवी देवियां, परंपरा और साहित्य देख, राजस्थानी हिंदी मुहावरा कोश, राजस्थानी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश कोश का भी मैंने संपादन किया। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की समस्त विधाओं में निरंतर साहित्य सृजन किया जा रहा है। इसमें गद्य के अंतर्गत उपन्यास, निबंध, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग्य, आलोचना, डायरी, नाटक, लघु कथा है। वही पद्य में छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं लिखी जा रही है। इसी श्रृंखला में राजस्थानी काव्य कृति पड़ती प्रीत मध्यकालीन राजस्थानी प्रेमाख्यान पर आधारित आधुनिक भावबोध एवं मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण एक प्रबंध काव्य है, जो एक नई सृष्टि तथा काव्य संग्रह है। इसमें मध्यकालीन राजस्थानी नहीं बल्कि गुजरात, मालवा और सिंध प्रांत के प्रसिद्ध राजस्थानी प्रेमाख्यानों को पहली बार प्रबंध काव्य के रूप में रचा गया है। इन प्रेमाख्यानों में जेठा उजली, बागो भारमली, श्रेणी बीजानंद, आबलदेव खिमजी, नागजी नागवती, जलाल भूखना, सोरठ बींजो, कहर कंवर, ढोला मारू, नरबत सुप्यार देव और मूमल महेंद्रो सम्मिलित है। असल में प्रेम इस सृष्टि का सबसे पवित्र एवं अनमोल सृजन है, जिसके समान कुछ भी नहीं है। प्रेम प्राणी मात्र को ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च उपहार है। प्रेम मानवता का पर्याय है। आज के इस युग में, आधुनिक युग में पूरी दुनिया को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वह है प्रेम। प्रेम के बगैर दुनिया का अस्तित्व नहीं रहेगा। अतः प्रेम का यह निश्चय भाव मनुष्य मात्र में बना रहना नितांत आवश्यक है। असल में काव्य कृति पड़ती प्रीत का सृजन मैंने कोरोना काल में किया था। इस काव्य कृति सृजन के दरमियान मेरी धर्मपत्नी गजेश्री राजकोट, पुत्र मानवेंद्र सिंह एवं पुत्री सुप्रभा का भी स्नेह सहयोग रहा। इसके लिए मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। पुस्तक प्रकाशन के पश्चात राजस्थानी भाषा के अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों, युवा लेखकों ने इस पुस्तक को लेकर बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक समीक्षाएं टिप्पणियां की। प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर ही लगभग 25 से अधिक ज्यादा पत्र पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं प्रकाशित हुई। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी अनेकानेक विद्वान रचनाकारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। मुझे खुशी इस बात की है कि कोरोना काल जैसे नकारात्मक समय में भी साहित्य जगत के तमाम रचनाकारों ने इस पुस्तक पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। यह सब प्रेम का ही प्रतिफल था।
अतः प्रेम आज भी शाश्वत है, जो आपको कठिन से कठिन समय में भी जीवन जीने की सही राह दिखाता है। मध्यकालीन समाज की ये प्रेम कथाएं अपने आप में अद्भुत है। प्रकृति के बेहद करीब इन प्रेम कथाओं में अनेक मूक प्राणी भी हैं, जो मनुष्य के साथ सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, जो मनुष्य मनोगत जानते हैं, उनके साथ उनकी क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता निभाते हैं। लोक वाद्य के बगैर ये प्रेम कथाएं नीरस मानी जाती हैं। राजस्थानी रंग में रंगी इन प्रेम कथाओं में अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी मिलता है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। राजस्थानी में सुखान एवं दुखान दोनों प्रकार के प्रेमाख्यान मिलते हैं, मगर आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी नायक या नायिका प्रेम में अपने प्रेमी से जीतना नहीं बल्कि हारना चाहता है, और इसी हार में उसका सच्चा प्रेम निहित है, जो उन्हें नव जीवन प्रदान करता है। इसी काव्य कृति का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राजा जी राज करणो सोरो पण घर बसाणो तोरो, भुजबळ ताकत सु भगत जुग दी सको परणे तरी प्रीत नी, परणे तरो मन जीतण सारू घुमेज त्यागणो पड़े, खुद ने खुद सु हारनो पड़े, इन्हीं हार में जीवन री जीत है, जलम जलम री पवित्र सीत है। उमादे इन्हीं कारण राख्यो आखी जून रूसणो एक खुद सु हारो वा खाने जन्म जन्म जीता। थैंक यू मैम। उनका आदेश है, उसकी अनुपालना में एक बार पुनः आप सभी को बधाई। विगत कई 10 वर्षों से साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न साहित्यिक आयोजनों में सहभागिता निभाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक डॉक्टर अर्जुन देवचारण और पूर्व संयोजक वरिष्ठ राजस्थानी रचनाकार श्री मधु आचार्य आशावादी का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। और अंत में एक बार पुनः साहित्य अकादमी के सभी पदाधिकारियों सदस्यों का आभार। आप सबको पुनः बधाई। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और एक छोटा सा मेरा निवेदन है, एक पुस्तक पढ़ के प्रीत में आपको सत्य भेंट करना चाहता हूँ। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गजय सिंह राजपुरोहित जी। आपने आमंत्रित करूंगी संस्कृत में पुरस्कृत अरुण रंजन मिश्र जी। Esteemed chair of this session, Dr. Sharma and my friends, in one sentence rather, thank you Sahitya Academy for this award to me. Thank you very much. Actually, I have a very short presentation that was made previously, but I will reduce it to 50%. Therefore, I may end up in 5 minutes, we can say. So, so far as this Sunni Meghaganam, my poetry book in Sanskrit is concerned, it is probably considered, because it was a postmodern poetry in Sanskrit. In many essays, scholars have accepted beginning of postmodernism in Sanskrit literature. In 2018, when my first book, Tavagavadhara Manmaya Rekhasu, was published. And, but in my opinion, the hidden elements of this trend was very much there in the writings of Professor Srinivas Rath, Abhiraj Rajendra Mishra ji, Professor Radha Vallabh Tripathi ji, Professor Keshav Chandra Das ji, Dr. Hasdev Madhav, etc. Actually, they inspired me to write and develop this trend in Sanskrit. I have learned a lot from the literary world created by these distinguished writers, poets. I rather humbly confess that I have given more time and energy to the teaching and research activities in Sanskrit in the Department of Sanskrit, Pali and Prakrit in Vishwabharati, Shantiniketan, West Bengal.
But I love to write poems in Sanskrit, although previously I was writing in Odia. As I said yesterday that I had 8 Odia poem collections and 2 Odia mini story collections. But now I love to write poems in Sanskrit. It was a pleasant surprise to learn that the highest jury members in the Sanskrit language section of Science Academy have chosen my third collection of Sanskrit poems, Sunni Meghuganam, for the Academy Award 2023. I sincerely thank and pay my namaskar to those honorable members such as Dr. Hasdev Madhav, Professor Rama Surya Narayan, and Professor Kameshwar Suklaji, and of course to the celebrated poet Professor Hare Krishna Satpathy, who presided over the meeting as the convener for their decision in the favor of my book. Sunni Meghuganam is a postmodernist collection of Sanskrit poems that delineate the sentiment of loving separation while portraying a rich society where emotions dry up in a standardized life and work pressure, career-induced separations, split families, loneliness, and breakups put question marks on the meaning of man's existence. It depicts a gradual loss of individuality in the absence of the real other in life. It discovers that all the overt songs of life shall remain in the unintelligible void. That is Sunni Meghuganam. As long as we live in the spell of a foreign culture and civilization. The goal of poetry is not just to give injunctions, but it visualizes the future of a society through its artistic criticism of life and existence in the present time without predicting anything. Sunni Meghuganam has done exactly that. It has hundreds of phrases like night blind dewdrops, rain dreams, poem unintelligible like my existence, darkness of mind extinguished with a strange light, lonely darkness, silence made up of clay, flame pollens of lotus, indisciplined deer of war, pulverized derision, dim dreams of a child, blind history of life, beaten by water drops, illiterate storm, laughter of Harappan bricks, and many untraditional metaphors, images, and adjectives, etc., which might have attracted the attention of wise readers. That is what I wish to say at present, and I said about me and my poetic life yesterday, so I don't want to linger here on the dais. Thank you very much. Thank you, ma'am. बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी संथाली में पुरस्कृत तारा सिंह बास्की जी। Respected chairperson, honorable guest, multilingual award winner, renowned writer, and other referred guests, wish you all the warm welcome. I am very happy to be here as Sahitya Academy Award winner. Today, I am going to tell the history of Santali language. As you know, Santali language is a very primitive language. It belongs to the Mundari branch of Austic language. It is a rich language. Santali speaking people live in some states of India, West Bengal, Bihar, Odisha, Tripura, Jharkhand, Assam. Besides, many Santali speaking people live in Bangladesh, Nepal, and France. In this respect, Santali language is an international world language. In the past decade, the Santali language was neglected and ignored by many. But now it is widely used and got our constitutional approval in the 8th schedule.
The folk literature of this language is very rich, vast, and prosperous. In the British period, the missionaries come to know that it was the language of Adivasi. So they used the language to propagate Christianity among Adivasi people. There were many missionary writers all over the world who used to prefer this language for their writing. Among them, Reverend J. Phillips first wrote in Santali language. In this connection, I can mention the name of Reverend Alois Crestwood, Reverend A. Campbell, Reverend P.O. Gooding, and Dr. James M. McFile. They were remarkable in the field of Santali language. I pay deep homage and tribute to them. If we see, there are many Santali writers from our community. They showed their talent to readers. They are doing their strenuous job of writing to uplift the language from the darkness to the light modern civilization. They are revered for their tireless efforts. In this respect, I can mention the name of some notable Santali writers. Their achievement is remarkable in the development of Santali language. Maji Ramdas Tudu Reska, Sadhuram Chand Murmu, Pandit Raghunath Murmu, Mongol Chandra Turkulumong Soren, Sarda Prasad Kisku, Narayan Soren Sodesutam, Bal Kishore Baske, Babulal Murmu Adivasi, Bhoirabandam Rotika are the brightest stars in the sky of Santali language and literature. I also pay my deep tribute and homage to them. Now I am going to deliver a brief sketch on my life, how I came here from an interior village somewhere in Banpuria in the district of the then undivided Mernapurna Jharkhand. In 1982, when I was in class 9 standard, I wrote first in the school magazine. This was the first exposition to the world of writing. Everybody appreciated me then. Years passed, I grown up to be college student. In 1989, my writing first were published in a Santali literary magazine named Remil. It gained huge reputation, and from then I have been being acquainted with other renowned Santali writers who inspired me to enrich our language profusely. The first book of mine was published in 1993, and first story book entitled Dular Maya was published in 1999. But till today, many more books and stories have not been published yet, and I am trying to publish them very soon. The name of short story collection is Javabaha, for which I was selected as an awardee, and in which there are 20 stories are there. Most of the stories of Javabaha is based on the love theme. Most of the stories are related to the real world of our life. Socio-economic matters are highlighted here. Moreover, the effect of extramarital affairs have been pictured here very beautifully. It became a fatal disease like cancer in the present society. Many more have been suffering from this fatal socio-economic complex culture condition. The stories in it teach morally degraded person how to escape from such harmful effects
of extramarital affair and to be a good and well-defined person. I think this is the success of this story. I also pay my deep respect and gratitude to the President of Sahitya Academy, Honorable Sri Madhav Kaushik, and the Secretary K. Srinivas Rao. All press media, dignitaries, and the scholars are greeted with reverence. Thank you, everybody. धन्यवाद तारा सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी सिंधी में पुरस्कृत श्री विनोद आसिदानी जी को। विनोद जी, आपसे भी आग्रह है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें। My parents, late Hamdal Dasji, late Ashmi Devi, my younger sister Usha, my wife Arati, my children Asta, Vinay. Apart from this, my two great teachers, late Arjun Hasid and late Vasdev Mohi, and my friends, Mohan Gintani ji, convener of Sindhi. Just I will mention 7 important points, seven factors you can say, which have shaped my creativity or the creative process. In the first place, general influences, and why I want to mention these 7 points. If you look at my poetry, especially in the last 3-4 collections, their poems are highly complex and multi-layered. So let me explain where does this complexity come from? Where does this multi-layeredness come from? I have been influenced by a wide range of influences. On the one hand, Western traditions of the creativity, right from Shakespeare, T.S. Eliot, and W.B. Yeats. On the other hand, 3-4 literatures of India have influenced me, right? Bengali literature, Rabindranath Tagore, and Hindi literature, right from Premchand to Jayashankar Prasad, and then my Sindhi literature, right from Shah Abdul Latif and classical poets down to the contemporary ones. Because of this complexity of the influences, my poetry tends to be complex. Number 2, my parents, especially my mother, because I could not read Sindhi literature, she would read out Sindhi books, especially published in Sindhi script, because even my brothers and sisters did not know that script, right? So she read out in 15 years for more than 500 books, and that connected me to the rich tradition of Sindhi literature. So this is the second important point that has shaped my creativity. The third one, I am not amateur poet. I call myself highly committed poet, one who has systematically studied the techniques and nuances of the art of the poetics. I opted for English literature. I did my master's and the PhD. So by training, by orientation, I am poet. This is the third important influence. Fourth influence is the complexity of the interpersonal relationships. There are certain merits, but in the present times, interpersonal relationships are constantly collapsing. They have become fragmentary, slippery, and punctured. So this agony that arises out of the interpersonal relationship, by and large, has shaped the canvas of my poetic output in my ghazals. So the fifth influence is punctured socio-political system, because when the personal relationships fail, poet looks up to the system, be it social system, be it cultural system, be it political, economic system. So the conspiracy of the capitalism, the state, and the punctured social system
has disillusioned me, my inner poet. The poet who sits within me is highly disillusioned with this constant collapse and punctured system. And that has imparted a kind of restlessness, a kind of, agony, some voice which is constantly searching for the social justice. So this is the fifth factor. The sixth one is, now try to understand, when you fail, when you get disillusioned with the personal system, the personal interpersonal relationships. Secondly, when you get disillusioned with the socio-cultural system, the last hope comes from the cosmic powers, right? And when I try to critically look at cosmic powers, again I get disillusioned, because I cannot say with Browning that God is in the heaven and everything is fine on the earth. No, I cannot. I have expressed this my profound discontentment with the cosmic orders, that many people in this cosmic order, without their any fault, having put to undue troubles. And I have expressed myself in a couplet. समी पर घर खुदा तेरा घर होता, समी पर घर खुदा तेरा घर होता, मेरी तरह तू भी दर बदर होता, मेरी तरह तू भी दर बदर होता. So this is the sixth. That means, in a nutshell, I am disillusioned with the personal, social, and the cosmic orders. Now the seventh point comes, which is very important in my creation. Now, with all these disillusionments, with all these ironies, with all these inconsistencies, with all these punctures, where shall the poet within me go? Then I, with a great pain on my shoulders, with a great agony hovering around my heart, I try to reconstruct. I try to reconstruct poetically, imaginatively, the disturbed order, that everything is not well in the Denmark, as Hamlet says. The times are out of joint. Oh, curse this pride, set it right. So this is the poet within me who calls upon me to set the orders right, but poetically, because aesthetics, art are the limitation of mind, and therefore the twin values. If you critically look at the entire body of my poetry and the fiction, you will find that the twin values, that is love in personal domain and peace in the collective domain, must be there. There is no other refuge for the burning mankind. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी. मैं आमंत्रित करूंगी तमिल में प्रस्तुत एन राजशेखरन जी को. Thank you very much. I could not speak in first. I could tell my gratitude to Guru Chitta Bharati, my elder writer in Tamil, legend Tamil. I could not speak in any Tamil. Actually, almost I was in trouble. My no, I could not speak. Please forgive me. I will tell you something. Thank you. बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी पत्नी उनकी बात रख रही.
It was the first wave of corona and the world was panic. Everyone was panic. No one was able to move. I stayed home. I started my planning to write my third novel. I thought the novel would be about my ancestors. I remembered my mother and her elder sister. I remembered her uncle. I didn't have a have the chance to write about that novel with unfinished pages. I couldn't escape from panic. It resulted in backup in midnight. I went to the stage of not sleeping. Then I tried writing the novel. I started writing when my wife and the children were in a separate room. Surprisingly, I could remember about them. They started glowing like bright sculpture. I was thinking about my ancestors. I was searching for the places where my mom and Paul Wonson lived the houses away. That village was negated. I stones in the walls were broken. I was started when I saw the people lived in abandoned village as the unknown's organ. And old man was found. I talked to him. Fortunately, he recognized us. With the help of my friend, I walked on the daylight tip of the village, which lizards were on the wall. I visited the village again and again. I wanted like no one on the abandoned street. When I reached home, I saw Karu uncle, Sausama and my mom and her sister, Serima. Karu uncle had an elder sister and two younger sisters. Karu uncle's sisters were assisting for their father who was a Kuti novice. But later their mother died and father was stunned. He couldn't believe it. Then mom's sister's husband died. Her uncle took the widow sister and her two girl children, have brought them up one by one. This one elder and two younger sisters have faced his life as their Kudi novice. But he could say everything only on confidence. But life had a different plan which entered of his life. Life goes as it is. There is neither good nor bad in life. The fact the humans move on beyond the good and bad. Then follow the Rasaman, mom, and her sister have lived and gone. The people of Udayambalayam had everything. They had love, mercy, forgiveness, peace, divorce. They had anger, age, and jealousy. This is how the people of Udayambalayam lived. After a long time, she returned to her husband's funeral. Kauru uncle was not there. Finally, mom and her sister recovered Iswari on her son. They recused Iswari on stopping her to Kauru uncle. This is were morally assisted by this novel. All of my writing, like Nirvarin Tanimai, Natras Magaraj, Nirvari Ponu, and Noyal, raises ethics question. I have been writing my Noyal novel for 28 years. My health was badly affected. To edit the manuscript, I sought help from my friends. I didn't come out of my home for 10 years. I almost touched the death in that accident. After the accident, I thought that I should not die without completing the novels that I wanted to write. 3 novels in 3 years. Totally 4 novels, all the four who got attention among the Tamil society. Including them, I wrote more than 100 articles, short stories, poems, received Sangeet Natak Academy's Young Playwright Award. The achievements of Tamil writers are
unmeasurable. Most of them are struggling with poverty. Purmepitan is an example. They work without any expectation. In such circumstances, I am more, it will help me to become stronger. And the artist is award giver is to me bright. Thank you. Thanks to Pandit Academy. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगी तेलुगु में पुरस्कृत तल्ला वशला पतंजलि शास्त्री जी को। I would like to heartily thank the Academy for the award. So since the whole thing has been repetitive, I read a couple of paragraphs from this. Already happy to job. I am not a prolific writer. I take time to compose a story and quickly after writing. Stories I didn't like or cremated. I want twice the number of stories I published. Same with novels and plays. I also wrote forgettable poetry. I love plays. I am delighted to confess I have an enduring extramarital affair with theatre and films, of course. I have an incorrigible film buff. I never entertained any particular literary philosophy except literary integrity. I have a doctorate in archaeology, and after teaching in colleges, I wandered into environmental activism. Both impelled me to have a deep engagement with life. My work is layered in both. I steer clear of strident literary movements of left and right. As an activist, I interacted with farmers and artisanal communities. I realized in the late 80s, the development strategy we are wedded to have a deep flaw. Our developmental efforts fail to reckon with ecosystems which actually farm our resource base. Rural poverty thus has been man-made. My acquaintance with our epics, folklore, and Adivasi oral literature enriched my creativity. Extraordinary symbolism and apparent unembellished narrative style of these stories stretched my inner world. As a student of archaeology, symbolic imagery and its sheer energy had a deep impact on my aesthetic creative sensibility. In short, I follow the Indian version of magic realism. This narrative tool is not new to Indian readers. Ancient Indian writers elevated metaphors to incredible levels of creative imagination. I call narrative technique I use parallel realism. It is two aspects of reality. I believe a writer has to walk different time zones, past, present, and future. We have to understand memory is timeless. We inhabit our conscious and unconscious mind, managed after a memory. I wrote stories on memory. In the volume of stories selected for the award, an interesting story is about the Buddha who was persuaded to arbitrate the first ever Indian river water dispute. One of the disputants was his own father. The river is still flowing. It's called the Rohini. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। मैं आमंत्रित करूंगी उर्दू में पुरस्कृत सादिका नवाब सहर जी को। सादिका जी आइए आइए। मेरे साथ समय आप सबको मेरा आदाब। मेरे फिक्शन लिखने के तजुर्बे, वो सर्दियों का एक सुनहरी दिन था। मैं पिछले 4 दिनों की तरह आज भी अपनी प्यारी सहेली महजबीन की नाराजगी पर तड़प रही थी। कुट्टी
बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आखिर मैंने नोटबुक से एक सफा फाड़ा और उसके नाम एक खत लिख दिया। खत उस तक पहुंचा तो वो बहुत नाराज हुई, मुंह फुलाए बैठी रही। नजमा टीचर की कुर्सी संभालते ही उसने झट से वो पर्ची आगे कर दी। टीचर ने मुझे सामने बुलाया। मैं अपनी हथेलियों में पट्टी पट्टी की गर्मी महसूस करने लगी कि अब मार पड़ेगी। टीचर डाइस से उतर कर मेरे पास आई, हाथ में पट्टी भी थी। मैं अपनी हथेलियों को मसलने लगी। उन्होंने करीब आकर मुझे पर्ची जोर से पढ़ने को दी। मैंने पढ़ दी। उन्होंने कहा, इस लड़की में तो शायरी के कीटाणु जरासीम मौजूद हैं। स्कूल के बाद सोफाया कॉलेज मुंबई से उर्दू और पर्शियन में फर्स्ट क्लास बीए ऑनर्स किया। यूनिवर्सिटी रैंकर भी रही। मुंबई यूनिवर्सिटी से एक के बाद एक 3 भाषाओं में एमए भी किया। पीएचडी भी हो चुकी। शायरी, कहानियां, नॉवेल, ड्रामे लिखे। लेकिन अपने बचपन की 7वीं क्लास की वो नजमा टीचर मुझे कभी नहीं भूलती, जिन्होंने अपनी सहेली के नाम एक मंजूम चिट्ठी लिखने पर मुझ में शायरी के जरासीम होने की निशानदेही की थी। बचपन में छोटी छोटी सहेलियों को खाने के वक्फे में सीढ़ियों पर बैठकर लंबी लंबी कहानियां सुनाने वाले मंजर तो अभी भी ताजा हैं। छोटी जमातों से ही, छोटी क्लासों से ही इजहार, अभिव्यक्ति कलम के जरिए जहन से कागज पर उतरता रहा। किसे पता था कि राइटर कहलाऊंगी। और अब भी राइटर कहाँ हूँ, घरेलू औरत हूँ, हर रिश्ते में उलझी हुई। पढ़ाई का शौक था, इम्तिहान देती रही, कुछ डिग्रियां मिल गई, मौका मिला, कॉलेजों में उर्दू और हिंदी पढ़ा लिया। जी चाहा लिख लिया, कभी कॉपियों में, कभी पेपर चीथड़ों पर। कभी इन चीथड़ों को महफूज कर लिया, सुरक्षित कर लिया, और कभी जाया होने दिया। 2006 में मेरे जहन में कुछ फतूर आया। गर्मी की लंबी छुट्टियां, मेरी नई डायरी और एक नया नॉवल की आमद। कोई 20-22 दिन नॉवल का ड्राफ्ट बना, महीने भर में फाइल में भी समा गया। इस जल्दबाजी ने फायदा यह किया कि नॉवेल कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। अगर इस तरह तेजी से न लिखती तो एक और अधूरा नॉवेल तैयार हो जाता। दूसरा फायदा यह हुआ कि घटनाओं में, वाकयात में रवानी आ गई। इस रवानी का या इस नॉवेल की खूबियों का मुझे अंदाजा नहीं था। इसकी कहानी मुझे चलते फिरते मिल गई थी, मंजर मंजर मेरे अंदर उतर गई थी, फर्द फर्द, व्यक्ति व्यक्ति किरदार बन गई थी। जवान बच्चों वाले बूढ़े का से ब्याही गई औरत, पेड़ के नीचे लेटा हुआ टिफिन खाता हुआ बच्चा, गांव गांव, शहर शहर, जहां जहां गई, मंजर दर मंजर नॉवेल में उतरे। पता नहीं कैसे नॉवेल का ख्याल आया। शायद कोई पिछली दबी हुई ख्वाहिश इसके पीछे थी। नॉवेल के इंस्पिरेशन में एक दोस्त जरूर थी। स्कूल के अहाते में बच्चों को लेने आने वाली माओं के दरमियान खड़ी हुई उस दोस्त से रोजाना हल्की फुल्की बातें। ये नॉवेल था कहानी कोई सुनाओ निताशा। 2008 में एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से, दिल्ली से ही ये मंजर आम पर आया। इस सिलसिले में जिन अदीबों, लेखकों के फोन आए, जिस खुलूस के साथ उन्होंने इस नॉवेल को सराहा, में तो खुल ही नहीं समाई। बाद में भी कई अदीबों के फोन और खत आए, तबसरे, समीक्षाएं, आलेख छपे भी। सबसे ज्यादा खुशी देने वाला पैगाम डॉक्टर आसिफ फर्रुखी का था, जिन्होंने नॉवेल की सॉफ्ट कॉपी मंगवाई और अपने शहरजाद पब्लिकेशंस कराची से इसको पब्लिश करवाया। ये नॉवेल हिंदी, तेलुगु, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। उसके तर्जुमों की सराहना भी हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार उर्दू एकेडमी, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकेडमी और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के इनामात ने भी ये मेरी झोली में इसने डाल दिए। इसी के साथ कुछ मंफी नेगेटिव रिमार्क भी आए, मगर मुझे उससे क्या फर्क पड़ सकता था। मैंने जो भी लिखा उससे मैंने कब उम्मीद की थी। बस यही तो चाहा था कि बस कोई बुरा ना हो लिखूं, बहुत अच्छा ना हो भले ही, कम से कम किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचे, बस इतनी सी ख्वाहिश। मंफी बातें ऐसी थी, कुछ लोगों ने कहा आप तो कहानियां लिखती थी, पहले तो कहानियों का मजमुआ आना चाहिए था, नॉवेल क्यों ले आई। किसी ने कहा शेरी मजमुए के बाद नॉवेल क्यों लाई। किसी ने पहले शाबाशी दी और फिर पछताए। बहरहाल ये नॉवेल मेरी तहरीरों के लिए, मेरे लेखन के लिए रोशनी का ऐसा मीनार बन गया, जिसकी रोशनी में मेरी तहरीरें ज्यादा उभर आई, नुमाया हो गई, और उसने मुझमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया। नॉवेल के पहले एडिशन के बाद अपने स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, अफसाने और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिखे हुए ड्रामों को मैंने समेटा और मजमुओं का रूप दिया। अगले साल बेटी से बातें करते हुए कॉल सेंटर में काम करने वालों की जिंदगी के साथ
अपनी जिंदगी के साथ समझौता पर दूसरा नॉवेल ने मुझे दस्तक दी। जिंदगी उलझाती है और जॉब के भी अपने मसले होते हैं, फिर इस कल्चर की अलग दुनिया है और बाहर की अलग दुनिया है। अपनी अपनी रोटी पर दूसरे की हथिया लेना, जाने क्या क्या जहन में समा गया। पहले नॉवेल में औरत मरकजी किरदार थी, दूसरे नॉवेल में मर्द की जहनियत मरकजी किरदार। वजह यह थी कि मुझे एहसास होने लगा था कि औरत की साइकोलॉजी का तज्जिया मुझ पर फेमिनिज्म का लेबल लगाकर सांचे में डाल देगा। अदब में फेमिनिज्म बुरी चीज तो नहीं है, मगर वही सब कुछ तो नहीं। इस बात का मिताशा लिखते वक्त मेरे ख्याल में था कि कहीं इस पर औरत का लेबल लगाने, औरत का नॉवल होने का लेबल ना लगा दिया जाए, क्योंकि मेरा मकसद ये है ही नहीं। ये तो इंसान की कहानी है। मिताशा के आखिरी हिस्से में ये मोनोलॉग, औरत अपनी मर्जी से कहाँ जा सकती है, वो मजहब के काम तक नहीं कर सकती। औरत ही नहीं, मर्दों के पैरों में भी बेड़ियां हैं, इन्हीं बेड़ियों के साथ चले जा रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, एक डायलॉग है उसमें भी यही बताता है। दूसरा नॉवेल जब मंजर आम पर ला रही थी तो एक झिझक थी जो रोक रही थी। एक अदीबा ने, एक लेखिका ने मुझसे कहा था, तुम्हारा पहला नॉवेल तो क्लिक कर गया, कहीं दूसरा नॉवेल ठंडा ना हो जाए। ऐसे ना हो कि लोग कहें कि जिंदगी भर के तजुर्बे एक नॉवेल में लिख दिया, अब कहने को कुछ बाकी ही नहीं रहा। फिर नॉवेल जिस दिन से जब छपा कॉल सेंटर पर, बड़े अच्छे राइटर्स ने इसे निताशा का अगला कदम और जमाने का तकाजा कहा। बस दिल ठंडा हो गया। जीतू की माँ की दोहरी जिंदगी से मैंने नफरत नहीं की, न ही किसी और किरदार से। फिर राजदेव की अमराई, जिस पर अवार्ड मिला है, ने दामन थामा, एक और कल्चर ने रुख से पर्दा उठाया, बड़ी मोहब्बत से उसकी सैर की। इस नॉवेल ने भी अपने रीडर से मुझे खूब मोहब्बत और इज्जत दिलाई। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव क्षेत्र परशुराम की जमीन से इसकी कहानी उठाई गई है, जहां आमतौर पर ब्राह्मण आबाद हैं। आजादी के बाद गांव से शहर में जाकर बसने वाले, पढ़ लिख लेने वाले और उन्हीं के दरमियान पढ़ लिख न सकने वाले लोग, अपनी दुनिया आप बनाने वाले, भारत और उससे बाहर एक बड़ी दुनिया का हिस्सा रहकर तन्हाइयों से मुकाबला करने वालों की साइकोलॉजी को मैंने गिरफ्त में लेने की एक कोशिश की हुई है इस नॉवेल में। इन नॉवेलों के सारे किरदार मैंने जिंदगी से ही लिए हैं। इतने किरदार और इतनी कहानियां आसपास बिखरी हुई हैं, फिर ख्याली किरदार क्यों रचूं। फिक्शन को मैं जिंदगी की अक्कासी समझती हूँ, जिसमें प्लॉट, माहौल, किरदार, मुकालमे, डायलॉग, जबान और बयान सब बुझे हुए होते हैं। अपने आसपास के किरदारों, माहौल और मुकालमों पर मेरे कान खड़े हो जाते हैं, नजरें जम जाती हैं। हाँ, ये शॉर्ट स्टोरी है, ये अफसाना है, ये ड्रामा है, ये नॉवेल है। किसी को मैं फिक्शन का रूप दे पाती हूँ और कोई मेरे हाथ से निकल जाता है। अपनी अदबी जिंदगी, लिटरेरी जो लाइफ है मेरी, अपनी अदबी जिंदगी और इस अनमोल अवार्ड के लिए मैं अपने शौहर असलम नवाब साहब, अपने माँ बाप जो अब नहीं है, ख्वाजा मियाँ साहब और माँ शर्तुन्निसा बेगम, अपने सारे उस्ताद, अपने रहनुमा प्रोफेसर गोपी चंद नारायण की शुक्रगुजार हूँ, जिनकी हौसला अफजाई ने मुझे ये इंस्पायर किया, मुझे तहरीक दी। हाँ, एक बात कहनी रह गई है, मैं अपनी तहरीरों से बड़ी उम्मीद नहीं रखती। हाँ, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ लिखना जरूर चाहती हूँ। और हाँ, मेरी एक अजीबो गरीब ख्वाहिश भी सुन लीजिए। जी चाहता है मैं किसी को नजर ना आऊं, सिर्फ मेरी तहरीरें, मेरी राइटिंग बोले। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सादिका नवाब सहर जी। और बहुत समय से आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमने 23 लेखकों को सुना, उनके आत्मकथ्य को सुना, और उन्होंने जो आत्मवक्तव्य दिए उनसे बहुत सारी बातें निकल करके आई। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि इस पाठक समुदाय में एक आश्वस्ति का भाव जरूर जगेगा जो भी इनकी आत्मकथ्य को सुनेगा। सभी के आत्मकथ्य मैंने देखा कि साहित्य के प्रति आस्था के प्रमाण थे। सबने अपने अपने शब्दों में उन परिस्थितियों को, उन परिवेश को हमारे सामने रखा जिसने उनके सृजनात्मक व्यक्तित्व को आकार दिया। जैसा कि अभी भी कहा भी गया कि आसपास के किरदार, कहानी और उपन्यास बिखरे पड़े हैं। मैं कहना चाहूंगी कि उसे देखने के लिए एक संवेदनशील आंख चाहिए, संवेदनशील मन चाहिए, और इन सभी रचनाकारों के पास वो मन था, वो संवेदनशील आंख थी, जिसकी वजह से वो उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझ पाए और अपने रचनात्मक परिवर में उसको ढाल पाए।
आप सबको सुनकर के ये लगा कि कई बार सुनाई पड़ता है कि साहित्य तो जीवन से दूर हो गया है, साहित्य के साथ तन्मय भवन की स्थितियां नहीं रह गई हैं, लोग साहित्य पढ़ते नहीं है और साहित्य का भविष्य खतरे में। लेकिन आप सबको सुनकर के लगा कि साहित्य का भविष्य और भविष्य का साहित्य दोनों ही खतरे में हैं। और बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो साहित्य के जरिए आप समाज तक पहुंचा रहे हैं। आप आत्मसत्य के साथ वस्तु सत्य को भी पहुंचा रहे हैं जो आप समाज में देख रहे हैं। उस वस्तु सत्य को आप पहुंचा रहे हैं जिसको आप अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक प्रामाणिकता के बीच उपलब्ध कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबको सुन करके बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप आए और आपने बहुत आत्मीयता के साथ अपनी बात सामने रखी। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी से अनुरोध है कि जितने लेखक यहाँ उपस्थित है यहाँ मंच के आगे आ जाए। मैडम के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी अब सभी विजेताओं की, और इसके बाद आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं। नमस्कार।
जब इंटरनल पे रहता है तो यहाँ का माइक ये चलता है, जब एक्सटर्नल करते हैं तो बाहर का आता है। और साइड में क्योंकि करके अभी अभी क्या है ना कि अभी करेंगे, अब छोड़ ही दो, हेलो आज का छोड़ दो, कल करेंगे अब। तो साहिल गधा का गधा ही है। आया तो था। खाली पीली इसके वजह से टाइम खराब किया होगा 10-5 मिनट सुबह, हाँ तार बिछाने की वजह से, हाँ और तार कनेक्शन नहीं कर पाया। ठीक है, अभी कब आया था? अब मेरे आने के बाद। हाँ। ठीक है, अरे जस्ट जस्ट खत्म होने जस्ट वाला था ना, एक से एक स्पीच बाकी थी। मुझे बता देते ना, मैंने बोला था जब मैं यहाँ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आके कर देता। नहीं वो फ्री था ना, अच्छा, उसने फोन किया। अभी ठीक देखो चल। इसमें 196 मिनट है, ठीक हाँ है, फॉर्मेट करके लगाया हुआ उसने। हाँ 196 मिनट है। इसमें थोड़ा देखो, ये क्या है ना, इसकी पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको हाँ, वो थोड़ा सा मिलाना, देख करके लगा थोड़ा करके सा गया देख ना। करके लगाते हैं। ये देखो कार्ड, कार्ड रीडर में कार्ड लगा दिया। और ये खाली कर लो, हाँ ताकि तुम्हारे फिर अगर मान लो ये भर गया। ये कैसे खाली करवा लो। अभी खाली इधर लैपटॉप में खाली करवा देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे पास दो ही कार्ड है ना, भर गया कहीं। हाँ क्योंकि उन लोगों के तो है कि एक दूसरे का लग जाएगा, तुम्हारा ये कार्ड सिर्फ यूनिक है, तुम्हारा ही अच्छा है, एक दूसरे में नहीं लगेगा। ठीक है, तब तो ऑफ कर देते, ये ऑफ करने के बाद तो ऑडियो अच्छा, चलेगा बैटरी कितनी है तुम्हारी? बैटरी देखो अभी 87 मिनट ना। बता रहा है। ये वो वाला फुल है, एक और लगाया हूँ वहाँ पे। चार्ज में लगाया हो? हाँ इसको खुद ही हो गया है, एक और है। ये बोर्ड किसका है? अच्छा, बैटरी की इशू हो तो कल से एक पावर एक्सटेंशन बोर्ड लगा के अडेप्टर सीधा लगा दिया करना, झंझट ही खत्म। बैटरी कितनी कितनी देर में बदलना पड़ता है? अभी बदला है ना, बीच में तो नहीं बदलना पड़ता है ना? नहीं एक मतलब एक काम कर लिया दो करना। बार चेंज किया था भाई। देखो, जब बैटरी तब बदलना जब सेशन जब ब्रेक होता है ना, उस टाइम बैटरी देखो कि कितनी देर है। अगर लग रहा है कि ये वाली बैटरी थोड़ी कम है, वो ज्यादा चल रही है, तो वो लगा दिया करो। वैसे ही तो किया, आधी में है वैसे वैसे ही ही किया ना, किया। वैसे ही मतलब करो। जैसे कि किसी को बुलाए, उनको हम्म आने में टाइम लग रहा है, हम्म। तो उस टाइम में कैमरा ऑफ करके सब मतलब ठीक है। जल्दी जल्दी चेंज कर दो, खत्म। हाँ, अब वो जो है, अब क्या है कि अब नहीं करेंगे, उनका सेटअप में क्या है नहीं है, अरे कल अगर बहुत होगा टाइम तो लग कल। गया, तार मेरे को दो बार भगवाया, तार ले गया तार ले गया। एक क्या बार फायदा, तभी सीधा इसी तरह चालू कर देता। नहीं नहीं, ऑन नहीं हुआ था उस टाइम, स्टार्ट नहीं हुआ था, हम लोग लगाने के बाद ही स्टार्ट किया स्टार्ट ही हुआ हुआ तभी हुआ ना। था। ये रिंग घूम रही है ना, अभी इसमें 6.7 है ना, ये देखो ये कम ज्यादा हो रहा है ना। हाँ लेकिन जब इसको ऑटो पे कर दूंगा, अभी देखो जैसे मैं कम कर देता हूँ, ये कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, ऑटो पे करूंगा तो देखो अपने आप घूम के सेट हो जाएगा। ये किया देखो, ये कितना आ गया, पहले कितना था? 6.7, तो अब 9.5 आ गया, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, ये भी गलत था, ये नहीं चाहिए जरूरी। ठीक है, 5.6। यहाँ पे 10 बार समझाया करो, इसको उसको उसको। जिस हिसाब से ये सेट था ना, लैपटॉप में से ये था। हाँ, सही है।
यूट्यूब में लाइव चल रहा होगा। अब अभी वैसे कर देता हूँ ना, थोड़ा बढ़ा हुआ था बढ़ा ही देता हूँ। अगर लाइट से कोई इशू लगे तो ये होता है, ये लाइट का जब ये ऑटो पे डालते हैं ना तो ये रिंग देखो अब नहीं घूमता हाँ। है। जोर से घुमाने पे खराब हो जाता है, ये नहीं घूमेगा, ये ऑटो पे होता है तो। जब इसको मैनुअल पे करेंगे अब ये घूमेगा स्मूथली। अब थोड़ा सा बढ़ाने के लिए नीचे करते हैं, घटाने के लिए ऊपर करते हैं, देखो थोड़ा सा किया, ये बढ़ गया। ठीक है, फोकस भी मैं चेक कर लेता हूँ तुम्हारा फोकस है कि नहीं। देखो फोकस चेक करने का ये तरीका क्या होता है, इधर से देखो। वाइड में कभी भी पता नहीं लगता है कि फोकस है कि नहीं, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लोज जाएंगे यहाँ पे, यहाँ गए। अब यहाँ पे करेक्टर है ना, तो ये अगर फोकस है तो देखो वो भी फोकस में ही होगा। बट कि सही तरीका ये है कि वहाँ पे कोई खड़ा होना चाहिए तब। ठीक है, ये अभी अभी ये तो फोकस में है, वो भी फोकस में। और मान लो कि ऑटो देखो, ऑटो लेता है क्या, ये करा, ऑटो फोकस लिया तो ऑटो ले रहा है कि गड़बड़ तो नहीं है, ले रहा है ये। जहाँ भी कर दे रहे हैं ले रहा है, तो फोकस ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। उधर वो दरवाजा बंद रहता है क्या, नहीं खुला रहता है। खुला रहता है तो ऑटो फोकस में ब्राइटनेस जहाँ जाता होती है ना। अब खाना खा ली। नहीं अभी जा रहे हैं। चलो हम लोग- हाँ तुम्हें जल्दी जाना होगा ना, बस चल रहे हैं। अभी तो मैंने जब खत्म होते ही मैंने फोन कर दिया ना। ठीक है, प्रेसिडेंट। ये तुम्हारा फोकस पॉइंट एकदम करेक्ट है, ये रखना और ये रखना। और थोड़ा बहुत चल जाएगा, इधर बैठे लोगों का डिस्टेंस उतना ही आ जाएगा जो भी है। अपना फ्रेम तो बना लेते हो ना, हाँ। ऐसे फ्रेम बना के लॉक करना चेक कर सकते हैं क्या? है, क्या चीज़ मैं का। मुझे रिकॉर्ड किया। हाँ कर सकते हैं। कर लो। और एक चीज और ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं उस पर कंसंट्रेट रखना। कई बार चलते चलते रुक जाते हैं, हम होते हैं दूसरे धुन में, हमें पता ही नहीं चलता है। वो लिखा रहता है ना ऊपर। हाँ रिकॉर्डिंग लाल जो दबा रहता है ना, वो चेक करते हुए रहना चाहिए। और ये मैंने कर दिया। ये ऑडियो नहीं बढ़ रहा है, प्ले करने वाला है। जब प्ले होता है ना उसको सुनने वाला। थंबनेल बटन खराब है क्या इसका। छोड़। चलो खाना खा लो, बाद में देखेंगे। ये बटन से होता है, ये थंबनेल बटन जब दबाते हैं ना तब जाके इसका निकलता है, इसमें से प्ले का ऑप्शन आता है। बस ये रिकॉर्डिंग जो लिखा हुआ आ जाता है ना, उस पर अपना ध्यान रखो कि रिकॉर्डिंग।
दो बजे नीचे भी नहीं गए, 2 बजे नीचे भी नहीं गए। वहाँ पे प्लेट वगैरह नहीं थी, टाइम लगता वहाँ पे, मेरे को सेटअप भी तो करना है। कोई और नहीं है तुम्हारे जरूरत? वो आएंगे तो मैं जाऊंगा ना, बुला लो। बोल रहा हूँ, वो भी तो खाना, वो भी बंद तो खाना खाते हैं। देखो। पता है, देखना पड़ता है। सेटअप सही है भाई। क्यों खाना खाने गया नहीं था? रश बहुत है। बस बहुत है, वहाँ पे प्लेटें भी नहीं है। कितने बंदे का शायद से कोई रहा होगा बिना खाने का, सब कुछ ज्यादा करोगे खाना। हाँ, जितने का सबको राजी करके लेटे आ गया। अरे जरा भी जाने की बात नहीं है, मेरे को यहाँ पे सेटअप करके जाना पड़ता है ना, यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करना था कुछ, अभी कोई बंदा आएगा जब जाऊँ। नेक्स्ट सेशन आधा पूरा घंटा मीटिंग बाहर से खा के क्या मैं खा के नहीं अबे गया तो प्लेट नहीं मिली यार मेरे साथ खा। अरे वो आए थे यहाँ पे, प्रेम भाई आए थे ना, कुछ काम था, पंगा करके गया था ना साहिल, मेरे फोन भी कर देते ना मेरे साहिल ने फिर पंगा करके गया था ना, पता है क्या करके गया था, उसके वजह से ऑडियो आई नहीं, ऐसे चला रहे थे। वो कैमरा से चल रहा था सीधा। वो आवाज ही नहीं आ रही होगी। नहीं, इसका कैमरे का माइक ऑन था ना। नहीं वही आउटर आ रही होगी ना, इनर नहीं आ रही होगी, डायरेक्ट वाली नहीं आ रही होगी माइक वाली। यही सब गड़बड़ होगी। तो वही था, ये मिल जाएगा ध्यान रखना। इसको फिर पकड़ना मैंने पड़ा। भी ध्यान नहीं दिया अभी हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया तो अपने काम में लग रहा था। अरे नहीं, सब कुछ सही था, सिर्फ मेरे को दिया था ना, ये इनर आउटर करेंगे ना। थोड़ा सा सोनी का ही है ना। हाँ, सोनी के पकड़ना इसको, वायर थोड़ा वायर। और आगे ले लो अभी, और आगे ले लो। बस तुम क्लोजअप पे तो आ जाओगे कम से कम। बस तो चक्कर ही है ना, ये जो बैठे ना सामने, ये चक्कर तो ये है, इधर उठा के इधर कर दो। हाँ हाँ, कर लूंगा, तो सिर्फ तो खाली ये जो ये बैठे हैं ना, ये कॉर्नर पे, इनके सर लेकर आए।
जूम कर देगी उनका सर्विस का। जूम करते तो आएंगे सर। आओ तो वहाँ तो कोई बंदा बैठा होगा तो क्लोजअप लेना पड़ेगा तो कैसे होगा? टेलीवैट तो ये भी है ना सर। हाँ ना तो टेलीवैट तो नहीं है, ये इतना ही जूम है। जूम से ये जूम से कोई पंगा नहीं है। वो वहाँ पे जितना भी बंद करेंगे उनको सही आएगा। इधर लाना पड़ेगा यहाँ पे फिर। सब जुगाड़ पे। हेलो हाँ रोज कब से हुआ लेकिन खाने जाने के वहाँ पैसे वगैरह यार पब्लिक देखो वहां तक बैठेगी। आप सेंटर में, आप बहुत सेंटर में आ गए, बहुत सेंटर में आ गए। यार ये सेट कर रहा हूँ यार कैमरा यहाँ पे जो लगा है ना ज्यादा चेयर लगा हुआ है ना कि थोड़ा शक्ल तो बंदे का शक्ल करता है जूम करूंगा तो इतना तो adjust कर ही सकता हूँ। और आगे जाना पड़ेगा क्या? क्यों यार? इस वाले का थोड़ा सा उधर कर लेता हूँ। यहाँ का सही है क्या? कोई नहीं है, ये नहीं ये वाला तो सही हो गया। ठीक है। ये वाला वो इनको, ये वाले को। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ इधर थोड़ा सा इधर कर देता ये नहीं, इसकी हाइट। हूँ। वही करूंगा ना हाइट उठा के कर हाइट डाउन डाउन कर देते हैं। अब तुम आराम से बैठना, ऊपर से कराओ। उठाओ और उठाओ। सर गुड आफ्टरनून। जी जी। सर तो हो सकता है उसका एसएमपीएस खराब हो सीपीयू का, आप एक बार चेक तो करवाइए उनसे। हम पे चलो जी बात। यूज कर दें सर वही तो मैं कर भाई क्या ये बात यहाँ पे क्या मतलब आप क्या लेगा वैसे मदरबोर्ड का तो भैया तो आपके कंपनी के बारे में बोला होगा।
is special because we complete 70 years. 70 years in any other language of the world, in English it is called old age, in Hindi also, if you notice, generally speaking, it is called budhapa, but the correct word for it, and Oscar sir is sitting here, it is वृद्धावस्था. वो अवस्था जिसमें आप उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ते हैं. So this is how the academy is. It's actually a home for us writers, for all of us. I extend a very warm welcome again on behalf of the academy, and without wasting any time, any more time, I would like to invite the chair, Shri Oscar Poyonji. He's with us, and we will greet him with a warm welcome. So please take your seat. Oscar Puyol studied Sanskrit at the Banaras Hindu University. It's BA and MA, and also he took his PhD with the edition of the Samarthipad of the Sanskrit, a manuscript on Sanskrit grammar. He has published several books in translations from Sanskrit. He has also published a Sanskrit Catalan dictionary in 2005 and the Sanskrit Spanish dictionary 2019 of 64,000 words, for which for the first time includes the etymologies of the contemporary philology and those of the Indian grammarians. In 2002, he helped in establishing the Casa Asia, Barcelona. He founded in 2017 the Instituto Cervantes of New Delhi. We extend a very warm welcome to you, sir. Pranam, namaskar from the Sahitya Academy. And now I would request all the dignitaries to be here with us. We have Professor B.R. Deepak. Please come and take your place here, sir. Shri B.R. Deepak is with us. Shri Dirik Rameshji is with us. Shri Prabhati Nautiyalji is with us. Sonu Senji is with us. Kindly take your places. And we also have Professor Shomi Mukherjee. Would also like you to sit there. Or maybe you would want to come later. समय की मर्यादा है, समय की सीमा है, और हमारे भारत में तो समय के देवता भी है ना, काली भी है, काल भैरव भी है. तो हम बिना इस कोई समय व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ते हैं. हमारे पहले स्पीकर जो हमारे पहले वक्ता है प्रोफेसर B.R. Deepak. Professor Deepak is a professor is a professor of Chinese Studies at the Center for Chinese and Southeast Asian Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Dr. B.R. Deepak recently authored works are India's China Dilemma, The Lost Equilibrium, and Widening Asymmetries, and India and China Beyond the Binary of Friendship and Enmity. He is the first Indian to have translated the 4 books of Confucianism, the Analects of Confucius, the Mencius, the Great Learning, and the Moon from Chinese to Hindi. We extend a very warm welcome to Professor B.R. Deepak, and we invite him to please come and say a few words. Very good afternoon to everyone. I think yeah, since time is limited, I think I'll run through the presentation. Title is Translation of Healing Process, Modern Manufacturing of the World in China, Translated Cultural Discipline or something else. I think the topic is very long.
I think this is, you know, a little bit of theoretical background. I'm not going to go through talk about the various states are the cultural capital, and I'm just hello, yeah. Uh, I'll just focus on the objectified state, because you know most of things are founding for their probably cultural capital of India in China. And I have you know tried to periodize it, so there are 4 periods I'm talking about. Earlier Sanskrit, the first period, English as a medium, the second, and then Sanskrit as a medium. In fact, the first is also Sanskrit as a medium, but then you know it was classical Sanskrit. So this Sanskrit basically, and finally Hindi and other regional languages of India. In fact, there is another one, Indian writing in English also, which are also a little bit, you know, delved into. So first, if we talk about the first period, it was primarily the period of civilizational dialogue between India and China. And it was the period when entire repository of Indian mainstream literature in 6th and 5th century was transmitted to China, through epics, you know, various, you can say, other literary forms, including theaters, they went to China, and various facets of Chinese language, including vocabulary and, you know, monosyllabic to polysyllabic tones and so on and so forth. And you would be surprised to know that even now there are 35,000 Chinese vocabulary in Indian Sanskrit vocabulary in the Chinese language, which we consciously or unconsciously adapted to. And then, of course, it was conscious or sometimes it was unconscious. It's a translation. I think as far as these epics and the translation is concerned, it was unconscious to some extent. Of course, conscious in the way they were adapting some of the stories, they were adapted into Jataka, so and all this sort of forth. But then conscious also, for example, Mar TIRUVALLUVAR and you know various other astronomy, calibration, and so forth. So they were all consciously translated into Chinese. I will not dive into this from all about in the can discuss a little later. So second is equally important to share the medium was to English, and some of the prominent Chinese so who translated the ring reflection and point of cloud and made and we also compiled a basic Sanskrit dictionary. In fact, it is a dictionary compiled by Max Muller, translated into Chinese. And then, of course, Sanskrit grammar and Chandrashu, who is Secretary General of the Communist Party of China, so he introduced that whole point for the first time in China for the movement. And then Miwen Tai, who's another who translated, you can say incomplete Ramayana and Mahabharata into China. So medium was here English, it was not the Indian language, it was not Sanskrit. And the second period, the Sanskrit, the Chinese, the capacities. In fact, some of the leading scholars they were trained in Sanskrit in Germany, and some of them they were trained in Banaras, and they stayed in Aurobindo Ashram, for example. This Shipan Sam, so this mentioned, I think a little later. Chi Shalin was also
awarded Padma Bhushan for these translated Kalidas, Panchtantra, Krishnamurti, Ramayana, 20,000 old in China, in world war, Madras, and Dinaka, and Japa. So, Dinakam was another Sanskrit scholar of China. What translation make them and history of Sanskrit literature for the first time. And Shivantan, as I mentioned, he stayed 27 years in Pondicherry. So, in fact, before that, he was in Banaras, studying Sanskrit there, Bhagavad Gita, Upanishads. They were translated for the first time from Sanskrit to Chinese. And Anupasham, another great translator, Mahabharati, was translated by him. Bhagavad Gita again, Upanishad, and some of the Buddhist Gujarat also. Now, the third phase is Hindi and regional language. This is the phase of equilibrium between India and China. People of my generation in China, so they delved into translation of various Hindi works and regional Indian language. For example, the one French and his works, Hindi have Ramcharitmanas, Chanting Quail, Tamil, Yusuf, Sagar, and Kabir Granth. There are various other, lesser known people, but their work is of great importance. And the kind of work they did, the Boston to Harishchandra, Friends, Vindhya, or Mirza, in them, any stalwart of Indian literature, so there would be, landed into Chinese, in China, including Tamil writer like China Swami Subramaniam Bharti, their works have also been rendered into Chinese. The fourth phase, Indian writing in English, this is the last phase, the works of Mokarajanan, R.K. Narayan, Rajarao, Bhavani Bhattacharya, Norman, anyone including the other side, and even Osho, Rajani, his works rendered into Chinese. And I think this has to be appreciated because this was a project of Sahitya Akademi in 2019, and it was done under my convenership. We landed 10 works of contemporary Indian writers into Chinese for the first time, perhaps in the history of India-China altogether. And Daya landed one of them, Gawar Kalapan, and myself, which is quite a bulky one, I think, running into more than 12 pages. So this is for the first time, and I hope they, come with some more projects. But unfortunately, the kind of projects which were undertaken between India and China, the mutual translation project, again, I'm the convener of that. I'm sorry to say that it has been stalled, perhaps going to, diplomatic hurdles between India and China. The 25 works which we were supposed to translate by 2020, it is still stalled, and the Chinese side they have completed. The reasons for the huge depository of translation, I have flagged out a few. Tradition of Buddhist translation is, one of the, we can say, the inspiration for the Chinese, because the kind of, tradition that they have. This has been continued irrespective of the relationship with the country. No dichotomy, I think this is very, very clear. You will see that entire repository of Indian mainstream literature, including regional languages, so it has been done with China. Equilibrium period, I think this is important when India and China, so they have good relationship. I think after, you can say, Doklam, primarily since 2020, so it is downward spiral. Most of the cultural activities, including translation, comes to a kind of capacity building in university. I think it's important. China offers in 16 plus language universities now, and Sanskrit, of course, they have capacity also. Like us, we are very few people who master the kind of ability. So I think this is also one of the things we need to be learning from the Chinese, how they have done it. The government funding is important, and institute organizations like Sahitya Akademi, I think, were instrumental in this. And bibliographical sources, again, without any government
funding that would not be possible. And I think these are the reasons for how Chinese would have run such a huge, quantity of Indian words into Chinese. With these words, I thank you for inviting me and giving me the opportunity. Thanks for your patience. Thank you. Very, very well, Mr. It's such an extensive presentation. Wonderful. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Divik Ramesh. Divik Ramesh is an eminent Hindi writer. He has published about 50 books, which include 6 poetry collections, 1 verse play, Khanda Khanda Agni, 4 books of research and criticism, 25 books of poems, stories, drama, etc. for children. He has taught as a visiting professor for 3 years in South Korea and worked as principal of Motilal Nehru College, University of Delhi. He received several international and national awards, which include the Girija Kumar Mathur National Award, the Soviet Land Nehru Award, Sahityakar Samman of the Hindi Academy, Vivadesh Puraskar on translation work, among many, many others. I request you, sir, to please come here and present your paper. And we will have 10 to 15 minutes now that we have some time. A warm welcome to Divik Ramesh. Please refrain from talking and please put your phones on silent mode. नमस्कार। हमारे नमस्कार बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े विद्वान डॉक्टर योगी और प्रिया दीपक जी, स्वामी जी और जी वो काफी नहीं आ पाए हैं। मैं सबसे पहले ही साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त करूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे 4 क्षेत्र हैं, उनमें से एक ये भी है, हालांकि मेरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो तो कविता का ही है और अनुवाद का शौकिया हुआ। साउथ कोरिया में मुझे जाने का मौका मिला भारत सरकार की ओर से, तो वहाँ रुचि मेरी ज्यादा जागरूक थी। मित्रों, मैं जो ये विषय है विदेशों में भारतीय साहित्य, इस पर मैं विशेष रूप से, जैसे मेरे पहले वक्ता ने चाइना को केंद्र में रख के बोला, मैं दक्षिण कोरिया को केंद्र में रख के बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही विनम्रता से आपकी आज्ञा देते हुए 2-4 बातें कहना चाहूंगा कि विदेशों में भारतीय साहित्य अपने आप में मुकम्मल विषय नहीं है। मेरी किताब, जब भी हम किसी और देश के संदर्भ में बात करते हैं तो आदान प्रदान की बात हमें करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो साहित्य है वो एक ऐसी चीज है जो जिस पर बहुत ज्यादा विवाद रहा नहीं कि वो सार्वभौमिक है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करता है और सबसे ज्यादा जो काम होता है साहित्य का वो मनुष्यता को बचाने का होता है, जो बेहतर बनाने। इस नाते जो आदान प्रदान है, जब मैं कहता हूं मेरा साहित्य या मेरे देश का साहित्य जो है उस देश में जाए, उसमें ये भाव निहित होता है कि उस देश का साहित्य भी मेरे देश में या मेरी भाषाओं में आए। अगर ये नहीं होगा तो एक तरफा ये कम से कम अनुवाद के क्षेत्र में और इस तरह के क्षेत्र में ये बात चल नहीं सकती, एक स्टेज पे आगे खत्म हो जाए। दूसरी बात जो है वो ये, समय कम है इसलिए मैं सब पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ कि मैंने हमारा जैसे हमारा देश जो है
बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं हैं। हमने भारत की भाषा के रूप में जो विदेशों में इस भाषा को हम देखते हैं वो हिंदी। निश्चित रूप से बाहर के देशों में आप जाएंगे तो वहाँ कुछ दक्षिण भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं, उर्दू पढ़ाई जाती है और भाषाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन प्राय हिंदी पर पूरा जोर दिया जाता है। ये बहुत सारे देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो मेरा वहाँ के विद्वान जो होते हैं या वहाँ के प्रोफेसर होते हैं या जो साहित्य में रुचि रखते हैं, वो सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। अगर भारतीय भाषाओं का साहित्य पहले हिंदी में अनुदित हो जाए तो उनके लिए आसान हो जाता है कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को वो अपनी भाषाओं में अनुदित करते हैं। अभी क्या होता है, जैसे संकेत दिया भी गया और वहां पर भी होता था, अंग्रेजी एक तरह से उनके लिए शोध भाषा बन जाती है, जबकि हमारे संदर्भ में अगर हिंदी को शोध भाषा बन जाए तो भारत में जो पढ़ने, भारत से बाहर विदेशों में पढ़ने वाले जो हिंदी के जानकार हैं वो कम से कम हिंदी के साहित्य के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को भी आसानी से अपने यहाँ ले जा सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये भी है कि आज हमारा जो साहित्य है, जैसे भारत में भी है और देशों फिल्मों के माध्यम से भी जा रहा है, केवल प्रिंट मीडिया नहीं, उसके माध्यम से भी साहित्य जा रहा है। खुद कोरियन एक उपन्यास जिसका मैंने अनुवाद किया था, राजकमल से छपा था पंचायत के नाम से, उसमें बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी थी कोरिया में। और वहां पर सब कम से कम मुझे लगा था कि जिस तरह से लेखक ने अपने उपन्यास में उसका अंतर किया था, उसका फिल्म में उससे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छा अर्थ हुआ है। क्योंकि अनुवाद जो होता है, जब फिल्म के माध्यम से हो, शब्द के माध्यम से हो, अब तो ये बात मान ली गई है, हालांकि ये शब्द जो है प्रोफेसर पी लाल का है, मेरा तो नहीं है, ट्रांसक्रिएशन, पुनर्सृजन। और वो शब्द से अनुवाद करना, केवल भाव का अनुवाद करना, वो सब चीजें जो है पीछे रह गई है, पुनर्सृजन है वो अनुवाद के क्षेत्र में अब हो गया है। तो इस बात एक बात का और मैं जिक्र कर लूं मुख्य बात पे आने से पहले। तो देखिए कुछ, क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय के शिक्षक से जुड़ा रहा हूँ और विश्वविद्यालय विभागों में जाना पड़ा, मैं वहाँ कह भी देता हूँ और यहाँ कहने में मुझे संकोच नहीं है और मैं प्रेरित भी करता हूँ। मैं कई डेजिग्नेशन कमेटी में गया, जब मैंने पूछा खासतौर से कोरियन स्टडीज के लिए कि भाई क्या आपका एरिया है, तो किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का पॉलिटिक्स है, किसी का साहित्य किसी का हो, ये बहुत कम देखते। साहित्य के प्रति भी जब तक जागरूकता नहीं होगी, तो साहित्य के अनुवाद के प्रति जब तक दिलचस्पी नहीं पैदा की जाएगी, तो तब तक हम कैसे भारतीय साहित्य को विदेशों में भेजने का काम कर सकते हैं। दूसरा काम है वहाँ उस देश विशेष के जो लोग भारतीय भाषा को सीख लें या भाषाओं को सीख लें, वो अनुवाद करें यहाँ के साहित्य का। जो हमारे देश में उन देशों की भाषाओं को सीख रहे हैं, उनमें भी साहित्य के प्रति सबसे पहले रुचि होनी चाहिए भाषा के साथ साथ, तभी तो यहाँ के साहित्य को वहां पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। अब मैं बात अपने इस पे आता हूँ, जो विषय है, देखिए निश्चित रूप से अगर इस तरफ के हिस्से को देखा जाए एशिया के, तो दो देश ऐसे हैं, चीन और जापान, जहां पर भारतीय साहित्य अपेक्षाकृत ज्यादा पाता है। इस दृष्टि में कोरिया, जब मैं कोरिया जा रहा था और मैंने पता लगाने की कोशिश की, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि कोरिया में आहट भी नहीं है बहुत ज्यादा भारतीय साहित्य की बात, तो बाकी बात को छोड़ दी। थोड़ा दूसरी जगह से मैं जुड़ा रहा हूँ, वहां कितना सब जो है ना, वरुण मित्तल ने रामचरित मानस का अनुवाद कर दिया और यहाँ कुछ नहीं। हाँ, वहां जाके जरूर देखा कि मौखिक जो हमारा रूप है उसके माध्यम से पंचतंत्र की कहानियां अपने ढंग से वहां गई हुई थी, और वहां फिर पुनर्सृजन ये हुआ
वो कहानी आपने सुनी होगी मगरमच्छ की और बंदर की, लेकिन कोरिया में जब अनुवाद हुआ, उन कोरियन लोगों ने जब उसको अडॉप्ट किया, तो वह ना मगरमच्छ रहा ना बंदर रहा, क्योंकि वो होते ही नहीं, तो करें क्या। तो उन्होंने उसकी जगह जो है खरगोश और ड्रैगन बना दिया, कहानी वही है। तो बड़ा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, वहां पर दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तंबुक और तंबुक न्यूसा। एक इतिहास की है और दूसरी जो है विज्ञान की। दूसरी जो किताब है तंबुक न्यूसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंग्रेजी में तो मिलती है, हिंदी में उसका अनुवाद अभी नहीं हुआ है, उसको अवश्य पढ़ना है। पता चलेगा कि कितना भारत जो है वहां पहुंचा हुआ। देखिए, आप सबको पता होगा कि 6वीं शताब्दी में तो बौद्ध धर्म जो है वहां का स्टेट रिलीजन, राज्य धर्म। इसलिए तो ये संस्कृत मिश्रा में अगर पढ़ेंगे तो वो जो दिलचस्प कहानी आती है कि और जाके कि राजकुमारी ने ओडिया के राजा किंग सूरो से शादी की थी, वो संस्कृत मिश्रा में है। और मजेदार बात यह है कि जो किंग सूरो है वो अंडे से पैदा किया, पता है कि अंडे से पैदा हुआ है। तो मैंने मजाक मजाक में कहा था कि यार ये जरूर भारत से या कहीं से आया होगा, क्योंकि अंडा तो गोल होता है, वो कहीं से आ गया होगा, कोरिया नहीं होगा, तो उसने यहाँ की राजकुमार से शादी करनी चाहिए होगी। लेकिन जो होमचम हो, उसका नाम है राजकुमारी का, वो जो वहां गई थी, उसकी वह समाधि है वहां पर। भूटान जो एक जगह है समुद्र तट पर, वहां पर चीन है जगह है कि में गाया किंगडम, और गाया से गया का भी बोध होता है। और वहां पर जो है वो उन्हें वहां पर जाकर के विवाह किया था। पहली बार में वो सफल नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी बार में वो बौद्ध की मूर्ति ले गई थी। और कहते हैं कि वो पत्थर जो यहाँ से गया था, वो जो वहां के मंदिर में लगाया हुआ है, वो वहां नहीं मिलता है, कोरिया में मिलता है। और ये कहानी आज तो बहुत ही प्रचलित है, पहले नहीं थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे, कुल एक एक चीज और बताओ। पहला ही मेरा जो अनुभव था साउथ कोरिया में, तो मैं, एक मेरा विद्यार्थी है जो अंग्रेजी जानता है ज्यादा, अंग्रेजी में बहुत कम लोग जानते थे पहले, अब तो उन्होंने छोटी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं उसके जा रहा था, एक बच्चा आया, उसने 2-3 शब्द बोले, फूल, टागोर, गांधी, ऐसे करके। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद कुछ मुझे सुनाया। तो मैंने उससे पूछा क्या बोल गया भाई बच्चा, और एक इंडो, वो इंडियंस को इंडो बोलते हैं। उनसे कहा कि ये उनसे पूछे भारतीय है, मैंने कहा हाँ। जैसे ही मैंने कहा ये भारतीय है, उसने कहा अच्छा ये बुद्ध और टैगोर के देश से है। तो मैंने उसके बाद कहा कि उसने टैगोर की 4 पंक्तियों की कविता सुना दी, जो अंग्रेजी में तो है ईस्ट ऑफ द लैम्प के रूप में, द गोल्डन एज ऑफ एशिया, कोरिया वाज वन ऑफ इट्स लैम्प bearers, and the lamp is waiting to be lighted once again for the illumination of the east. इसका मतलब 62 साल के बाद मुझे वाइट सोसाइटी ऑफ डेमोक्रेसी कोरिया, जिसकी संस्थापक है किम यांग सिक, और किम यांग सिक वहाँ की पहली कवियत्री या लेखिका है जिनको साहित्य अकेडमी की फेलोशिप भी मिली, पद्मश्री भी मिली। भारत की बहुत प्रेमी है। एशिया के स्वर्णिम युग में रहा कोरिया एक दीप वाहकों में, और कर रहा फिर प्रतीक्षा वही दीप होने को ज्योतिष, करने को पृथ्वी आलोकित, पूरब का प्रांगण यह सारा। ये मैंने इसलिए बताया कि हम भारतीय साहित्य को विदेश में ले जाना क्यों चाहते। आप देखिए 4 टैगोर कभी भी दक्षिण कोरिया, या तब तो कोरिया ही था, कोरिया नहीं जा सकते, जापान जाते थे। तो जैसे हमारे, जब हम प्राधीन थे उस समय हमारे लोग इंग्लैंड में रहते थे, वैसे ही कोरिया के लोग भी बाहर रहते थे। तो वहां जब भी जाते थे वो कहते थे हमारे और आपकी दशा एक जैसी है, कृपा करके कभी कोरिया के बारे में भी कहिए। और टैगोर को नोबेल प्राइज मिला
तो साउथ कोरिया ने उसको ये कहा था कि एशिया के पहले नोबेल laureate, ये कहकर सेलिब्रेट किया। तो 1929 में समझ में आया टैगोर को कि यार बात तो सही कह रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से मूल अंग्रेजी में, वो हमेशा हमेशा बंगला में लिखते थे टैगोर, अंग्रेजी में लिखते थे, अनुवाद जरूर करते थे, लेकिन मूल जो है जैसे किसी को हस्ताक्षर देते हुए लिखते हैं, ये 4 पंक्तियां लिखी। और ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि कोरिया जब लगभग हमारे साथ ही आजाद हुआ था कि उसके बाद पाठ्यक्रम में रखी गई, और वो भी मिडिल क्लास, और बच्चे बच्चे की जबान पे आ गई। मित्रों, ये होती है साहित्य की ताकत। 4 पंक्तियां पूरे देश को ज्वलित कर देती। यहाँ हम प्राय कह देते हैं कि बना हुआ है, पढ़ता कौन पढ़ता है, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, असर होता है। उनसे पूछिए, हम मुश्किल ये होती है कि हम उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने में कितने कंजूस या कितने खुले हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपका वो पढ़ा जा रहा है, घुरा जा रहा है, समझा जा रहा है, पूरा देश जो है इन 4 पंक्तियों से उत्पलित हो। टैगोर को, जैसे टैगोर का बहुत प्रभाव है। एक कवि बहुत बड़े हुए हैं और हाल उन साइलेंस ऑफ पोएट्री उन्होंने लिखा, और साइलेंस जैसे सब जगह होता था वहां पर ही ये था। जैपनीज, मैं जो मुझे जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ, उन्होंने उनकी सारे जो चिन्ह हैं उसको मिटाने की कोशिश की। पैर की इमारत, स्थापत्य हो चाहे उनका साहित्य हो चाहे उनके किताब हो, कोई भी। इसलिए वो एक अजीब सा उनका रिश्ता बन जाए। बोलने देते अभिव्यक्ति की आजादी देती। इस साइड ऑफ लव, लव जो है वो कई अर्थ छवियां रखता है। लव का मतलब वो लव नहीं है जो हम देते हैं, यहाँ पर देश प्रेम जो है वो लव है। अभी मैंने साहित्य अकेडमी ने अभी हाल में एक किताब छापी है मेरी, किमसोवल की करता है सर, वो केवल 32 साल की उम्र में मर गए, और कोरिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा लाडला कभी माना जाता है। चंदाला को बच्चों की जबान पर एक ही संग्रह उसका सब उस प्यार और उसके उन छोटे छोटे उन्होंने सबसे बड़ा फोक को लिया उसने, और फोक को जानबूझ के लिया। पहला आधुनिक जो कवि है वहां से उनको माना, उसने कहा कि मैं पश्चिम के फॉर्म्स की क्यों नहीं, मेरे देश की जो पहचान है मैं उसको लेकर के अपनी कविता लिखूंगा। मुझे याद आ गए अपने देश के कवि तो यही तो कहते थे। उनकी पूरी कविताओं में वो थोड़ी सी किताब मैंने अनुवाद की है जो छपी है। टैगोर को लेकर के, बुद्ध को लेकर के, उनके यहाँ जो क्लासिकल पोएट्री रही है पुरानी, उसमें जो गाथा, पेंगा, ये फॉर्म रहे हैं। जैसे हमारे दोहा होता है, या जापानीज में क्या होता है, हाइकू होता है, ऐसे वहाँ भी है इस तरह का। अब एक में भी थोड़े से मिलते हैं, लेकिन उसमें जो है बुद्ध के सारी शब्दावली बहुत खुली थी। हमने तो टैगोर को लेकर के बहुत शानदार कविता लिखी। वो जो पंक्ति है ना उनकी की अपने मस्त ऊंचा रखो, वो उनके जवाब में छाई हुई, यानी भारतीय साहित्य के प्रति उनका लगाव है। भाषा जब भी आप सिखाते हैं तो खुद पर खुद आप साहित्य और संस्कृति भी सिखा देते हैं, और दर्शन की अनुभूति भी चली जाया करती। इसलिए कोरिया जो है बुद्ध और टैगोर के कारण से भारत को बड़े करीब समझते हैं, और वो चाहते हैं कि आपस में जो है दोनों देशों का साहित्य का आदान प्रदान है। लेकिन मुश्किल क्या है कि वो आदान प्रदान की स्थिति अभी बहुत कम है। पहली कविता से लेकर के, और जब मैं गया था उस समय से साहित्य अकेडमी ने ही वो काम किया कोरिया कविता यात्रा के माध्यम से, कि बहुत सारे कवियों की रचनाएं करती लोग जानते नहीं थे। किमिया सिक्का तो इंडिया करके इतनी सारी कविताएं हैं, लेकिन रीजन वो एक बहुत प्रोफेसर है तो गांधी कोई बहुत मानते हैं,
तमस का अनुवाद किया। और बहुत साधुओं ने कहा कि जैसे तमस में बंटवारे को लेकर के हमारे यहाँ भी चीज रही थी। सकार, धूमिल, काशीदास, ज्ञान रंजन, इन लोगों की रचनाएं हुई हैं, लेकिन किताब के फॉर्म में नहीं आ पाए। इसी प्रकार से मैं क्योंकि अपने आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूं, वे अपनी भाषा को, कोरियाई लोग और अपने साहित्य को बहुत प्यार करते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा जब साउथ कोरिया से मैं आके ये जो साहित्य अकादमी से किताब बता रहा हूँ, कोरियाई कविता यात्रा जब छपी तो यहाँ पर जो है देगू नाम की कंपनी आई थी उन दिनों, उन्होंने बुलाया मुझे। ऐसा ये बड़ी दिलचस्प बात है, वहाँ प्रेसिडेंट कहते हैं वहाँ के हेड को, उसने 250 प्रतियां खरीद ली साहित्य अकादमी। तो मैंने उनसे कहा, बहुत दिन बुलाया था कि आप क्या करेंगे इन किताबों का? कहते मैं यहाँ पर मेरे जो कंपनी में भारतीय लोग काम करते हैं उनको मैं मुफ्त में बांटूंगा, पढ़े हमारे साहित्य। पता नहीं है भारत के लोग, वहाँ की कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन इसलिए जो है बहुत जरूरत है हम लोगों को कि आपस में करें। बहुत कम काम हुआ है। मैंने कोरियाई लोक कथाएं इधर से किया, तो वहां से जो है जैसे बताया मैंने कि कुछ साउथ कोरिया के भी या कुरान्स होते हैं, जो दोहा होते हैं, उनका अनुवाद भी किया, लेकिन उसके लिए वहां की सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने पैसा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, हमकी और आते आते मुझे लग रहा समय हो गया, कि बहुत बड़ा दायित्व जो है वो हमारी यहाँ के साहित्यिक संस्थाओं की भी, उस देश के जो में हमारे जो कल्चर सेंटर्स हैं उनकी भी है। क्योंकि शो किया तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर इसको व्यवस्थित से करना होगा और सचमुच में हम भारतीय साहित्य को अनुकूल पा ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, आर्थिक दृष्टि से भी और लोगों को प्रेरित करके। विश्वविद्यालय स्तर पर भी होना चाहिए और हर स्तर पर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है तो जितना काम होगा, इधर कुछ ही प्रकाशक है जिनके यहाँ से राजकमल से जैसे आया, वहां से मैं बस बता दूं, कोरिया एक उपन्यास है रंगमंच, पढ़ना लायक। उसमें जो नायक है वो बड़ा दुखी हो जाता है जब वहां के जब बंटवारे वजह से। तो आप सोचिए कि वो शरण लेने कहाँ आना चाहता है, भारत में, लेकिन रास्ते में आत्महत्या करने पड़ जाती है। ऐसे ऐसे नावल जैसे भी चीजें वहां पर भी है, हमारे पास भी है। तो ये आदान प्रदान बड़ा जरूरी है। मेरी एक किताब है, शेष बता दूं, सम एस्पेक्ट्स ऑफ कोरियन एंड इंडियन लिटरेचर। अगर जब रुचि होगी तो आप उसको देख लीजिए, मुझे रुचि है। अभी समय कम है, मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत अभी प्रबुद्ध जनों की सभा है, लेकिन हाँ आपसे निवेदन यही है कि जागर में सागर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 2 वक्ता और हैं, फिर हमें अध्यक्ष जी को भी सुनना है। अपने अगले वक्ता को लेट मी इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर, हु इज श्री प्रभाती नौटियाल जी। He is a Hindi poet and translator. He has translated various Spanish Portuguese works into Hindi. He has edited Pragati India in Spanish for the India Trade Promotion Organization and has compiled the Hindi Spanish and the Spanish Hindi dictionaries for the Central Hindi Directorate. He has been felicitated for translating into Hindi João Manuel Marcos's novel in 2012 and has received the Shabd Sadak Samman. He is a retired Spanish professor from the Indian Institute of Foreign Trade. Please welcome Shri Prabhati Nautiyal ji. सबसे पहले तो साहित्य अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भी याद किया।
और डॉक्टर ऑस्कर यहाँ पर है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि सब्जेक्ट जो है, जो विषय दिया है वो है कि भारतीय साहित्य विदेशों में। तो प्रोफेसर ऑस्कर के बारे में पहले बताया गया ऑलरेडी, लेकिन शायद एक चीज आपने मेंशन नहीं की कि वो 17 वर्ष बनारस में रहे हैं, अध्ययन किया है, और खाली उन्होंने बीए एमए नहीं किया है, जितना अध्ययन उन्होंने किया है वो हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि एक विदेशी यहाँ करके हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी संस्कृत का जितना अध्ययन उन्होंने किया है, और अध्ययन ऐसे नहीं किया है कि बीएचयू में जाकर के उन्होंने लेके डिग्री ले ली, या उन्होंने जिक्र किया, मैंने उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा है, क्योंकि किसी मित्र ने कहा है, तो उसमें ये है कि इन्होंने संस्कृत जो विश्वविद्यालय में पढ़ी वो तो है, वहाँ के उन पंडितों से भी पढ़ी है जिनका कहीं विश्वविद्यालय में जिक्र नहीं होता है। घूम घूम करके उन्होंने उन लोगों से पढ़ा है, और बल्कि उसमें उन्होंने खेद भी प्रकट किया था कि ऐसे लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और शायद उनके साथ ही बहुत कुछ चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हम सब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को, संस्कृत साहित्य को, जो कि अब हम लोग ही नहीं कितना संस्कृत साहित्य जानते हैं, नहीं जानते, उपनिषदों का अनुवाद किया है। शब्दकोश सिर्फ स्पेनिश हिंदी स्पेनिश संस्कृत का ही नहीं, इन्होंने कतालान का भी शब्दकोश, जो पहले शायद कतालान का शब्दकोश किया। कतालान की एक भाषा है स्पेन में। नहीं आपने क्या, मैं वैसे जनरल में क्या तो उन्होंने मतलब शब्दकोश बनाना अपने आप में एक पुनर्जन्म है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि शब्दकोश में कविता लिखना आसान है, कहानी लिखना आसान है, गद्य की कोई किताब या संग्रह बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन शब्दकोश सचमुच अगर शब्दकोश बनता है तो उसके पीछे इतनी मेहनत है कि उसका कोई उसका एक तरह से आप कितना ही गुणगान कीजिए कम है। क्योंकि एक छोटा मोटा शब्दकोश मैंने भी बनाया है डायरेक्टर के लिए, जिसको बताने में भी मुझे शर्म आती है, तो इसलिए शर्म आती है कि 5000 शब्द का शब्दकोश क्या कर। और अगर हमारे देश की एक संस्था, जो सरकारी संस्था है, वो कहती है कि नहीं इतने का बजट है, 5000 शब्द को 5000 शब्दों का शब्दकोश बनाइए, तो मजाक ही है, एक खाना पूरी है। तो इस तरह का काम अगर हम अपने देश में कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि विदेश में हमारा साहित्य बहुत बढ़े, उसका प्रचार हो, प्रसार हो, तो थोड़ा सा हमें अपने भीतर भी झांकना जरूरी है। अनुवाद हम लोगों ने, मैं तो विदेश के बारे में ज्यादा नहीं कह सकता कि कितना स्पेनिश में कितना साहित्य यहाँ से वहाँ गया है, क्योंकि स्पेनिश भाषा ही 20 देशों में तो बोली जाती है। उसके अलावा अमेरिका, कुछ देश और हैं जिनकी वो नेशनल लैंग्वेज है। तो इन देशों में इसने कितना काम किया, इसका गणित बहुत मुश्किल है। शायद डॉक्टर उसका किस प्रकार का तो हो सकता है, लेकिन मैं कुछ लोगों को सिर्फ जानता हूँ जिन्होंने काम किया है। एक फेलिक्स, डॉक्टर फेलिक्स भी थे, वो मेरे टीचर भी रहे हैं। वो अमेरिका में पढ़ाते थे पहले, वो यहाँ मिशनरी के रूप में उन्होंने काम किया है, और उसके बाद वो संस्कृत का भी काम उन्होंने किया, उपनिषद का भी उन्होंने अनुवाद किया है। तो स्पेनिश के अलावा स्पेनिश बाकी मैं सिर्फ मैक्सिको गया हूँ, और मैक्सिको मैंने देखा है वहाँ कोई 6 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, और साहित्य ना के बराबर है। सिर्फ गांधी साहित्य जरूर कुछ छपा है, और टैगोर का जरूर है, क्योंकि सबसे पहले तो टैगोर ही गया है। तो बाकी हिंदी का मुझे नहीं जानकारी कि कितना साहित्य वहाँ गया है, हमारा साहित्य वहाँ। इसके अलावा जो चीज जैसे कि उन्होंने दिलीप जी ने भी उठाई एक बात कि हम लोग जो अनुवाद करते हैं, तो यहाँ पर अनुवादकों के बारे में
हम कितना सोचते हैं, क्योंकि अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। साहित्य का संस्कृत से किया है डॉक्टर ओस्कार ने, वो और गंभीर बड़ी बात है। हम लोगों ने मैंने एक उपन्यास किया, पैराग्वाई बहुत छोटी कंट्री है, यहाँ लोगों को मालूम भी नहीं कि पैराग्वाई है कहाँ, लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका में एक छोटी कंट्री, उसका बल्कि वो उपन्यास जो है मैं कल देख रहा था लाइब्रेरी यहाँ बुक स्टॉल पे, तो अभी 2024 में भी एक एडिशन उसका आया है उस उपन्यास का, तो मैंने किया था। वो यही उसके मुझे नहीं मालूम कि कितने साहित्यकार साइंस के यहाँ आकर के अपनी किताब का विमोचन किया, लेकिन वो यहाँ आए थे। ये 2012 में मार्को का उपन्यास है, मैंने उसका हिंदी किया है, और वो खुद आए थे यहाँ, उसका विमोचन ही इसी हॉल में शायद हुआ था। वो एक उपन्यास वहाँ की एम्बेसी से ज्यादा, क्योंकि उनकी 22 सेंटेनरी सेलिब्रेशन था इंडिपेंडेंस का, तो उसके लिए जैसे हमारी एम्बेसीज करती होंगी वहाँ, तो ऐसे यहाँ भी एम्बेसीज करती हैं, तो उन्होंने उन्हें कुछ करना था, लेकिन वो छोटी एम्बेसी है, छोटा देश है, तो उनके पास बहुत बजट नहीं होता, तो खुद उपन्यासकार ने अपने पैसे से यहाँ छपवाया है। ये भी देखिए एक बड़ी बात है। ठीक है, उनके पास इतना पैसा है और था, तो उन्होंने ये किया है। और वो उपन्यास अभी मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि हिंदी में जो साहित्य अकादमी से छपा है, वो अभी 5 और भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ होगा हिंदी से। मेरी जानकारी में नहीं है कि और कितनी ऐसी किताबें हिंदी जो वहां से मूल से हिंदी में आई हैं और फिर और भारतीय भाषाओं में। अंग्रेजी तो है, वाया लंदन वाया वाशिंगटन तो पुराना रूप है, लेकिन हिंदी से मेरी जानकारी में नहीं है कि कितनी ऐसी किताबें और भाषाओं में, हमारी भारतीय भाषाओं में, 5 भाषाओं में, 3 और भाषाओं में, बांग्ला में और तमिल में भी वो छपी है। एक तमिल में वो अंग्रेजी से छपी है और बांग्ला में वो फ्रांस से ही किया गया। तो एक तो अनुवाद का जो सिस्टम है ये बायलैटरल होना चाहिए। कई संस्थाएं हैं कर रही हैं, कुछ अपनी लेवल पे करती हैं, या कोई आ रहा है, किसी में कोई पैसा देना है तो वो जाता है, वो एक है। लेकिन क्या ऐसी संस्थाएं हमारे यहाँ हैं जो इतनी गंभीरता से इस काम को करती है कि साहित्य इतना आसान काम नहीं है। साहित्य का आदान प्रदान तभी होता है जब बायलैटरल हो। बायलैटरल सरकारी स्तर पर नहीं, वो लोग जो काम करते हैं, और इसमें कम से कम अनुवादक की जो स्थिति है, आपको यहाँ पर मैंने एक संग्रह निरुदा का किया है। निरुदा छोटे मोटे कवि नहीं है, ऐसे ही उनका संग्रह किया था। मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, वो मेरे अनुवाद किसी और ने मंच से पढ़े, मुझे बुलाया तक नहीं गया। ये अनुवादक की स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं पिछले 4 दशक से लगा हुआ हूँ। इकला चलो रे वो है कि मैं करता रहता हूँ और करता भी है कुछ। एक करीब 1-2 किताबें मैंने की हैं, काफी मैं कर सकता हूँ किया है। और इसके अलावा मैंने जो काम किया है, तो एक पत्रिका निकाली थी जो कि लोरका के नाम पे, फेडेरिको गार्सिया लोरका, स्पेन के बहुत बड़े पोएट, उन्हीं का एक संग्रह अभी मैंने कंप्लीट किया है। अभी उसका विश्व पुस्तक मेले में उसका वाही है। ये सेवांतेस इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ था, उसमें वो किताब आई है और चित्र प्रकाशन ने छापा है, रजा फाउंडेशन में। मैं कई जगह भटका कि कोई इस किताब को फेडेरिको गार्सिया लोरका का नाम ऐसा नहीं है कि मुझे प्रमोट करना चाहिए, उनको जानते हैं लोग, लेकिन तभी मैं कितने दरियागंज के चक्कर लगाए, लेकिन तैयार नहीं थे लोग छापने पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ओस्कार का कि उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये तो छपना ही चाहिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसा कोई अभी तक संग्रह आया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ एक आध जगह सजेस्ट की, नहीं तैयार हुए। मैंने अशोक वाजपेयी से
कहा कि ये है, उन्होंने कहा कि 75 कविताओं का अनुवाद बाइलिंगुअल ये तो नहीं छपेगा तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि मैं छापूंगा, और रजा फाउंडेशन से उन्होंने उसको छापा। इसलिए नहीं जो मैंने किया है, मैं ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनुवादकों की कोई कदर नहीं है हमारे मुल्क में। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं जो साहित्य अकेडमी के माध्यम से एक और चीज जो जो हाईलाइट होनी चाहिए और बहुत जरूरी है कि 5 भाषाएं जीवन की जो है, हम तो चाहते हैं कि हिंदी भी हो जीवन में, लेकिन क्या हम उनकी भाषाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं? 70 वर्ष अगर हो गए हैं तो क्या हमें नहीं पता कि हम 5 भाषाएं जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं वो भी रिकॉग्नाइज नहीं होती? पहले हिंदी करो, ये तो कोई बात नहीं है, हिंदी भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और भारतीय भाषाओं की बात, भारतीय साहित्य की जब बात करते हैं तो भारतीय साहित्य नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे तो यही विद्वानों से, क्या है भारतीय साहित्य? हम बात करें तमिल साहित्य, गुजराती, बांग्ला, भारतीय साहित्य तो, क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म भी एक नहीं है। आप जाइए, कितने राम हैं, कितने कृष्ण हैं। आप जाइए, शादियां हमारी होती हैं, तो हिंदुओं की शादियां होती हैं, हिंदुओं में कहूँगा बस, और उसमें कितने रीतियां हैं, कितने रिवाज हैं, कितने तरह के ब्राह्मण उसको करते हैं, कितने रिचुअल्स हैं। तो इसलिए भारतीय साहित्य कहना भी कोई वो नहीं। हाँ, हम कहें कि तमिल साहित्य होना चाहिए, तेलुगु होना चाहिए, मलयालम होना चाहिए, गुजराती होना चाहिए, ये तो बात है। तो अभी बात यही, कुछ कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप यहाँ पे खड़ी हैं मुझे समाप्त ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और साहित्य अकादमी का कि मुझे मौका दिया, और डॉक्टर होस्टर का किसी को यहाँ आए और उनका सम्मान आपने किया। धन्यवाद। बदल गई। और आपको ऐसा ऐसा प्रभाती जी, ऐसा क्यों लगता है कि ट्रांसलेटर्स आर नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस? आई हैव बीन अ ट्रांसलेटर। मेरे साहित्य अकादमी में सह संपादक थी, इंडियन लिटरेचर नाम की पत्रिका आती है, उसके लिए कई साल मैंने काम किया। उसके बाद में मेरे पास अपना ट्रांसलेशन का आंसर बहुत आया, एंड ट्रस्ट मी, ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं जैसे आप बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की किताबें अकादमी में निकाली थी 2021 में, द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ, फिर एनजीए में है ना, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, उनके लिए पुस्तक बात है। अभी आईसीएचआर है, मराठा इतिहास और श्री अरविंद। और फिर जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी आती है। हम को अच्छे से करें, एवरीथिंग फॉलोज एंड सो फॉर, क्योंकि हमारी, देखिए हमारी संस्कृति क्या है, उत्सव की संस्कृति है। हम साहित्योत्सव मना रहे हैं, हमें होप और उम्मीद तो रखनी ही पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। और अपने को कम कर न समझे, 5000 शब्द भी कम नहीं होते। कोई ऐसा होगा जो जरूर इस्तेमाल कर रहा होगा आपका शब्दकोश और आपको दुआएं दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सोनू सैनी जी हमारे साथ हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर। Sonu Seniji is an assistant professor in the Center of Russian Studies at Jawaharlal Nehru University and is well known for his expertise in the area of Sanskrit literature and language. He has published more than 35 research articles in various national and international journals, 10 books, 6 research journals, etc. He has served as an interpreter for the Honorable President of India, the Honorable Prime Minister of India, Honorable Minister of External Affairs, NSA, along with other ministers of India and Russia. He has translated from and in Russian. She's Sonu Seniji. Please, Anne. पहले से स्वागत करेंगे। करियो भी नहीं करेंगे, कल करेंगे। Thank you very much, dear colleagues on the dais and in the hall, dear friends, and some of our students are also here. Thank you very much, Sahitya Academy, for inviting me here. And I'm glad to see the most, the largest festival of literature of the world, like we can say. This is like a unique kind of program. I had been coming to this program earlier also.
and I can see that this is like a unique program which is organized by the Sahitya Akademi. It's a kind of treat for all literature lovers as well as translators as well as readers in our country. So for that, like I would like to congratulate Sahitya Akademi for this program. With my just correction that I am working in the field of not Sanskrit but Russian. So it was just, I think, maybe I heard slip up. Can we have a presentation, please? So meanwhile, we turn on the presentation. Still there is some technical issue, but it's okay. You know that you are aware about Russian literature and its popularity in India. But you know that earlier, like during the Soviet time, a lot of literature of Russian literature was translated into Indian languages, and some literary works were translated from Indian languages to Russian. Mostly, of course, like they were done in Russia. If there were very few people in India living here and translating into Russian. So what I partially agree with Sir Nodal sir who said that translators की थोड़ी जो value है वो हमारे यहाँ कम है. If we compare to European countries, there like translators are considered equal to the author or poet. But here, like in India, unfortunately, it is like that. But since it is all it has some history and background, so I'll not go into that. But yes, to improve that situation, it is also in our hand. It's also in our like the translator's hand. And as like the Devik sir said, that आदान प्रदान बहुत जरूरी है. It should not be only one way literature, one way direction. It should be like two-way direction. So with this, this is just like overview what we are going to say. Okay, translation and practice we are all aware about. And like it is all started, if we talk about Russian literature, it started with Afanasy teaching. But mostly people, we know that the journey with Russia, it started from there. But no, there are evidences like we have found that the Indian and Russian cultural contexts were there even before, like recently in one of the area, it's called Staraya Maina. They found artifacts of Indian culture, like Vishnu's Murti, it's Vishnu or Kali. Two things are being debated, like we are working on that, whether it is Kali or it is Vishnu. So they found these one and also the coins of Samantadev time period. So which shows that you know that the relationship between Russia and India were more beyond than the Afanasy teaching. And for that, like we have recently got a major research project from ICSSR. We are studying that and establishing the facts as well. And like translation of various genres, what we are trying to work, like as Professor Deepak sir also has translated Parva into you know Chinese, and we translated it from English to Russian under the project of PMO. After that, like we started our journey translating not Russian literature into Hindi. That of course we are doing it. Many works we have translated from Russian into Indian languages, Hindi and English. But we also started the reverse translation, like from Indian literature to Russian. And initiator Professor Indrajit ji is here. Like he suggested once that let us try to translate this poet. And he's a wonderful poet, Ishaq Kamil. You must be knowing him like for many songs like Jab We Met and many other famous films, Ranchana. All songs were given by Ishaq Kamil. So we tried to you know translate one poetry. We started with one poetry, and it was received well. And then we started with the whole collection of the book. And this was the first translator with a translation of Ishaq Kamil, or we can say the modern Indian poetry into Russian. And then the reception was so good that we were all invited to Russia with Ishaq Kamil ji, and Indrajit ji was there. And the book was launched in the Embassy of India in Moscow. So that was also a great one. Then the journey started with other poets also. Then we translated Sachidanand Joshi ji. His 51 poems were selected, and we translated it from Hindi to Russian. Then during the after the corona, this Banshi Maheshwari ji
through Professor Baryam Singh approached us like whether we can translate. And since I personally had some tragedy during the corona, so it was like close to my heart, this topic. So I just said, yes, I would like to translate. I would like to also tell Russian readers like what all happened in India during that time. So that is all is there in the poetry of Vaishnav Maheshwari, which we translated from Hindi to Russian. Then this Tejinder Singh Luthraji's poetry also we translated from Russian into from Hindi into Russian. Around 41 poems are here, along with my colleague Pragati Tiknisi, she is in Moscow. And then the recent which we have translated this Katai Mushkil Nahi, Madhav Kaushik ji's collections of poems. This is also translated into Russian. And there's also a very good news like which we received yesterday that like recently we had a conference in here in Sahitya Akademi in association with Sahitya Akademi and with the Russian Cultural Center. So many Russian scholars came, translators and writers. They we gifted them these books like because these books were these books were launched during that time, and they went and then yesterday they called that the Association of Writers of Tatarstan would like to translate all these poets into Tatar language from Russian because they don't know Hindi but they know Russian. So as like works are available in Russian, so now they are planning to translate all these poets into Tatarstan. That is first time in the history has happened, like Indian poets not translated only into Russian but also into Tatarstan, like Tatar language. So that is also a thing like as we were saying, Adan Pradan, that is one of the movements like which we are running, and we have for this purpose like we have made a formed an association of translators of Indian Rusis. That means like the translators who are engaged in Russian translation from Russian to or vice versa. So they all have joined, around more than 100 members have joined this organization. This is a voluntary organization, and they have like joined from various states of India, for which like we had this conference as well. So that is also like which we are planning some more movements in this area, like to translate not only from Russian into Indian languages, but also from Indian languages to Russian languages as well. The recent, this is also like it is in progress. It will be soon translated. It's a book of on Shailendra, written by Dr. Indrajit ji, who is sitting here. This will be also translated by us, like with Pragati ji. And these are some cultural elements. I'll just shortly, briefly, I'll just tell about what all issues we face when we translate Indian poetry and how do we do that. So, like Nandi Path, it's a poem of Sachidanand Joshi, as he's connected to theatre, and he has this kind of various places like he would talk such kind of words which are related to the Indian culture. And Nandi Path, we could not translate. We cannot translate. There is no equivalent in Russian language. So what we do like we try to give in the same way like mantra Nandi. Like for them like part can be also a mantra. So mantra Nandi, and then we explain what it is actually, so that the Russian reader also learn about Indian culture because and then in their language. Then like this poem Ma, there is the equivalent about Ma, like Ma's is the equivalent of mother, but we also insisted to put the word Ma, Hindi Ma, like which is there on the first word in inverted commas, Ma. And then later on we say mama and mother, like in Russian. So that some Indian, cultural nuances also go into the penetrated into the Russian text. And then we explain like what ma is. So that ma we use as like Hindi word and mats, that is Russian word, that also we use. So that a mixture of some Indian cultural aspects and like which are touchy, because this poem was very touchy. So I thought like we cannot convey the meaning of ma into mother or like mummy. So that is why like we try to include such kind of things. Then like Roedar Pyali,
it's not possible because they don't have like this kind of concept. Rohidar pyale. If we just say about cucumber, we know that in cucumber we have this growing, which shows that there is some freshness. So that's why like such kind of things are need to be explained, and that is what we do try to explain, and of course try to find the closest equivalent of that poetry. टपकते रहेंगे ख्वाब. अब टपकते रहेंगे ख्वाब हमारे लिए समझ में आता है कि टपकना किस चीज को कह रहे हैं, बट वहां पर we have translated as like rain of dreams. The Dostoevsky is in Russian called rain of dreams, which they understand. So that way they cannot understand if we say टपकना, because वहां पर टपकने का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. तो हमारे यहाँ घरों में होता है, बाहर होता है, बारिशों में होता है, या कहीं किसी चीज से होता है. But that's why like we try to translate, we try to save the soul of the poems or the work and try to convey in the way like the readers would understand it in a better way. So there are other like such kind of examples. These are what some of the examples which I just showed, that we try to convey our Indian culture with some cultural nuances and explain them and try to promote that in not only in Russian language but also in other regional language. Thank you very much. Thank you so much. You put in so much in the required participant. Thank you. Dr. Sonal is always very, very cooperative. और अब जिस शैम्पान सबको बहुत बहुत इंतजार है, डॉक्टर ऑस्कर फियोल, who carry your intellect very lightly, but we are in awe of you and we're waiting to listen to you. Absolutely wonderful to have you with us. A big hand for the chair, Dr. Oscar Fiol. Thank you very much, Gomiji. It's such a pleasure to be here today for me. And well, I would like to start just commenting on this wonderful panel that we had, and beginning with Deepak Ji, And one thing that I think is very important about China and India is that what the Chinese did with the Sanskrit text, I think it's a unique thing. And as far as I know, and maybe I am wrong, but it's the first time that one civilization takes the job of translating another civilization in such a systematic manner. And this is something, that I think is not been highlighted enough in the history of translation in the world, because and right now, for instance, I am working in a historical dictionary of the Yoga Sutras, and I miss Chinese very much, because there are so many Sanskrit texts that were translated by the Chinese in the first centuries after the Common Era, that after they were lost in Sanskrit. They were completely lost. And we have the effort of Sanskrit pandits retranslating those words from Chinese and Tibetan again into Sanskrit, like Alankara Sutra, for instance, by Pranam. And this is, I say, it's a unique feat between two civilizations that unfortunately now seem to stand as enemies, but that they were really, collaborating each other in a very pioneering way, and that's something so important. About Ramesh also, and thanks very much for your contribution. And one thing stands, which I think is very important, everybody is mentioning, and I am going to mention again, is the Adam Pradam. Very, very, very necessary, and it should be a two-way traffic. I have here also a Ganguly, which and we all of us also and Pravati, all of us, try to keep this two-way traffic, which is a really meaningful dialogue between culture, no? And that's and that's so important. And you are both a writer and a translator, which is, I think, very, very, very important. And what to say about Pravati, I know him, and we just published a wonderful collection of local poems. And this, as far as I think, it's not only the biggest collection of local poems,
But also, and that's what it struck me when Parvati came to us, is that it is a collection it has a chronological order. It has a very good sense, critical sense in editing those poems. Lot has been translated many times, especially in Indian Bengali, but that was a very sought after contribution. And Parvati, I hope this dictionary, it's very important, as you know, dictionaries are really cornerstone. And finally, commenting about the works of Sonuji, I am very impressed by one thing, which really, and I say this very sincerely, because it's very rare. See, like, I translate from Sanskrit into Spanish, into Catalan, but it would be for me very difficult to translate. And I did once a translation of some Spanish poems into Sanskrit, but it would be for me very difficult to do a translation from Spanish into Sanskrit in a professional manner, as you are doing with a Russian. And this is a wonderful thing because he is not a native Russian speaker, but he produces, it seems, such quality work that has a very good reception in Russian side. And finally, I would like also to mix another thing which I find almost symbolical is that you are in Tiruvalluvar room here, Tiruvalluvar room, sorry, and here was the Tirukural. And you all, about 1 month ago, he came to see me, Vidushi on Tamil language. He's from Chennai. And he was searching for somebody to translate the Tirukural from Tamil into Spanish. That exists. We have translations into Spanish, but they are always through English, French, through other European languages. Okay, it is so difficult to find people able to translate from original Indian words into my language, Spanish, that's a major hindrance in the preparation. No? Finally, we were able to find somebody, and it seems to be able to carry this task. But what I want to say is that the need of the hour is to have good translators from Indian languages into not only European languages, but also Asian languages. I proposed to that person because it was so difficult to find someone, because all the requirements that a good translator needs, and to me the most important one, and that's why I really admire the work of Sonu, is that you should know your own language very well. And you should know, in my case, Spanish, in a lot of people's case, Hindi or Tamil, but you should know your own language, not as a common speaker, but as a man of literature. You have to be able to write Tamil, to write Hindi, to write Bengali, like a real Indian writer, and not only the country. And that's a very important thing. And I told that lady, she's a professor, and I say, you know what we should do? I say, you give me a young boy, a young Tamilian boy, a young girl, who knows very well Tamil literature. You send them to us, and I am sure that we will teach them Spanish right from the beginning to the end, without a single peso. But our aim, is really to prepare people in each of the languages who will be instrumental in translating Indian literature to other languages. And that is a very important thing. Another thing that I am missing also in today's India, and you are, again, correct me if I am wrong, is not only, again, if I speak about, and I don't want to take this time, if I speak about which kind of Indian literature has been translated into Spanish language, as Pravati was saying, and as Professor Ganguly knows very well, and first of all, the first great phase, like China, we have a lot of Sanskrit literature translated into Spanish. Right? We have the Gita, we have the Yoga Sutra, we have the Upanishads, we have even poetry, and this translation from Sanskrit keeps coming again and again. Just incidentally, I translated the Gita last year. It's not even 1 year. And yesterday, my publisher said that it was going already in the 3rd edition.
So imagine the kind of interest that there is for this kind of literature. So Sanskrit is the language has been more translated into Spanish. Sometimes those translations are not direct from Sanskrit. Sometimes they are from English, from French also, which is a very important language to us, even from German. Now, this is very detailed translated straight from Hindi, even Bengali, into Spanish. From Hindi, I basically know only one person, and maybe Professor Gangouri knows somebody else, but it's basically Alvaro Interrio, who is going to be here day after tomorrow. He translated French directly from Hindi into Spanish. And the other great translator that we have in Spain is from Urdu. It's Rocío Moriones. She's really mahir in Urdu. He's very expert in Urdu. He's translated Manto and some classical works in Urdu. And Professor Gangouri, along with a poet friend of mine, Jesus Aguado, is also translating from Bengali into Spanish. We have Sandro Bandopaniai, who's also well known here, who's also doing a lot of work from Bengali into Spanish, and that's all. We don't have much more, no? And that's a pity. And that's our and our interest in India is quite recent because Spain was always turned towards America and not so towards India. But we realize in Spain that we need really and much more people knowing Indian languages. I would say that there is an asymmetry between what kind of Indian literature has been translated into Spanish and what kind of Spanish literature has been translated into Indian language. And I say this even with sadness and pride at the same time. Sadness from the Spanish side and pride from the Indian side, because our Indian colleagues have done much more than what we have done. And if you go now to the library of the Instituto Cervantes, you will see how many authors have been translated from Spanish into Hindi, most of them through direct translations, not only Lorca, Quevedo, Cervantes, and Clarín. I will make Neruda. I will make a long list of works that are available. I will say that the most translated, the language that I think the language that has translated more Spanish works into Indian language is not Hindi, it's Bengali. Bengali, they have been working there. They are pioneers in this. After is Hindi. Another language that's coming very strong is Marathi. Another language which is really very interested in Spanish literature is Malayalam. And in Malayalam, Malayalis, they love García Márquez. They translated everything in the 80s from English, and they would like to do that now straight from Spanish. But again, there is a lack of translators. I will stop here to say much more. It is a promising time for all of us. And I think institutions and people working at the institutions like cultural centers, myself, or universities, or Sahitya Academy, we should groom young people and make them learn languages properly. We should work together to send Indian people to Spain. We will work together to bring Spanish people and Latin American people to India and to have a long stage here. It's the only way to really learn well the language and indeed the culture of India. But that is very necessary. That's really the need of the hour. You see how politics is going today. Polarization, it's really all over the world. I was seeing Deepak, sweating with the problems that they have with China. But remember one thing, beyond politics, all cultures of the world will appreciate the literature of the other culture. Chinese will be crazy about Kalidas, about Buddhism. We are crazy about Upanishads, about the Gita and modern Indian writing. And one thing is sure, literature goes beyond politics, goes beyond polarization. And I think we should raise our heads high and say to the politicians, we are here to be together, to bind together different cultures beyond their possible enemies. Thanks very much. So much for the encouraging words, sir. Literature beyond borders, certainly. And with this, we come to the end to the session.
I request the delegates to please assemble in front of the stage for a brief photograph. I also request my technical team to please take the board to hand into the abroad. And thank you all so much. We assemble here at 4:30 p.m. for the multilingual poets meet. Thank you so much. Namaskar.
नल हो गए, देने वाला हो गया। अभी किए हुए तो ट्रेन में चलेगा ना। आवाज और नहीं आ रही। सही बात है यार, ये वर्ड जूनियर है। साउंड किधर है? हाँ अंदर बोलो। इधर देखो ये सही लगा है। वायर लीड नहीं लाए क्या? लीड नहीं लीड से अंदर लगा के चेक। हाँ हो जाता है। चेक करना। हेलो हेलो। आ रही है। आ रही सही है ना, तो इसको कर लेंगे ऑटो। ठीक है जाएगी मैनुअल, ठीक है जाएगी ऑटो। एक सेकंड में देखूंगा अच्छी चीजें अभी। दूसरे पे लगाई चक्कर। नहीं नहीं यार, एक दोनों पे स्कैन होता होगा कुछ। ऐसे ही करते हैं। बहुत मिनट ऐसे जाते हैं। 7 मिनट है तो देखो भाई, देखोगे तो 7 मिनट तो कैमरा चेक करके हम जाना भी तो पड़ेगा वहाँ तक। हैं, चले जाओगे कर दोगे? नहीं मैं कर लूँगा, फोटो कर लूँगा, तो मैं दो ही लगा रखा मैंने। पीछे लगा के देख लेते हो जाता तो अच्छी बात। तो भाई लीड है क्या? है लीड है कान वाली, उसमें पता लग जाता है। वो होती है यार। एक पे तो हो गया लेकिन दूसरे पे गिर गया।
बोलने पाएंगे शायद जो नहीं यार, स्क्रीन में कुछ आ गया तो इसमें सिलेक्ट कौन सा करते हेलो हेलो
Are we ready? Camera? साहित्य अकादमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है हमारे साहित्योत्सव में। और 2024 का एग्जिस्टेंस ऑफ द साहित्य अकादमी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लेखक अकादमी को अपना घर मानते हैं, और घर जो होता है उसमें द्वंद्व और द्वेष नहीं होता, प्रेम और सम्मान होता है। तो दिल से आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और दिन रात एक करके विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव जिसका आयोजन हमने किया है, क्या बताएं। और पहले से ही ये कह दें कि अगर कोई भूल से असुविधा या त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। आज हमारे बहुभाषी कवि सम्मेलन है, और क्या बताएं आपको, कवि तो आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इतनी संवेदनशीलता, कल से ही, पिछले 2 दिनों से ही ये सत्र जो है उसका संचालन मैं कर रही हूँ, और क्या कमाल कमाल के हमको विचार मिल रहे हैं, आनंद आ जाता है। तो आज फिर से ऐसा मौका आया है आप सभी के साथ रूबरू होने का। साहित्य अकादमी की ओर से मैं रूमी मलिक आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री मोहन सिंह जी। अध्यक्ष जी को मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी, और करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करेंगे। सर कृपया आए मंच पर, अपने स्थान ग्रहण करें। जितने लोग हैं उतनी तालियां, उस तरह से कवि को तो प्रोत्साहन बहुत चाहिए होता है, हम तो तालियों के लिए ही जीते हैं। प्रणाम सर, कृपया बैठें। श्री मोहन सिंह जी प्रतिष्ठित डोगरी लेखक, कवि, नाटककार, आलोचक और अनुवादक हैं। आपकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप डोगरी संघर्ष मोर्चा के संयोजक रह चुके हैं। आप पद्मश्री से विभूषित हैं। आपको आपके नाटक संग्रह अपनी ढफली अपना राग के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2001 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदर और सम्मान से आपका स्वागत करती हूँ। प्रणाम। अब मैं हमारे बाकी कवियों को बुलाना चाहूंगी मंच पे। श्री उथरीसार खुंगुर बसुमतारी बोडो कवि कृपया मंच पर आएं। राघव गुप्ता जी अंग्रेजी के कवि हमारे मंच पर आएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। देव सिंह पोखरिया जी हिंदी के हमारे कवि कृपया आएं। रानी श्रीवास्तव जी भी हिंदी से कविता पढ़ेंगी, हालांकि ये मैथिली में भी लिखती हैं, मंच पर स्थान ग्रहण करें। अरुण महात्रे जी मराठी के हमारे कवि आएं, स्थान ग्रहण करें। गणेश ठाकुर हंसदा जी सांथाली से कृपया आएं। गणेश जी, गणेश ठाकुर सांथाली जी। विमी सदारंगानी जी सिंधी से आए और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और नाहिद अख्तर जी उर्दू से कृपया मंच पर आए, स्थान ग्रहण करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये खुराक होती है कवि की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपस में बात न करें। देखिए कवि चाहता है उसे सुनना, है ना। सबसे बड़ा हमारा पारितोषिक ही यही होता है कि कोई हमारी बात सुन ले, है कि नहीं। एक बार एक बहुत बड़े चिकित्सक मुझसे बता रहे थे, मनोवैज्ञानिक हैं वो दिल्ली के, और वो मुझे बोले, और बड़े जाने माने, कहते हैं अरे रूमी मैं कुछ नहीं करता, लोग आते हैं मैं उनकी बात सुन लेता हूँ, और बात सुनने के बाद उनको ऐसा लगता है उनका दिल इतना हल्का हुआ। तो यही तो बात है, आज के जमाने में बात सुनने वाला ही कोई नहीं है। आपको हमने इतने सम्मान से बुलाया, कृपया आपस में बात न करें, फोन स्विच ऑफ करें या साइलेंट पे करें, है ना। और मैंने अपने वॉलंटियर्स को भी यही कहा है, ये आदेश समझिए। आगे बढ़ते हैं। अरुण म्हात्रे जी, इन्होंने हमें हमारे मराठी के प्रसिद्ध मराठी लेखक है। सबसे पहले ये इनका मैं परिचय दे दूं। अरुण जी आ रहे हैं। अरुण जी म्हात्रे एक प्रसिद्ध मराठी लेखक है। आपके प्रकाशनों में ऋतु शहरातले, तेदी वासाता कुठे, को कोसोमेल दूर आहे चांदनी, ऊंच माचा झोंका, और 2 बच्चों के कविता संग्रह भी हैं। आप 2 पत्रिकाओं के भी संपादक हैं। आप बहिणाबाई पुरस्कार, वसंती गाडगिल पुरस्कार, आरती प्रभु पुरस्कार, यशवंतराव चौहान पुरस्कार और कई अन्य राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं।
अरुण म्हात्रे जी अपनी कविताएं। आपसे एक मेरा ये अनुरोध था कि जो दूसरी भाषाओं में लिखते हैं, यदि कुछ कुछ आप स्टैंजा अपनी कविता का पढ़ें और फिर हिंदी या अंग्रेजी जो भाषाएं समझी जाती हैं उनमें अगर आप अनुवाद अपना प्रस्तुत कर पाएं तो। अरुण जी आप कृपया आएं। समय की सीमा है, मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट। अध्यक्ष जी तो बैठे हैं और हमारे उदारचित अध्यक्ष जी है, लेकिन अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए भी हमें समय चाहिए होगा। तो करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए अरुण जी, हमारे पहले कवि का। जोर से। तो खाना नहीं खाया क्या? लंच तो बहुत अच्छे मेजबान हैं। वैसे काफी बार ये कहा जाता है कि महको तो ऐसे महको कि फूलों को भी होश आ जाए, और तालियां ऐसे बजाओ कि हम कवियों को जोश आ जाए। वैसे 2 मराठी कविता पढ़ने वाला हूँ मैं। उनका मैं ट्रांसलेशन लाया हूँ हिंदी में। एंड मेरे ख्याल से वैसे मराठी जो भाषा है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सीधी भाषा है, समझने में काफ़ी सीधी है। तभी भी मैं जो ट्रांसलेशन लाया हूँ, एक गीत मैंने लिखा था हाल ही में, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। मैं सोचता हूँ कि शायद ये बातें आपको इमिडिएटली ध्यान में आएगी, यू कुड अंडरस्टैंड थिंग। वो गीत ऐसा है, विसरता येत नाही असे नसतेच काही, विसरता येत नाही असे नसतेच काही, मनाला सांधणारे नवे मिळतेच काही, विसरता येत नाही असे नसतेच काही, मनाला सांधणारे नवे मिळतेच काही, चुकाना टाळताना किती केली हुशारी, चुकाना टाळताना किती केली हुशारी, नवे दिसताच कोणी पुन्हा चुकतेच काही, मनाला सांधणारे नवे मिळतेच काही। और उसमें फाइनल लाइन ऐसा है कि इतना सब लिखने के बाद क्या एक तुम्हें ये कन्विक्शन आ जाता है। तो कन्विक्शन ये है कि मानतो का गदाला, मानतो लेखणीला, सबको मैं मानता हूँ, कागज को मानता हूँ, लिखने को मानता हूँ, मानतो का गदाला, मानतो लेखणीला, मानतो का गदाला, मानतो लेखणीला, कळे शब्दात अंतिम, क्या मालूम होता है बाद में, अंत में क्या मालूम होता है, कळे शब्दात अंतिम असे नसतेच काही, मनाला सांधणारे नवे मिळतेच काही, विसरता येत नाही। सो दैट इज एक छोटा मराठी का ये है वो पढ़ा। अब एक कविता है, मैं दोनों भी हिंदी का ट्रांसलेशन भी पढ़ूंगा क्योंकि मराठी में काफी वक्त जाया होगा। तो एक दिनक्रम नाम की कविता है, दिनक्रम, दैट इज इटनरी। और पूरे दिन में क्या करते हैं कवि, हमें एक बार वो कोस्टगार्ड की एक सोशल एक्टिविस्ट मिली थी, उन्होंने सबने उसे कह दिया कि ये कवि है। तो इमीडिएटली उन्होंने पूछा कि ये अदरवाइज क्या करते हैं, क्या करते हैं ये। तो मैं सोचता रहा कि कवि क्या करता है दिन भर। तो मैं दिन भर की पूरी दिनक्रम लिखा हूँ, कवियों का दिनक्रम क्या रहता है, आपका अलग होगा शायद, लेकिन मेरा ये है कि चिड़िया मुझे जगाती है और अवकाश की खिड़की खोल देती है सुबह। चिड़िया मुझे जगाती है और अवकाश की खिड़की खोल देती है सुबह, पत्नी चाय की प्याली हाथ में थाम देती है और किसी पराये गांव में निकली नाव में बिठा देती है, और किसी पराये गांव में निकली नाव में बिठा देती है। बच्चे निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, वो ठंडे तलवे से बाय करते हैं और मानो फेंक देते हैं मुझे वो कहानी के हरे भरे जंगल में गेंद की तरह, कहानी के हरे भरे जंगल में गेंद की तरह। दोपहर की मकड़ी धूप बनाती है, दोपहर की मकड़ी धूप बनती है, पुरानी यादें फंस जाती है उस जाल में, लेकिन फिर चिड़िया बनकर गाती रहती है पूरी दोपहर पर, चिड़िया बनकर गाती रहती है पूरी दोपहर पर। शाम का सूरज जामुनी रंग की जर्सी में मुझे कॉलर को पकड़ के चौराहे पे लेके जाता है,
शाम का सूरज जामुनी रंग की जर्सी में मेरी कॉलर पकड़कर मुझे चौराहे पे लेके जाता है। मैं सागर किनारे जा बैठता हूँ। जब लोग रेत बनकर फैल जाते हैं किनारे पर, जब लोग रेत बनकर फैल जाते हैं किनारे पर, और रात को आकाश चुप हो जाता है, और रात को जब आकाश चुप हो जाता है, सिमट लेता है उसकी मचमच, गुमसुम सा हो जाता है, तब तब मैं माँ की उंगली छोड़ भाग आए किसी स्कूल के नौबालक जैसा अंधियारा का स्कूल बैग लेके लौट जाता हूँ घर में। अंधियारा का स्कूल बैग लेके लौट जाता हूँ अपने घर, और देखता हूँ कि पूरा घर चिड़ियों के परों से भर गया है। पूरा घर चिड़ियों के परों से भर गया। तो ये रहा हमारा दिनक्रम। और फिर एक जो कविता है वो घर की कविता है। वो मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि हर लोगों को लगता है कि कवि अक्सर बाहर रहता है, और कवि का घर में चलन काफी कम रहता है, घर से ताल्लुक कम कर रहता है, लेकिन कितना वो घर में रहता है उसके बारे में ये कविता है। विलक्षण शांततेत पौडले माझं अख्खं घर, दैट इज मराठी लाइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू। सो गया है घर, अजीब सी शांति में सो गया है मेरा पूरा घर। अजीब सी शांति में मेरा सो गया है पूरा घर। मैं अंशतः सचेत सुन रहा हूं उसके सांसों की आह आधुनिक लय में। आधुनिक लय में मैं शायद इसी स्वरों की आड़ से चौंक कर जाग गया हूं सुबह की पहली प्रहर में। सुबह की पहली प्रहर में स्ट्रीट लाइट की एक लकीर आती है कोनों की झरोके से। वो गिरती है सीधी वास्तु पुरुष के दीवार पर। वो गिरती है सीधी वास्तु पुरुष के दीवार पर। जरा आगे ही मेरा पिताजी का, जरा आगे है पिताजी का उसुसाता देह, गहरी नींद में लिपटा हुआ। जीवन की अभिलाषा समेट कर जतन करने के चिन्ह है उनके शांत निर्लेप माथे पर। उनके शांत निर्लेप माथे पर हवा के झोंके से फड़फड़ाते कैलेंडर के पन्नों जैसी झूलती है माँ सपनों में। हवा के झोंके से फड़फड़ते कैलेंडर के पन्नों की जैसी झूलती है माँ सपनों में। सपनों में वो मुस्कुराती है रुक रुक कर। सपनों में वो मुस्कुराती है रुक रुक कर। सपनों में देखे किसी आह्लाददायी दृश्य पर उसकी आंखों को आदत सी हो गई है इस सपनों के साथ होने वाले खिलवाड़ की। इन सपनों के साथ किए हुए खिलवाड़ की। और यह दृश्यमान होता है केवल रात्रि के इस निष्क्रिय पलों में। खुला रह गया है दरवाजा दो कमरों के बीच का। मैंने आलस किया होगा या उसने संकोच किया होगा वो बंद करने के लिए। उसके अध खुले दरवाजे से आता है घर की मुख्य कमरे का दीवार का प्रकाश चुपके से। पत्नी के पांव के छाले उसे न छूते ही मैं जान लेता हूँ। पत्नी के पांव के छाले उसे ना छूते ही मैं जान लेता हूँ। थक कर चूर सो गया है उसके मेहनती पांव। मुझे उत्साहित रखने वाली उसकी गर्म सांस अब पहले से अल्लाहदाई नहीं रही, फिर भी थोड़ी प्यारी लगती है किसी भी मौसम में। पुरानी यादों से प्रभावित, पुरानी यादों से प्रभावित। बच्चे वैसे ही करवट लेते रहते हैं मानो गर्भाशय के चिपचिपे द्राव में तैरते रहते हैं। गर्भाशय के चिपचिपे द्राव में तैरते रहते हैं और मुझे स्पष्ट दिखते नहीं अंधेरे में, पर मैं महसूस करता हूँ उनका अस्तित्व इस अंधेरे में भी। वो धीरे धीरे गिड़गिड़ाते हुए तकिए से बाहर निकल जाते हैं। वो धीरे धीरे गिड़गिड़ाते तकिए से बाहर निकल जाते हैं। बंद किए गए उनके मुट्ठी में कल के शाम का प्रकाश है पकड़ा हुआ। बंद किए गए उनकी मुट्ठी में कल की शाम का प्रकाश है पकड़ा हुआ। घर बिल्कुल शांत, मालिक ने छोड़े हुए पालतू कुत्ते जैसा। घर बिल्कुल शांत, मालिक ने छोड़े हुए पालतू कुत्ते जैसा चाटता रहता है अंधेरी की थाली। चाटता रहता है अंधेरी की थाली। मैं जाग कर उपभोग लेता हूँ मेरा स्वामित्व इस घर का, छत को ताकते हुए हर रात निरंतर। मैं जागकर उपभोग लेता हूँ मेरा स्वामित्व इस घर का, छत को ताकते हुए हर रात निरंतर। मेरी विरासत मानो एहसास सी है। घर की हर एक ईंट और अनोखी शांति में सो जाता है मेरा घर हर रोज।
मेरे माँ बाप की पुरानी पहचान में, मेरे माँ बाप की पुरानी पहचान में रोज मैं जागता हूँ ये घर देखने के लिए, रोज मैं जागता हूँ ये घर देखने के लिए और सो जाता हूँ सुबह के इस पहले प्रहर में, जब घर नए दिन के नए अनाहत उजाले में, जब घर नए दिन के नए अनाहत उजाले में आवारा सा दिखने लगता है, आवारा सा दिखने लगता है, आवारा सा दिखने। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और समय की सीमा भी आपने रखी और बहुत ही सुंदर मार्मिकन। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि हैं उत्तरीसार खुंगुर बसमतारी। आपके बारे में बता दें कि आपके 6 कविता संग्रह, एक यात्रा वृत्तांत, साहित्यिक आलोचना की 3 कृतियां, बाल साहित्य की 4 पुस्तकें और एक उपन्यास भी प्रकाशित है। आपने 15 पुस्तकों का बोडो भाषा में अनुवाद भी किया है। आप साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार और बोडो साहित्य सभा के समेश्वरी ब्रह्म साहित्य पुरस्कार से सम्मानित है। बसुमतारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत कीजिए अगले कवि का। Thank you. Good evening, respected chairman, respected poet and respected audience. I belong to Bodo community, so at first I'm going to recite a Bodo poem. आरो बेसे गोबाव बे समा सानसे गावनो जोंनो सोलायनायनि रादाय होदोंमोन आरो बे समा जोबोद थाबैनो गावनो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनानै होफैनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। समा गावनो मिथिखानाया मोजां। राजा लामायाव स्लगान होयै होयै देरबोखानाय गथ'आ राजा लामानि मुहिनायखौ एसेबां गोरलै बावनो हाया। बेनिखायनो दा जों नेनानै दङ समा गावनि होखानाय रादायखौ बेसेबां गथि गथि गोसोआव लाखियो, नङाब्ला बावैनो बारहुंखा फैगोना रोखा, नङाब्ला बेबो जोबोद रोखा रोखा अख्रां गावस्रा होनो बांसिन गोहो लानानै गावनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय राजा लामायाव फिन खेबसेबाव गोदान स्लगान गोमखांगोना रोखा। Now I am going to English translation. And how long? This time once gave us the promise to sense, and this time also once promised us to fulfill the hunger and thirst. Each voice, if it knows the boy who grew up by shouting slogan on the highway, can forget its fascination of it so soon. That's why we are now waiting how long the time grew, keep all its promise, how long the time keep all its promise, or else the storm shall come, the thunderstorm will come for sure, or else it also very certain that with louder voice, with bigger strength, the shouting of slogan at Rajalama will certainly be heard. My second poem, The Bloodthirsty Mosquito. The situation is such that there are mosquitoes all around. All the crave is fresh blood. The moment they spot me, they came rushing. They leap upon me, try to suck my fresh blood. Did they think that my blood hold no value? Did they not know that without this blood I live? Just as you need blood to survive, I too need this blood to sustain my life and to define my entire existence and to define my entire existence. Hence, this battle today, is it the last war of our life and death? If you need blood to live, I also need fresh blood to survive. If there's no wrong in, you are unjust,
away to sucking everyone's blood, then there should not any wrong in stopping someone who is trying to suck away my blood. Let time serve through justice. Let history bear witness where each belongs and how. Let time determine it. My next point. The eruption. At this moment, we wish to sign one more. With time swiftly passing by, we wish to speak all around of dream that fell midway, letting them flow. Today, we aim to brighten anew, at once or twice, the one who want to live. The thought in our hearts keeps repeating. The several failures in this journey of life have taught us how to stay strong in difficult times. The struggle of the journey is too far, very far, but this does not mean that the willingness to fight our problem is no more. Rather, it means that the problem has taught us to way to the solution. They taught us to resilient. They showed us to us the mirror of self-awareness. They showed us the mirror of self-awareness. We have no suppress our hardware to reignite the fire from the ashes, how much time it took us. And if still you do not understand, listen once again. All of you, even if we emerge from the crowd, we were a community that is evolving with strong faith in oneself and for the community, for the country. Even today, we are still not afraid to die. Even now, we are clean-going. Now is the time, listen once again, the one who cleared the grassland by turning blood into water. This community, the first of all, and the son of the soil, it came into the existence from this land. It is where it first strengthened its feet. In this land, we learn to live and serve in this society. And the advisory, the ones who came much later than us, who came out of the nowhere, the outsider with no roots. If you still don't understand or are unwilling to feel, we still agree and are still ready to die for our land. If someone could explain to us what kind of justice this is, we were the first of all. With our own land, we clear all of the grassland. Will someone be able to tolerate such ruthless, cruel enemies who thought to unjust us, who plotted to suppress us in our own abandoned home? One question arises, how will one endure the fury of shedding blood? How will one remain silent with eyes closed? It was a prolonged revolution. We don't walk all the way on the road, didn't erupt forcefully, nor did we outcry just so. The fruit of our sacrifice is fit to someone else. Even from the negligence in history, even as time quickly fled grass over the remains of our ancestral bond, the heart that loves itself has not yet lost its way. Listen, for the community, for the country, neither you nor I, no one possesses the right to avoid the blood that has already been shedding. Thank you.
कवि हृदय भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। अरुण जी की फ्लाइट अभी अभी है इसलिए जाना पड़ रहा है। प्रणाम सर, आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा हमने। राघव गुप्ता जी हमारे अगले कवि हैं, अंग्रेजी के कवि हैं। राघव गुप्ता ने छोटी उम्र में ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था तथा आपकी रचनाएं कई समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपकी कविता स्याही को अखिल भारतीय कविता प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक पुरस्कृत वन्य जीव संरक्षण फोटोग्राफर के रूप में भी आपकी रचनाओं को प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है तथा नेचर इन फोकस, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण तथा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपके कार्यों की सराहना हुई है। आप 2012 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। श्री राघव गुप्ता जी कृपया मंच पर आएं और अपनी कविताओं का पाठ करें। कर्तध्वनि से स्वागत करेंगे हम भूलेंगे नहीं ताली बजाना, है ना? सांस की तरह ही जरूरी है कवि के लिए। अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ लेखक और कवि एवं उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमन। रूमी मैम के लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि पल पल वो इंश्योर कर रही हैं कि हमारा हाँ बिल्कुल सुना जाए और हमारा जो जोश है वो बरकरार रहे, तो उसके लिए सभी की तरफ से धन्यवाद आपको मैम। और कुछ कविताएं हैं जो जी जी बिल्कुल, उसमें मैंने कुछ हिंदी का भी साथ में रखा है ताकि अगर कुछ, बल्कि मैं पूछना भी चाहूँगा यहाँ अंग्रेज़ी अगर सब समझ सकते हैं तो एक बता सकें। ठीक, ओके, थैंक यू। तो पहली कविता है जिसका टाइटल है स्केयर क्रो। और स्केयर क्रो बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्राणी है जो खेतों के बीच में, आपने देखा होगा, एक पुतला होता है पक्षियों को भगाने के लिए। उसे आज हमने कम से कम 10 भाषाओं में जाना। आज हमने फ़ोन किया अपने दोस्तों को बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और समझा कि उसको कहते क्या हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मैंने समझा कि बिजूका कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इतने लोगों को पता है ये बिजूका कहते हैं जी। और काग भगौड़ा भी कहते हैं, कौवा को भगाने वाला काग भगौड़ा। ऐसे बड़े अलग अलग नाम हैं उसके। तो मुझे एक बड़ा फैसिनेशन था। एक बार बचपन में हमने खेतों के बीच हम जा रहे थे और रात सी हो गई थी और चांदनी सी थी, और चांदनी के बीच में, वही खेतों के बीच, एक अकेला सा ये बिजूका खड़ा हुआ था। तो उसके अकेलेपन पे मुझे एक तरस भी आया और लगा कि वो बेचारा वहाँ क्या सोच रहा होगा, अगर वो जिंदा होता तो क्या सोचता या क्या उसके ख्याल होते। तो उस पर एक कविता है। Tattered hat cover his old head. His eyes stare across rice fields, unable to translate glyphs which moonlight draws through skeletal trees. वो पुरानी सी एक टोपी पहने खड़े हैं वहाँ पे, और ऐसा लगता है कि वो खेतों के दूर अपनी आंखों से समझना चाह रहे हैं कि चांदनी, जो चट्टी हुई चांदनी आ रही है पेड़ों से, वो कुछ मानो अक्षर लिख रही है और वो उसको पढ़ना चाह रहा है कि ये क्या लिखा है। In this monochrome universe, the straw sentinel stands with poise. Barely awake, scarcely breathing, he scares away all sound and noise. इस दो रंग की दुनिया में वो अकेला है। दो रंग, काला और सफ़ेद, क्योंकि रात में आपको और कोई रंग नहीं दिखता। तो इस दो रंगी दुनिया में वो अकेला खड़ा है वहाँ पे, और ये पहरेदार बना है भूसे और घास से। और वो ऐसा लगता है कि सांस ले भी रहा है, लेकिन क्योंकि हवा हल्की हल्की चल रही, तो आपको शायद लगता है कि शायद वो सांस ले रहा है या शायद नहीं। तो आप उसमें सोच रहे हैं कि वो क्या वाकई जिंदा है। और ये जो पहरेदार है, वो ऐसा मानो कि वहाँ इतनी शांति है कि उसने सारे ही सबको भगा दिया। अपने जो जिस कारण से उसको बनाया गया है कि मैं सबको डरा के सबको भगा दूं, तो उसने सारे ही वहाँ से आवाज़ को भी गायब कर दिया। शांति हो चुकी है उन पर। Shy moths adorn below the wisp, oblivious to this terror nigh. Hardly noticing their sorry plight, he counts galaxies in the sky. वहाँ के पास एक दलदल है और दलदल से उठती हल्की हल्की धुंध आ रही है, और उसी धुंध में कुछ कीड़े छुप गए। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो इसी के डर से छुप गए वहीं कहीं, और उसको इससे फ़र्क नहीं, उनके इस खौफ से कोई फ़र्क नहीं। वो ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर आकाश गंगा के सितारों को गिन रहा है, उसको इनसे कोई मतलब नहीं। The wind unravels his right arm as stuffed sinew soundlessly stirs. A piece falls, drifts away far, a worry gone, a lesser curse.
और धीरे से हवा चलती है और उसके दाहिने हाथ का एक टुकड़ा गिर के उड़ के दूर चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी कहीं इस बात से खुश है कि हाँ चलो मेरा एक वजन हल्का सा कम हुआ, कहीं उड़ के वो चला गया। Dark breeze obscures his whispers as he awaits the light of day, longing for those winged brigands that he is meant to chase away. और धीरे धीरे ये जो हवा वहाँ पे चल रही है अंधकार अंधकार में, वो मानो उसके कुछ शब्दों को गायब करती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन वहाँ की जो हवा चल रही है वो उसके विस्पर्स को भी खा गई है। लेकिन ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि वो सुबह का इंतज़ार कर रहा है, उन पक्षियों का, उनको भगाने के लिए, जिसके लिए उसको बनाया गया, उनको भगाने के लिए बनाया है, लेकिन वो उनका इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वो अकेला है। तो ये लाइन मैं फिर से पढ़ूंगा, लॉन्गिंग फॉर दोज विंगेड ब्रिगेंड्स दैट ही इज़ मेंट टू चेज अवे। तो उसकी जो उसकी प्रवृत्ति है, वो जो जिस कारण से उसको बनाया गया है, वो भगाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो वेट भी उन्हीं का कर रहा है क्योंकि वहाँ वो अकेला खड़ा है। तो ये थी स्कैरक्रो। थैंक यू। योगेश जी, हमारी एक दूसरी कविता ज़रा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक्चुअली ये जो अगली कविता है, ये एक आकार कविता है जिसमें जो पंक्तियाँ हैं वो एक आकार बनाती हैं। और ये हमारे बचपन के एक दोस्त हैं जिसका नाम है गुलमोहर, जो हमारे एक बहुत अच्छा, बहुत मशहूर और बहुत ही अच्छा पेड़ था, और उस पर कविता लिखी गई है। मैंने उसको बचपन से देखा, छोटा सा पेड़ था और धीरे धीरे होते होते वो बड़ा हो गया। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है, गुलमोहर। मंच पे पहले दे दें। ये शायद मैं इसलिए आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ क्योंकि आकार को शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता, तो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि वो आकार में एक पेड़ बना हुआ है, और वो गुलमोहर का एक पेड़ है कविता। तो ये है गुलमोहर। धन्यवाद। गुलमोहर। Every day, just as my school bus appeared, I said goodbye to mother and bid a silent farewell to it, and greeted it with joy when I came back home, tired and hungry. हर सुबह मैं स्कूल बस का जब वेट करता था तो उसको बाय बाय करके जाता था, और जब वापस आता था भूखे थके मांदे जब स्कूल से वापस आते उसको हेलो करते हुए अंदर घुसता था घर अपनी। I remember gently patting the gulmohar when it was but a sapling. New branches grew and its trunk became thicker. धीरे धीरे वो छोटा सा जो पौधा था वो बड़ा होता गया, और उसकी जो उसका तना था वो भी मोटा होता गया। Until at last it grew taller than me one summer. और एक दिन वो मुझसे भी ऊंचा हो गया। There it stood, confident and green, blooming brilliant vermilion. Its flowers and buds fell on the ground, gifting sepals on fingernails and stamens for a game. मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों ने गुलमोहर के फूलों से खेला है बचपन में, लेकिन उनके जो हरे वाला जो पार्ट होता है उसको नाखून पे चिपकाया जा सकता है, और उसके जो लंबे से स्टेमन होते हैं फूल के बीच में, उनसे भी गेम खेला जाता था। तो वो यही बता रहा है कि वो अपने फूल मानो अपने आप ही फल की तरह गिराता रहता था कि बच्चों लोग तुम खेलो मेरे फूलों से। It never seemed to mind. Its petals lay scattered on the bus floor and the school fields. On lazy rooms, I would look up at it and it helped me peek at the sun. और कुछ दोपहर मुझे वो सूरज को भी देखने को देता था, never letting my eyes hurt once. लेकिन मेरी आंखों में कभी भी जोर नहीं लगता था सूरज को देखने पे भी, क्योंकि मैं उसके बीच से देखता था। तो मानो उसने एक छतरी सी बना दी मेरे और सूरज के बीच। On wintry evenings, it showed me the lunar orb and myriad constellations and planets, while whispering words only I could comprehend. और रातों में मुझसे वो वार्तालाप करता था और ऐसे वर्ड्स बोलता था जो मुझे ही समझ में आता था। उसकी और हमारी एक अलग भाषा थी। On gloomy nights, when dark it grew and it was all alone, I was at ease. और रातों में जब वो अकेला था तो मुझे डर नहीं लगता था उसके लिए, क्योंकि certain that the magpie robin would sing it lullabies and the owlet would nestle in its boughs. क्योंकि जो चिड़ियाँ हैं, जो पक्षी हैं, उस पेड़ पे बैठे बैठे वहीं सो जाती थी, तो मुझे पता था कि वो अकेला नहीं, उसके पास कोई ना कोई है। रात में एक उल्लू था और एक मैगपाई रॉबिन थी जो उसी के ब्रांच में लेके सो जाती थी। Its tiny leaves, which were resplendent green in the sun, became sparkling emeralds in the rain. Squirrels pranced on it
and ants marched upon it. उस पे गिलहरियां और चींटी भी खेलती कूदती जाती थी. Under its verdant embrace, I stayed for hours and watched it all, safe and carefree. उसकी इस छाया में मैं खड़ा रहता था और मुझे लगता था कि कोई मुझे नहीं छू सकता, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. ये इतना बड़ा हो चुका था वो पेड़. Sometimes lost in a dreamy torpor and sometimes sharing my thoughts with it. Then I grew up suddenly and heard myself ask, where is that tree? और एक दिन मैं अपने आप को ही सुनना, मुझे अपने आप बोलते हुए कि वो पेड़ है कहाँ. बचपन का मेरा जो साथी था, आज मैं पूछ रहा हूँ कि वो है कहाँ, वो पेड़ गया कहाँ. वो मानो एक समय, पूरा का पूरा एक समय ही निकल गया कि एक समय पे बचपन में था वो पेड़ और आज नहीं. Its shade reassuring, its rough trunk steadfast. Where is my friend of the past? वो मेरा बचपन का और पुराना जो साथी था वो गया कहाँ. I recall vaguely a faint memory. On the last school day, I had won accolades. I rushed inside home, ignored it stood alone. तो स्कूल के आखिरी दिन मुझे कुछ प्राइज़ मिला और मैं भागता भागता अंदर गया एक्साइटेड होके, लेकिन मैंने उसे हेलो नहीं कहा. जब मैं उतरता था दोपहर में उसे हमेशा हेलो करता था, लेकिन उस दिन मैं छूट गया मुझसे बोलना, क्योंकि मुझे अपना दिखाना था कि मैं जीता हूँ कुछ, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया. आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आई बेयर गिल्टी टीयर्स. और इतने सालों के बाद भी मुझे उस दिन का अभी तक दुख है कि मैंने उसको हेलो क्यों नहीं किया, जो मेरा डेली रूटीन था 12 साल का. ऑल्दो आई डेयर से इट फॉरगिव मी दैट डे. लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया उसके. हाउ आई विश श्योरली इट वॉज हियर विद मी, बीइंग नीथ इट वंस मोर and gaze at meteors dash across the sky as it calmly sighs. I search again, I search in vain. मैं ढूंढता हूँ लेकिन नाकाम रहता हूँ. I search again, I search in vain. For even today, in me it stays. Its roots grow free, it breathes in me. आज भी वो मेरे अंदर कायम है, उसकी जड़ें जो हैं मेरे अंदर हैं और वो कहीं नहीं पेड़ गया. चाहे वो बाहर ना हो तो मेरे अंदर तो है ही. गुलमोहर. धन्यवाद. अगर थोड़ी सी एक कविता और आखिरी है, अगर हाँ 2 मिनट की, अगर आप देखें. बिल्कुल, आप मंच पे जो कवि हैं वही बताएंगे कि जी हाँ बिल्कुल. आइज, बिल्कुल मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ. आइज नाम से ये है कटाक्ष, और उन पे लिखा गया है कि जो आपकी हर क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, उन सभी लोगों पे. जजमेंटल. Eyes. Unflinching, they scan you with X-ray precision and indifference, yet penetrating alike through meat and bone, following each move of yours. Unblinking and open wide, they shift along with you till you melt in their intense gaze. You try shutting them, but they carry on, silently screaming, calmly accusing. Unrelenting, each action and inaction is judged in this carnival of irises, yet all with the same black pupils. Iris आंख का वो पार्ट होता है जहाँ रंग होता है. तो कुछ लोगों की नीली आंखें होती हैं, कुछ काली, कुछ भूरी. तो ये है कि एक मेला है उन आंखों का, लेकिन उन सब में जो पुतलियां हैं वो काली, और वो काली हैं ऐसे कि एक एक वॉइड है जो आपको खींच रहा है, अपनी अंधकार में आपको डुबाना चाहता है. Voids waiting with maddening patience to engulf you in their darkness. Eyes. धन्यवाद. Thank you. Thank you. नहीं, दूसरा माइक आपके लिए था, स्पेशली आया था. दो माइक. धन्यवाद राघव जी, बहुत अच्छा सभा बांधा आपने. आगे बढ़ते हैं. देव सिंह पोखरिया जी के बारे में आपको बता दूं. देव सिंह पोखरिया जी कुमाऊं विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख हैं. कसक नाम का उपन्यास लिखा, नीलकंठ और राफ इनका कविता संग्रह है, और भटकौए कहानी संग्रह है. इसके अलावा लोक संस्कृति, भाषा, साहित्य, आलोचना, अनुवाद आदि पर 42 पुस्तकें प्रकाशित हैं. आपकी पुस्तक कुमाऊनी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के लिए आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, और उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य के लिए आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सम्मानित किया जा चुका है.
आप मौलूराम ठाकुर राष्ट्रीय सम्मान, मॉरिशस द्वारा साहित्य भूषण सम्मान सहित कई सम्मानों से विभूषित हैं। बहुत ही सुंदर प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन समय की सीमा है। अध्यक्ष जी भी यही चाह रहे थे कि 7 से 8 मैक्सिमम 10 मिनट में आप अगर समेट दें, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर न्याय नहीं हो पाएगा, है ना। तो आए देव सिंह जी, कृपया आए, क्योंकि इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, वो भी आप देखना चाहेंगे। ये क्यों रखा? धन्यवाद रोमा जी, आपका कुशल संचालन के लिए, और मंचस्थ अध्यक्ष मोहन सिंह जी और अन्य सभी कविगण और सभी श्रोता और विद्वज्जन। ये भी चल रहा है। अच्छा, मैं समय सीमा के अंतर्गत अपनी बात रखूंगा। पहले 2 पंक्तियां। चूँकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो हिमालय कई बार आता है और हर बार कल्पना में और मन मस्तिष्क में वही छाया रहता है। ये हवा उनको छू के आई है, ये हवा उनको छू के आई है, इसलिए रो के मुस्कुराई है, इसलिए रो के मुस्कुराई है, उनका दर्शन मिलन हिमालय है, उनका दर्शन मिलन हिमालय है, मेरी आंखों ने गंगा पाई है, मेरी आंखों ने गंगा पाई है। और एक दूसरे तरह का भी हिमालय है। हमारे देश में 2 तरह की गंगाएं बहती हैं, एक हिमालय से और एक दिल्ली आदि शहरों से। एक गंगा जाती है गंगा सागर तक, तमाम सींचते हुए अपने पीछे खेत खलिहान और हजारों जिंदगियों को जिंदगी देते हुए। और दूसरी दिल्ली से जाती है जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों को पार करते हुए हिमालय तक, अपने पीछे छीजते हुए और एक लंबा रेगिस्तान छोड़ते हुए। ये 2 तरह के हिमालय के दृश्य हैं। एक कविता है, थोड़ा इसको लय में गाना चाहूँगा मैं, लय में कहना चाहूँगा, यद्यपि आवाज़ मेरी उतनी अच्छी नहीं है जी। बैठ समय की किसी डाल पर हमने तुमने नीड़ बनाया, बैठ समय की किसी डाल पर हमने तुमने नीड़ बनाया, सपनों के तिनके चुन चुन कर रंगों का एक महल सजाया, सपनों के तिनके चुन चुन कर रंगों का एक महल सजाया, यादों की पाखों के बल पर तुम उड़ उड़ कर आना रे, रंग महल में, रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे, रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे। हमने अपना पल पल खोया बस तेरी चाहत में रे, दाने दाने को हम भटके आंगन में और छत में रे, मैं निर्गंधी फूल चमन का तुम सुगंध बन आना रे, रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे, रंग महल के रंग में साथी। मेरा जीवन था अयस्कमय तुमने पारस परस किया, मेरा जीवन था अयस्कमय तुमने पारस परस किया, मैं तट था प्यासा युग युग को तुमने अमृत सरस दिया,
लोचनहीन अंधेरे जग को तुमने अब अनुपम दरस दिया। पल न मिले जिसको जीने को तुमने जीवन बरस दिया। जब रातों भर नींद न आए तुम निदिया बन आना रे। रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे। तुम उड़ बैठे किसी डाल पर पत्ते सा मैं कांप गया। तुम उड़ बैठे किसी डाल पर पत्ते सा मैं कांप गया। तुम तोला आने निकले पर रत्ती सा मैं भाप गया। सोने की तोलूं मैं सोना बन कर के तुम आना रे। रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे। तेरे साजन तुझे बुलाए मेरे साजन मुझे रुलाए। तेरे साजन तुझे बुलाए मेरे साजन मुझे रुलाए। जिनको लेने मैं बैठा हूँ उसे बुलाकर वे ले जाएं। जिनको लेने मैं बैठा हूँ उसे बुलाकर वे ले जाएं। मेरे गीत छीन जब कोई अपने स्वर में गाते जाएं। तब तुम उनकी स्वर लहरी में शब्द मेरे बन जाना रे। रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे। एक और। हाँ सर। हैं दोबारा। धन्यवाद। तेरे साजन तुझे बुलाए मेरे साजन मुझे रुलाए। जिनको लेने मैं बैठा हूँ उसे बुलाकर वे ले जाए। मेरे गीत छीन जब कोई अपने स्वर में गाते जाए। तब तुम उनकी स्वर लहरी में शब्द मेरे बन जाना रे। रंग महल के रंग में साथी मुझको भूल न जाना रे। तब क्या दिल तो टूटा हुआ ही होता है फिर वैसे भी, है ना। तो एक कुछ अलग तरह की अनुमति है सर। जी जी बहुत बहुत आभार जी। ये कुछ अलग तरह की है। इसका शीर्षक है सुअर। मैंने सुअर कुत्ता ये सब जो उपेक्षित जंतु हैं हमारे उन पर कुछ कविताएं लिखी हैं। तो ये सुअर है। मादा हूं या नर हूं मैं केवल सुअर हूं। मादा हूं या नर हूं मैं केवल सुअर हूं। झेले हैं मैंने दिन मास अब्द प्रयोग विरुद्ध अपशब्द। तुम कुलीनों की भाषा के अकुलीन शब्द। तुम कुलीनों की भाषा के अकुलीन शब्द। अपना किया संस्कार आदमी से बात कर रहा हूं। अपना किया नियोजन मैं बना कोप भाजन मैं बना मात्र भोजन। करते रहे सदा तुम मेरे कुल पर रोष पर बदल न पाए अब तक अपना शब्दकोश। धन्य तुम्हारा जोश। जरा कसूर तो बताओ मेरा कि मात्र अपशब्द बनाकर रख दिया मुझे और मेरे सारे खानदान को पीढ़ियों ही नहीं कल्पों तक निष्प्रयोजन व्यर्थ। कब बदलेंगे तुम्हारे शब्दों के ये अर्थ। तुम्हारी माताएं किया करती हैं शोध निखारती अपनी सुंदरता छुड़ा देती बच्चों का दूध। यही तुम्हारी अभिरुचि और यही तुम्हारा सौंदर्य बोध। मेरी मादा निचोड़ती है अपना तन अपना मन। एक नहीं 11 को कराती स्तन्यपान देती रक्तदान। तुम्हारी मादा का रक्त गुलाबी रूज में खिलता फिर भी चैन नहीं मिलता। हमें तो नींद आती है कटीले या कंकरीले बिछौनों पर। थूथन मारते हैं हम गंदे कूड़े के ढेरों पर। गुजारा चल ही जाता है गले में मल ही जाता है।
अभिशप्त देव थे हम, यह विचार आज भी छल ही जाता है। तो मैंने एक इसको मिथ से जोड़ दिया है, अभिशप्त देव थे हम, यह विचार आज भी छल ही जाता है। तुम्हारे थूथन नहीं दिखते हैं, नहीं चाटना, न शोषना दिखता, दिखती केवल लीद, हमसे है अधिक तुम्हारी मिट्टी पलीद। तुम्हारा तिरस्कार सहते आए हैं युगों युगों से वारंबार, हे वाणी के अवतार। जो इस तरह के अपशब्द आपने बनाए, हे वाणी के अवतार, हमें नहीं है आस बदलोगे कुछ, रखो अपने पास अपने निश्वास, अपने वाताहत गंधी श्वास, अपने वाताहत गंधी श्वास, गरल वाणी के ग्रास। जिसकी वाणी से केवल जो है हम लोगों के लिए गंदे शब्द ही निकलते। धन्यवाद। जैसे इन्होंने अभी कहा कि दिल तो सबका ही टूटा होता है, तो हम कल भी यही चर्चा कर रहे थे कि जो हृदय चक्र होता है, जब हम ध्यान की बात करें, मेडिटेशन करते हैं, तो द हार्ट चक्र इज ऑल्सो कॉल्ड अनाहत। अनाहत चक्र है। अनाहत मतलब जो आहत ना हो पाए, न आहत होने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम आहत हमेशा होते हैं। दिल ही तो हमारे दुख देता है हमको। तो उसका कारण ये बताते हैं ऋषि, और योग मार्ग में ये कहा जाता है कि हृदय के गहराइयों में अनंत प्रेम छुपा है। अगर उस प्रेम को उजागर कर लो तो हर एक को क्षमा करते चलोगे और सदा खुश मिजाज रहोगे, अच्छे बने रहोगे, कोई द्वेष नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल है ऐसे साधना, तभी साधक कहा जाता है ना। और आप सब तो शब्दों के साधक हैं। अगली साधिका को बुलाते हैं, रानी जी को बुलाते हैं। रानी श्रीवास्तव जी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका हैं। आप एमडी कॉलेज वैशाली से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां हैं अपने हिस्से का सुख दुख, बहुत सुंदर नाम है, अपने हिस्से का सुख दुख, खुली खिड़कियों वाला तहखाना, अनहद के बीच, ज्योति जिंदा है एवं अन्य कहानियां ये शामिल हैं। बातें न करें। आपने कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपकी कहानियां, कविताएं आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं। आपकी कविताओं को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जा चुका है। आपको वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार तथा कई अन्य पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। स्वागत करते हैं श्रीमती रानी श्रीवास्तव जी का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी साथी और इस सभागार में उपस्थित सभी साथी और प्यारी उद्घोषिका रूमी जी, बहुत प्यारा इनका उद्बोधन है। एक कविता मैं पढ़ूंगी, क्योंकि जिंदगी नश्वर है लेकिन प्रेम शाश्वत है। तो शीर्षक है प्रेम। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मगर उस तरह नहीं जिस तरह बारिश में लड़की करती है लड़के से हाथ पकड़कर भीगते हुए। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मगर उस तरह नहीं जिस तरह बारिश में लड़की करती है लड़के से हाथ पकड़कर भीगते हुए। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जिस तरह पहाड़ी पर चढ़ती औरत अपनी पीठ पर बांधे बच्चे से करती है। बचाए रखना चाहता हूँ अपना प्रेम, बचाए रखना चाहता हूँ अपना प्रेम सिर्फ तुम्हारे लिए। जिस तरह किसान बचाता है अपने खेत खलिहान, आंधी पानी से बचाता है अपनी फसल, चिड़ियों से बिजुका खड़ा करके। आपने भी बचाता है अपने खेत खलिहान, आंधी पानी से बचाता है अपनी फसल, चिड़ियों से बिजुका खड़ा करके।
मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ओस की उन बूंदों की तरह जो दिन में दिखते नहीं लेकिन रात भर सुकोमल पत्तियों को अपना अमृत पिलाती हैं। सच में, सच में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं। सच में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अमीर खुसरो के गीत की तरह। अब एक कविता जो सदियों से समकालीन ही रही, आज भी है समकालीन और आज के समय में थोड़ा अधिक ही हो गई है। तुम चुप क्यों हो? शीर्षक है। आज तक सभी राम को ही खड़ा करते आए हैं कटघरे में। आज तक सभी राम को ही खड़ा करते आए हैं कटघरे में। सीता पर ही दोष लगा तुम्हारी बातें नहीं मानने का। आज मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा करती हूँ लक्ष्मण। आज मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा करती हूँ लक्ष्मण। तुम थे इतने ज्ञानी, ज्ञात था तुम्हें बहुत कुछ, तभी तुमने खींची कहा सीता से अंदर रहने को। लेकिन लक्ष्मण सभी स्त्रियां पूछती हैं तुमसे, लेकिन लक्ष्मण सभी स्त्रियां पूछती हैं तुमसे, तुमने क्यों नहीं खींची ऐसी रेखा जिसको पार न कर पाती सीता और बच जाती दोष लगने से। सुनो लक्ष्मण, सुनो लक्ष्मण, अब भी मेरी सुनो। सुनो लक्ष्मण, अब भी मेरी सुनो। तुमने क्यों नहीं खींची ऐसी रेखा जिसे पार करने की कोशिश पर अग्नि की लपटें उठने लगती और सीता पार न कर पाती वह काल कलंकित रेखा। सुनो लक्ष्मण, अब भी मेरी सुनो। तुमने क्यों नहीं खींची ऐसी रेखा जिसे पार करने की कोशिश पर अग्नि की लपटें उठने लगती और सीता पार न कर पाती वह काल कलंकित रेखा। लक्ष्मण, आर्यावर्त की सभी सुकुमारियां पूछती हैं तुमसे, तुमसे आहत यह प्रश्न। रावण भले छू न सका सीता को क्योंकि वह था शापित, लेकिन उसकी कुदृष्टि को, उसके दानवीय अट्टहास को, उसके प्रलोभन के शब्दों को कैसे झेला होगा सीता ने। तुम चल पड़े थे सीता के साथ रक्षा के लिए, सीता को तो बचा न सके, उर्मिला को छोड़ आए राजमहल, फिर भी भ्राता लक्ष्मण उर्मिला के पति कैसे बने रहे। तुम तो ज्ञानी हे मायावी जाल से परिचित, फिर उस घने वन में सरल सरल हृदया भोली सीता की सुरक्षा को इतने हल्के में कैसे लिया तुमने लक्ष्मण। और गर्भवती भाभी को जंगल की भयावता में छोड़ आए। इसे लेकर तुम्हारी चिप्पी विचलित करती है, इसे लेकर तुम्हारी चुप्पी विचलित करती है। तुम चुप क्यों हो मेरे लक्ष्मण। एक छोटी कविता है। ठीक उसी समय, ठीक उसी समय जब समुंदर पटक रहा था अपना सिर किनारों पर, ठीक उसी समय जब समुंदर पटक रहा था सिर अपना किनारों पर, सांझ के झुझलके में एक प्रेमी ने खोज दिया था अमलतास का फूल प्रेमिका के बालों में। एक प्रेमी ने खोज दिया था अमलतास का फूल प्रेमिका के बालों में। ठीक उसी समय बादलों ने अंगड़ाई ली थी मेरी पलकों के नजदीक आकर। खूब सारे हर श्रृंगार खिले, खूब सारे तारे बने। ठीक उसी समय पिता ने पुत्र को दुलार किया, ठीक उसी समय पिता ने पुत्र को दुलार किया। माँ ने चूमा नए जन्म लिए बच्चे को। ठीक उसी समय किसान औरतों ने गाए धन रोपनी के गीत। ठीक उसी समय किसान औरतों ने गाए धन रोपनी के गीत। और एक कविता मैंने श्रमिक पर लिखी है, किसानों पर। ओ श्रमिक धरती, ओ श्रमिक धरती को, धरती के बोझ को अपने सर पर उठाए तुम चले जा रहे हैं। ओ श्रमिक धरती को, धरती के बोझ को अपने सर पर उठाए तुम चले जा रहे किस अनंत की ओर। ओ श्रमिक
तुम्हारे यूं निराश हताश चले जाने से यह धरती उजाड़ हो जाएगी। गेहूं में दाने न रहेंगे, न रहेंगे धान के बीजे। गेहूं में दाने न रहेंगे, न रहेंगे धान के बीजे। तुम्हारे ठठरी से हो गए शरीर की तरह यह धरती हो जाएगी खंडहर, हो जाएगी बंजर। तुम्हारी भूख से ऐंठ गई, पीली पड़ गई देह की तरह। ओ श्रमिक, आओ हम सब मिलकर बांट ले तुम्हारा बोझ। तुम्हें मीठा पानी देकर सामने बैठाकर खाना खिलाएं 2 जून। तुम्हें सामने बैठाकर मीठा पानी देकर खाना खिलाएं 2 जून। ओ श्रमिक, आओ तुम्हें मान सम्मान दे। ओ श्रमिक, आओ तुम्हें मान सम्मान दे। तुम इस धरती को हरा भरा बनाए रखो। अनंत को नहीं, हमें जरूरत है तुम्हारी। अनंत को नहीं, हमें जरूरत है तुम्हारी। ओ श्रमिक, तुम मत जाओ, लौट आओ हमारे बीच कि हम तुम्हें बैठाएंगे गेहूं की बालियों से बने सुनहरे सिंहासन पर। कि हम तुम्हें बैठाएंगे गेहूं की बालियों से बने सुनहरे सिंहासन पर। और अंत में ओ श्रमिक, तुम लौट आओ तुम। और एक छोटी सी कविता और है, सुनाओ कि समय है? बिल्कुल छोटी है, 1.5 पेज 1 पेज की है, ये इतनी छोटी। इसका शीर्षक है हरसिंगार के पेड़ तले। हरसिंगार के पेड़ तले बैठी मैं याद कर रही थी तुम्हें कि गुलाबी ठंड ने तान दिया मेरी चारों तरफ सफेद फूलों का हल्का सा चंदुआ। मुझे लगा मैं घिरी हुई हूँ तुम्हारी यादों के साए से, तुम्हारे होने के एहसास से, तुम्हारे साथ बिताए मखमली पलों की सौगात से। ठीक उसी समय कुहू कुहू की कोमल रेशमी आवाज ने मुझे धकेल दिया सपनों के आगोश में। और मैंने उन सपनों को कसकर अपने चारों तरफ लपेट लिया। धन्यवाद। अलग अलग कलेवर थे इनकी कविताओं के। लक्ष्मण पे बहुत ही कमाल की बात है, ये हमारे जो लोकगीत हैं, लोकगीतों में जैसे कल भी बात हो रही थी, रानी जी भी शायद मिथिला से। अच्छा, तो वो मिथिलांचल में कैसे बोलते हैं ना, वैसे हम लोग बोलते हैं बड़े श्रद्धा से भगवान राम, पर मिथिलांचल में बोलते राम, वो तो दामाद है। वो लड़कियां वहां बोलती है हमारा जीजा है राम, है ना। तो इस तरह से बड़ी कमाल कमाल के लोकगीत भी हैं। तेलुगु में एक लोकगीत है जिसका अंग्रेजी तर्जुमा किया है श्री राव है, VN राव जी। उसका नाम है लक्ष्मण की हंसी, लक्ष्मणाज लाफ। तो बड़ी कमाल की बात यह है कि जैसे आप जानते हैं निद्रा देवी आई। देखिए वीरासन एक आसन होता है योग में, आप जो लोग योग करते हैं ना, उसके बहुत कमाल के इफेक्ट्स होते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती ना तो आने लग जाती है, और अगर आपको ज्यादा नींद आती है तो कम आने लग जाती है। वीरासन के दोनों इफेक्ट्स होते हैं। तो वीरासन में खड़े होते थे, कुटिया में राम सीता जी सो रहे होते थे, वो पहरा देते थे। 14 साल उनको नींद नहीं चाहिए थी। तो निद्रा देवी जब उनके पास आई तो उन्होंने बोला कि निद्रा देवी देखो, अभी तो ये हम कष्ट का समय चल रहा है, वन में है, तो अब जब हम राजपाट मिल जाएगा ना, भैया बन जाएंगे ना राजा राम, तब आप आ जाना मेरे पास में। तो ऐसा हुआ, राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो दरबार लगा हुआ था। तो निद्रा देवी उसी दिन वापस आई, है ना। देखो, तो लक्ष्मण जी को लगा कि 14 साल पूरा होता ही एक एक घड़ी गिन रही थी क्या, उसी टाइम आ गई। तो उसे देख के ना हंस पड़े, हंसी नहीं रोक पाए, हंस पड़े। अब वो जैसे ही वो हंसे ना, अब हर व्यक्ति सोचे कि क्या हो गया, है ना। अब वो सब लोग ऐसा सोचने लग गए कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरे ऊपर हंस रहा है ना। तो शिव जी सोचे कि हाँ देखो, अब ये तो पहले विष्णु जी को मानता था, ये अब विष्णु अवतार को मानता था, पर ये मेरे ऊपर हंस रहा है कि कि मैं जो उसका प्रतिद्वंदी हूँ। हर एक के अपने अपने कारण। भरत और शत्रुघ्न सोच रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं राजपाट में, हम पे हंस रहा है कि हमारा क्या योगदान था पूरी की पूरी रामायण में, है ना। हाँ, सीता जी सोच रही कि देखो मैंने इसे इतने अपशब्द कहे, ये चला गया, मेरी वजह से तो हुआ। आखिर जब इन्होंने जब लक्ष्मण रेखा खींची तो कैसे उल्हाना किया कि तुम जाओ स्वर्ण मृग के पीछे। हर कोई इस तरह से सोचेगा तो राम जी को बहुत जोर की गुस्सा है। राम जी को भी लगा कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरा उपहास कर रहा है कि देखो मैंने एक
धोबी के कारण अपनी पत्नी पे ऐसे ऐसे करके लांछन लगाए, हर एक के अपने अपने कारण थे। तो फिर राम जी जो है बड़े तलवार निकालने लगे, तो शिव जी ने उन्हें बोला कि भाई देखो ऐसा है, तुम राजा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, पूछ तो लो कारण, है ना। तो हर व्यक्ति, तो उसमें बड़ा ही लंबा व्याख्यान है, अभी समय नहीं है। हर व्यक्ति, आप सोचिए शेष नाग भी कुछ सोच रहे, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोच रहा है। जैसे कि आप जानते हैं विष्णु के अवतार राम, शेष नाग, वो नाग थे ना, जो विष्णु के जो नाग थे, उनका अवतार है लक्ष्मण जी, है ना, तभी तो इतने क्रोधी हैं। इस तरह से आप जानते हैं विष्णु के आयुधों के, 4 आयुधों के भी अवतार हैं। तो फिर बताया इस तरह से, मैं तो निद्रा देवी पे हंसा था कि ये तो एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब, जैसे मैं हिसाब रख रही हूँ ना आज एक एक पल का तो बड़ी जोर के हंस पड़े थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर निर्णय निकाला, गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ ने बोला देखो गलती तो तुझसे हुई है, तुमने तलवार निकाली बिना उसके, तो अब क्या होगा, अब लक्ष्मण शैया पर लेटेंगे और तुम उनके पांव दबाओगे। बड़ी सुंदर सी एक लोकगीत है, तेलुगु का है ना। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही है ना। तो ये बड़ा ही अच्छी बात है कि हम लोक संस्कृति में भगवान को भी हम कटघरे में रख सकते हैं, क्यों ना रखें, है ना। आगे बढ़ते हैं। गणेश ठाकुर हंसता जी, जी हाँ, आप वहां बैठे हुए कह सकते हैं प्रभु जी, हम ऐसा नहीं कह सकते। गणेश ठाकुर हंसता जी कवि, कथाकार और अनुवादक हैं। आप बच्चों के लिए संताली भाषा में भी लिखते हैं। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप साहित्य अकादमी संताली भाषा परामर्श मंडल के पूर्व सदस्य हैं और संताली लेखक संघ, अखिल भारतीय संताली लेखक संघ, झाड़ग्राम सहित विभिन्न साहित्यिक संघों से संबद्ध है। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, RR किस्कू रपाज पुरस्कार और शिखर भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे कवि हंसता जी हमारे साथ हैं, स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साथी कविगण और आप सब, मैं गणेश ठाकुर हंसदा, संताली लेखक झारखंड से आप सबको जोहार। 2-3 कविता आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी मातृभाषा संताली में शीर्षक है बजाओ ना गुड़गुबंग से टमाक। 2 पंक्तियां, उसके बाद हिंदी अनुवाद। इन लिखा आम हो गुड़गुबंग में से टमाक, इन लिखा आम हो गुड़गुबंग में से टमाक आखड़ा तला रे बीर बुरु रे गाडा मुडो रे उसूल चढ़त बुरु संघा रे टामक न सिंबिन तार कोते मन जीवन ताकर में। ये संताली में बहुत लंबा चौड़े, लेकिन शॉर्ट कर रहा हूँ। हिंदी अनुवाद। बजाओ ना नगाड़ा, मेरी तरह तू भी बजाओ ना अखाड़ा में नगाड़ा। घने जंगलों में, नदियों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में नगाड़े के मधुर आवाज से दिलों को स्पंदन कर देना। तू भी बजाना मेरी तरह अखाड़ा में नगाड़ा। हमारे पास नगाड़ा ही तो है, एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए और संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए नगाड़ा ही तो है। नगाड़ा ही तो है हमारे पास संस्कृति परंपरा जो हमें सभ्य विचार, शांति का संदेश और आपसी भाईचारा शक्ति प्रदान करता है। नगाड़ा ही तो है हमारे पास। नगाड़ा ही तो है हमारे पास गांव के शांत वातावरण में, डिबरी सी जगमगाती पुअल की घरों से घिरी गांव के अखाड़ा में जब नगाड़े की मधुर आवाज गूंजती है, बड़े बूढ़े नौजवान थिरकती पांव ताल पे ताल, सुर और संगीत सारे जनमानस में प्यार और एकता के संदेश बिखरती है। नगाड़े ही तो है हमारे पास। नगाड़े ही तो है हमारे पास जिसे बजाकर एकता के मसल बज जलती है, शांति के संदेश फैलती है, संस्कृति और परंपरा की धारा प्रवाह होती है। नगाड़ा ही तो है हमारे पास। नगाड़ा ही तो है हमारे पास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्षुधा, पिपासा, विरह, वेदना, प्रेम, मिलन, शरम, परिहार, सुख दुख में अपूर्व जीवन संबल प्रदान करती है। नगाड़ा ही तो है हमारे पास। नगाड़ा ही तो है हमारे पास जिसे हमारे सारी अभावग्रस्त जिंदगी मिटा देती है, विस्थापन, पलायन, गरीबी जैसी पीड़ा भुला देती है। नगाड़ा ही होता है हमारे पास।
कविता संताली में तोलासी दई इन बकरा पतरा पिठ है। हिंदी अनुवाद मेरे हिस्से की रोटी। ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। शहरों में गगनचुंबी चमकीली मॉल में, महानगरों की भीड़ में, सरकारी बारबों की टेबल के नीचे में, विधवाओं की पेंशन फाइलों में, लाल कार्ड में ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। ईट भट्टे की सुलगती आग में, कारखाने की उगलती लाल लापटों में और खदानों की सुरंग में ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। डैम की गहराइयों में, नहर के बहती पानी में, बंद खिड़की में ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। चुनाव की भीड़ में, चुनावी रैली में, राजनेताओं की चुनावी भाषणों में, विजय रैली में, उनकी विजय भोज की कढ़ाई में, जूठन पत्तल में ढूंढ रहा हूं मेरे हिस्से की रोटी। संताली शीर्षक है या अत्तू मेरा गांव। पहाड़ों को काटकर, झरनों को बंद कर बन गया बहुत विशाल बांध। पहाड़ों को काटकर, झरनों को बंद कर बन गया बहुत विशाल बांध। उसे नाम दिया गया विकास। उसे नाम दिया गया विकास। उसे देखने के लिए उमड़ती हर दिन लोगों की भीड़। उसे देखने के लिए उमड़ती हर दिन लोगों की भीड़। कोई चल कर तो कोई गाड़ी मोटर से मनोरम दृश्य एवं सुंदर वातावरण का अनोखा आनंद लेने के लिए पहाड़ों के बीच में विशाल बांध पर अट खेलती खेलती नवजीवन नीले पानी की गहराई में। लेकिन वे लोग नहीं आते देखने। लेकिन वो लोग नहीं आते देखने उस बड़ी बात से डूबा मेरा गांव। अंतिम कविता हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। अंतिम आदेश लास्ट वार्निंग। ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है मुझे। ना चाहते हुए छोड़ना पड़ रहा है मुझे मेरा गांव, घर, आंगन, रहस्यों से घिरा अखड़ा और नदी, झरना, पहाड़। खबर आई है कि हमारे गांव में कल खरने स्थापित होगी, बाजार सजेगी, लोग आएंगे, ऊंची ऊंची इमारत खड़ी होगी, मुझे भी स्थापित कर। ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बोझ बढ़ गया है हमारे गांव में उनकी हमारे लिए अंतिम आदेश। थैंक यू। I think this is called living in impact, you know. You finished before time, but what an impact. And I believe आप एक performance poet हैं. You know, the way you use your voice and you've got a lovely voice, है ना? बहुत ही कमाल, बहुत सुंदर. We should have a round of applause. विम्मी जी हमारे साथ हैं। विम्मी सदारंगानी जी प्रख्यात सिंधी कवयित्री हैं। आपने कविताओं, बाल साहित्य तथा सिंधी भाषा शिक्षण की 15 पुस्तकें लिखी हैं। आपको गुजरात सिंधी अकादमी, NCERT दिल्ली सिंधी अकादमी आदि द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आप साहित्य अकादमी के सिंधी परामर्श मंडल में राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद आदि की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। 2011 से आप अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक काव्य कार्यक्रम 100,000 पोएट्स फॉर चेंज की स्थानीय आयोजक हैं। आप 1995 से तोलानी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आदिपुर कच्छ में सिंधी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। विमी जी कृपया अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। स्वागत है। बहुत धन्यवाद सभी के जी बहुत धन्यवाद आपका सभी के नमस्ते। ॿ टे नंढियूं कविताऊं पेश करे रही आहियां। पहली कविता है
सिंधी में छोटी सी। असी लिक छिप रांदि कंदासीं। जॾहिं हिटलर सुम्हियो पियो हूंदो ऐं गांधी पंहिंजो चरखो हलाइण में पूरो हूंदो, असी लिक छिप रांदि कंदासीं। जब हिटलर सो रहा होगा और गांधी अपना चरखा चलाने में मग्न होगा, हम लिक्का छुपी खेलेंगे। दूसरी कविता है बाय द वे। तुम्हारे ठहाके आजकल बढ़ गए हैं, तुम्हारी चुप्पी भी कुछ अधिक बढ़ गई है। तुम जब हंसना चाहते हो तो रोने लगते हो, और जब रोना चाहते हो तो जोर से हंस पड़ते हो। तुम्हारी शक्ल पर अजब, गुस्सा, सवाल की निशानी सब एक से लगते हैं। तुम अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हो उनसे जो तुमसे दूर हैं पर तुम्हारे नजदीक हैं। तुम खुद से हुई ज्यादतियों के लिए बदला लेना चाहते हो उनसे जो तुम्हारे नजदीक हैं पर तुमसे दूर हैं। तुम मुझसे भी कुछ सवाल करना चाहते हो, तुम मुझे भी कुछ जवाब देना चाहते हो, मैं जो तुम्हारे नजदीक भी हूँ और तुमसे दूर भी हूँ। जब तुमसे अलविदा कहते दरवाजे तक चलती हूँ तो मेन गेट तक पहुँचते पहुँचते हम कई बातें करते हैं। इनकम टैक्स का फॉर्म भर दिया, रिजर्वेशन करा ली, आजकल गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। मेन गेट पर पहुंचकर मैं रुक जाती हूँ और तुम आगे बढ़ जाते हो। हम एक दूसरे से अलविदा कह रहे हैं, मैं रुकी हुई हूँ, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, फिर पीछे मुड़कर 2 कदम लौटकर आगे आते हो। कभी कभी हालचाल पूछ लिया करो। मैं सवाल करती हूँ, क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, नहीं कुछ हुआ नहीं, यूं ही बाय द वे कहा कि कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लिया करो। मैं हाँ में सिर हिलाती हूँ, चुपचाप वापस लौटती हूँ। पता है तुमने जो बाय द वे कहा वो बाय द वे तो बिल्कुल भी नहीं था। अगली कविता है कई औरतें जीती हैं मुझ में। अचानक एक दोपहर धूल खाए पुराने रेडियो पर वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, सुनने की इच्छा होती है। उस वक्त यह गीत मेरी माँ सुन रही होती है। आधी रात को उठकर बिना कपड़े उतारे शावर के नीचे खड़ी हो जाती हूँ। बदन सुखाए बिना आकर लेट जाती हूँ। तब पलंग पर मेरी बुआ करवट ले रही होती है। 15 साल पुरानी साड़ी संदूक से निकालकर जांचती हूँ। जिंदगी की तरह उसको भी फिर से तह लगाकर उसी जगह वापस रख देती हूँ। तब साड़ी को निहारती काली पड़ गई जरी सी वे आंखें मेरी मौसी की होती हैं। लहसुन की कलियों को दरदराते हुए दस्ता मेरे हाथ से छूट जाता है। दूर कहीं नानी की सास की दहाड़ गूंज उठती है। उस वक्त वे कप कपाते हाथ पांव मेरी नानी के होते हैं। अब समझी इतने अरसे से यूं ही बेचैन नहीं हूं मैं। अब समझी इतने अरसे से यूं ही बेचैन नहीं हूं मैं। एक नहीं कई औरतें जीती हैं मुझ में। और ये आखिरी कविता है मनकों का सौदा। रेतीली जमीन पर गहरे लाल हरे पीले रंग बिखेरती बन्नी कच्छ के गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए रोज सफर करती हैं दूर दूर तक का। उनके घाघरों में लगे शीशे सूरज की तपती धूप में उनके पसीने की चमक से कुछ कम ही चमकते हैं। उनकी चुनरियों में किए हुए हुरमुचो कढ़ाई के घुमावदार पेच उनकी रोज के रास्तों के पेचों से कुछ तो सरल ही है। परिवार के लिए रोज पानी भरने जाती ये औरतें कभी नहीं थकती और कभी नहीं गिनती कि उम्र भर उन्होंने ऐसे कितने चक्कर काटे हैं। कहीं ये वही औरतें तो नहीं जिन्होंने शाह साहब को याद दिलाया कि धनी की इबादत में माला फेरते मन के गिनना तो सौदा है।
शाह साहब जो हैं वो सूफी संत कवि शाह अब्दुल लतीफ पिटाई का यहाँ जिक्र है। बहुत धन्यवाद सभी का। बिमी जी सिंधी में भी लिखती हैं। तो सिंधी लोगों को दरअसल सिंध सिंध जो प्रदेश था, जब बंटवारा हुआ विभाजन के बाद, तो हिंदुस्तान में तो सिंध एक प्रदेश नहीं मिल पाया, तो अलग अलग स्थानों पे रहे। तो एक सिंधी कवि ये कहते हैं कि हम शरणार्थी बनकर आए थे, लेकिन फिर हम पुरुषार्थी बने, और जहाँ भी रहे वहाँ अपनी पहचान बनाई। यहाँ तक कि राष्ट्रगान में भी सिंध का मेंशन है। आपकी आवाज़ में इतना ठहराव है, ऐसे लगता है समय ठहर सा गया है, बहुत लगता है सुनते ही जाएं। सो हाउ इज दिस, हैव यू प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन और वर यू बोर्न विद इट? इतना ठहराव आवाज में नहीं। बहुत कमाल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ना। अच्छा, मैं ओ शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आज की हमारी आखिरी कवियत्री है ना, नाहिद अख्तर जी हैं। ये द्विभाषी कवि देखिए। ये भी बड़ी कमाल की बात है, चलिए बाद में बताऊंगी, राज को राज रहने दो। अंग्रेजी में पढ़ूं आपका ब्यौरा कि हिंदी में पढ़ दूं? हिंदी में बात करें। अ, अच्छा। सो शी इज़ अ बाइलिंगुअल पोएट, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं हैदराबाद में। इन्होंने 3 काव्य संग्रह लिखे हैं, फैंटाजम्स ऑफ माय हार्ट, द अर्थ्स लव एंड द मॉर्फिन। एंड ये उर्दू पोइट्री में लिखती हैं, उर्दू पोइट्री काफ़ी अच्छे से करती हैं, और भारत में मुशायरों में शिरकत कर चुकी हैं, और अपने समृद्ध योगदान के लिए इन्हें कई प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए हैं। नाहिद अख्तर जी आए मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करने, आपका स्वागत है। Thank you so much, ma'am, for this beautiful introduction. And good evening to the bench and everyone present here. Uh, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी गज़ल से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी आज, उसके बाद 2 गज़ल्स मेरे पेश करूंगी उर्दू में। इस नज़म का उन्वान है अनोखी चाल। दिल साख्त सा लगने लगा है, दिल साख्त सा लगने लगा है, हालांकि धड़कता है ये अपनी रफ्तार से, और चलता रहता है किसी फर्माबरदार पालतू जानवर की तरह। हाँ मगर बगावत भी सरसराती है इसमें अक्सर, हाँ मगर बगावत भी सरसराती है इसमें अक्सर, तरबतर हो जाती है चाल इसकी। इसमें बहता लहू रास्ता ढूंढ लेता है अपना आँखों के द्वारों से, बेचैन बेकल सा भागने लगता है ये भारी कदमों से, जैसे थका मांदा सा कई माह का मुसाफिर बढ़ता जाता है आगे की तरफ, जैसे किसी चट्टान को फलांग न हो इसको, अपनी मंजिल से बेखबर, कभी सूरज की गर्मी को तोलता तो कभी चट्टान की लंबाई को नापता, बढ़ता ही जाता है आगे की तरफ, जैसे चलना ही इसका मकसद हो। शुक्रिया। इसके बाद एक गज़ल पढ़ती हूँ मैं। जी, मैंने कोशिश नहीं करी अभी तक गाने की, सीखा नहीं है गाना, इसमें ही पढ़ती हूँ। दर्द बहुत हैं यूं तो तेरा दर्द दिल पर रखते हैं, दर्द बहुत हैं यूं तो तेरा दर्द दिल पर रखते हैं, चाहने वाले अपनों के तो जुल्म सर पर रखते हैं। हाथ मिलाने की जो रस्म है उसको हमने छोड़ दिया, हाथ मिलाने की जो रस्म है उसको हमने छोड़ दिया, दोस्त भी अब तो हाथ में जैसे कोई खंजर रखते हैं। अपना दर्द व गम रखेंगे तेरे आगे सोचा है, अपना दर्द व गम रखेंगे तेरे आगे सोचा है, देख इन आँखों में हम नादां क्या क्या मंजर रखते हैं। चांद सितारों से तेरे शहर का सफ़र करने के लिए, चांद सितारों से तेरे शहर का सफ़र करने के लिए
अपने दिल के शहर को हम सहरा सा बंजर रखते हैं। राह तेरी तकते तकते कितनी रातें और कितने दिन बीते, राह तेरी तकते तकते कितनी रातें और कितने दिन बीते, पलट के आएगा तू एक दिन, भरम आज भी दिलबर रखते हैं। रिश्ता रहे लहू जख्मों से, रूह भी जख्मी जख्मी रहे, रिश्ता रहे लहू जख्मों से, रूह भी जख्मी जख्मी रहे, इसलिए हम दिल में तेरी याद का नश्तर रखते हैं। थैंक यू। एक और गज़ल। हमने खुद पर जबर किया है, तुम अब खुश हो। हमने दिल पर जबर किया है, तुम अब खुश हो। तुम भी जीना सीख लिया है, तुम अब खुश हो। पुरनम आँखें ना उम्मीद हुई आखिर, पुरनम आँखें ना उम्मीद हुई आखिर, राह तकना भी छोड़ दिया है, तुम अब खुश हो। शोखे उरूसा पिन्हा झिलमिल तारों में, शोखे उरूसा पिन्हा झिलमिल तारों में, मेरा सपना टूट गया है, तुम अब खुश हो। वहशत नाचारी ने संभाला था जैसे, वहशत नाचारी ने संभाला था जैसे, उसने भी अब दम तोड़ दिया है, उसने भी अब छोड़ दिया है, तुम अब खुश हो। आँखों की बारिश से सींचा था जिसको, आँखों की बारिश से सींचा था जिसको, बाग मेरा वो सूख गया है, तुम अब खुश हो। लाफानी था इश्क मेरा, खुद रंग भी था, लाफानी था इश्क मेरा, खुद रंग भी था, फानी वो भी हो गया है, तुम अब खुश हो। तुमको दिल ने कितनी ही आवाज़ें दी, तुमको दिल ने कितनी ही आवाज़ें दी, इसने भी दम तोड़ दिया है, तुम अब खुश हो। अगर टाइम हो तो बिल्कुल एक छोटी सी नज़म है, बिल्कुल छोटी सी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-15 वर्ड्स होंगे उसमें, बिल्कुल छोटी सी है। ये एक ऐसा लम्हा है जो कभी ठहर जाता है शायर के ऊपर, पोएट के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, किसी के भी ऊपर, बस एक लम्हे की बात है। इसका उन्वान है खरार। रात के पिछले पहर जब दिल के दरीचे खुले, हमने याद किए बहारों के वो मौसम, जिनमें वीराने थे मनमोहती हवा से घिरे, जिनमें दिल को था बेवजह करार। थैंक यू सो मच। दिल और दिमाग में अजीब सी जंग है, दिल और दिमाग में अजीब सी जंग है, मेरे अंदर कोई मुझसे ही तंग है। तो हम अब इल्तिजा करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्र निवेदन है हमारे अध्यक्ष जी का, क्योंकि अब मैं यही डर रही थी, अगर समय बहुत हो जाता है ना तो कुर्बानी देनी पड़ती है चेयर को, अध्यक्ष जी को, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपने समय की मर्यादा रखी, वाह। आज आप सब 2-2 प्याली चाय पीजिएगा इसके बाद, लेकिन अब सभी पहले अध्यक्ष जी का भाषण आप यहीं से देंगे सर, या यहाँ आएंगे? आए आए, तालियों के साथ स्वागत, तालियां भूल जाते हो। हाँ, इतनी अच्छी गोष्ठी के बाद, मुशायरे के बाद कुछ बोलना मेरी तौफीक से बाहर है। फिर भी मैं रोमी मलिक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा। पोतियां
पोतियां की करती हैं बहुत स्नेह, खेल खेल में बन जाती हैं डॉक्टर, लगाती हैं सुई, चुगलियां लगाती हैं माँ बाप की, दादियों की लगाती हैं नकलें, समय खिल खिल जाता है आंगन द्वार, समय खिल खिल जाता है आंगन द्वार। तो अंत में माँ, बेटा पैदा होने पर माँ खुश तो होती है बहुत, बेटा पैदा होने पर माँ खुश तो होती है बहुत, पर पहले झेलने पड़ती है उसे पीड़ा बेशुमार, और बाद में झिड़कियां उसी बेटे की, बाद में झिड़कियां उसी बेटे की। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में है, हालांकि समय मुझे उस हिसाब से मिला नहीं है, फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं बहुत। ओके, ठीक है। हम्म। सुनिए, छोटी सी मतलब समझ पाएंगे, ये भी कविता ही है। बहम, अ, बहम आप समझते हैं, हम डोगरी में भी इसे बहम नहीं बोल के बैम बोलते हैं, ख साइलेंट हो जाता है। लेकिन ये कविता के बारे में मेरी सोच, मेरी कविता बिंदरड़ी, जैसे थोड़ा सा मेरी कविता बिंदरड़ी, तो मैं समझिया लगी गई नहीं सी लत्तां, लगी गई नहीं सी लत्तां, पई गई है दरौड़ा, निकली जाग अग्गें सारे कोला अग्गें दूर अग्गें, मेरी कप्तान है परी बिंद आरी टोकी थोड़ा सा उछले, तो मैं समझा लगी गई इसकी फंग, उड्डन लगी पई है सारे कोला उपर निमोचान द्वास ते लगी पेश की तमें समझिया लै कर दी है टो उसकी खबर, लै कर दी है टो चन्ना दी, तारें दी, सूरजा दी, मंगल दी, सारे सौर मंडल दी, ते अंतरिक्ष राएं दिखा दी है सारी धरती पर होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं गी, वेदनाएंगी, संवेदनाएंगी, लोड़ेंगी, थोड़ेंगी, जालमेंगी, मजलूमेंगी, विकास की, विनाश की, तांजे खड़ोई सकै आदमी दे हक च, मनुखता दे पक्ष च उनकी आवाज बनी है। पर नहीं, ये मेरा बहम था, बहम, कोरा बहम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया रोमी जी का, जिन्होंने मुझे पूरा मौका दिया। सचमुच में बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया ये संगोष्ठी हुई है, ये बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत सबका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कहते हैं ना कि अहम और वहम दोनों ही नहीं होने चाहिए। अहम अहंकार से आता है, तो अहम कहता है कि सबको मेरी ज़रूरत है, और वहम कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अकादमी में हम यही मानते हैं कि देखिए ना, ये बहुभाषी कवि सम्मेलन कहाँ-कहाँ से हम आए हैं और कैसे एक साथ कितना आनंद आया। आज के आनंद की जय। और इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं रूमी मलिक साहित्य अकादमी की ओर से आप सबका अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी जो डेलीगेट्स हैं मंच के यहाँ नीचे सामने आ जाए, क्योंकि एक ऑफिशियल ग्रुप फोटोग्राफ लेनी है। फिर आप सभी चाय पर आमंत्रित हैं। बाकी चर्चा हम चाय पे करेंगे, बाकी कविताएं चाय पे सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, कल आइएगा।